84 का अभिजीत मुहूर्त है और उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जी बिल्कुल रश्मि, and at this point let's once again talk a little bit about the Mangal Dhwani and what a musical as well as visual delight it is going to be. That is of course going to start at 10 a.m. sharp in the Ram Temple courtyard. So it has been orchestrated by Ayodhya's own Yatindra Mishra. This grand musical rendition is supported by the Sangeet Natak Academy, New Delhi. The instruments also include Santoor of Madhya Pradesh, Pung, as I said, from Manipur, Nagada and Kali of Assam, Tambura of Chhattisgarh, Pakhwaj of Bihar, Shehnai of Delhi, Ravanahatha of Rajasthan, Srikhol, Sarod of Bengal, Ghatam of Andhra Pradesh, Sitar of Jharkhand, Santar of Gujarat, Nagaswaram, Tawil, Mridang and Hudka of Uttarakhand. So of course this is going to be something to absolutely watch out for today, viewers. It's going to be one of the highlights of the day, and this will take place right before the consecration ceremony, which is going to start at 12:05 p.m. That is the timing for the actual Pran Pratishtha ceremony to get underway, and Prime Minister Modi of course will be presiding over all the rituals. रौनक, राम मंदिर की कुछ विशेषताओं की बात भी हम कर लेते हैं। रामनगरी में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है वो महीनों से चल रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि मंदिर जो है, क्योंकि अभी अधूरा मंदिर है और उससे पहले ही प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो ये अधूरा जो मंदिर है वो वर्ष 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और कुछ विशेषताएँ भी हैं इसकी, जैसे ये मंदिर जो है वो परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है और मंदिर की लंबाई जो है वो 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई जो है वो 161 फीट रहेगी। ये मंदिर जो है वो 3 मंजिला रहेगा और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी और मंदिर में कुल 392 खंभे व 44 द्वार होंगे। जी रौनक, 44 द्वार होंगे इस पूरे मंदिर में। और ख़ास बात यह है कि जो द्वार बनाए जा रहे हैं वो सोने के पानी से जड़े हुए हैं और मंदिर में 5 मंडप भी होंगे। ये मंडप है नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। तो ये 5 मंडप इस मंदिर में होंगे। और खंभों और दीवारों की अगर मैं बात करूं तो खंभों और दीवारों में देवी देवता और देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही है। काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां उकेरी गई है। इस बीच तस्वीरें भी सामने आई हैं, काफ़ी मनमोहक तस्वीरें हैं। और मंदिर में जो प्रवेश होगा वो पूर्वी दिशा से होगा। 32 सीढ़ियाँ चढ़कर सिंह द्वार से करना होगा भक्तों को प्रवेश। Ji or Rashmi, since it's a big occasion, a historic occasion, it also calls for top layer security, isn't it? You know, this is an occasion where the best possible security arrangements have been put in place to ensure that it is all smooth sailing from the get-go. So let's talk a little bit about the security arrangements that are in place across Ayodhya for the day. So a 3-layer security detail has been deployed in Ayodhya ahead of the consecration ceremony. This 3-layer security, manned by the Uttar Pradesh government's Special Security Force or SSF, Central Reserve Police Force or CRPF and Pradeshik Armed Constabulary or PAC has been installed to guard the temple. Nearly 100 SSF commandos trained by the National Security Guard or NSG in highly specialized anti-terror tactics have been deployed at key vantage points in and around the temple complex. Meanwhile, CRPF troops will also be deployed in the main temple to cordon off the Sanctum Sanctorum, where the idol of Lord Ram Lalla was placed. And besides, artificial intelligence, drones and CCTV cameras up to 10,000 have been installed all across the city to ensure top-notch security for the day. देखिए, आगामी जो कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और उसके अलावा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के आलोक में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से, लगातार संदिग्धों पे नज़र रखने के उद्देश्य से ये लगातार चेकिंग का एक अभियान चल रहा है। उसके तहत आज स्थानीय लोकल पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ सभी की टीमों के साथ, एएस चेक टीमों के साथ यहाँ पे स्टेशन पे चेकिंग कराई गई है। स्टेशन के बाहर प्लेटफॉर्म के बाहर चेकिंग कराई गई है सर्कुलेटिंग एरिया के। उसके अलावा जनपद में सभी जो हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं
इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हैं तथा इंटरनल हमारे कई इम्पॉर्टेंट रूट्स हैं, उन पे लगातार चेकिंग चल रही है और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है, जिससे कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न फैलाने पाए। So those were, of course, the details regarding the security arrangements. Now let's also talk about the Sandhya Arati. Thousands took part in the Sandhya Arati at the banks of the river Saryu in Ayodhya last evening. Take a look. And well, it's a Diwali-like atmosphere from Ujjain to Madurai as people gear up to welcome Ram Lalla. So an entire nation immersed in devotion as Ayodhya is poised to joyously welcome Lord Ram
as he returns home after a 500-year exile. So it's not just Ayodhya, viewers, all across the country. It is a nation that is united in devotion. It is a nation that has united in joyous celebration as a 500-year wait is about to come to a close today. And Ayodhya is all set to welcome Lord Ram after a 500-year exile, just as it was done in the pages of the Ramayana. बिल्कुल रौनक, ये तस्वीरें सिर्फ अयोध्या, उज्जैन या मध्य प्रदेश की ही नहीं है, ये तस्वीरें आज पूरे देश की है। पूरा देश ही आज राम की भक्ति में डूबा हुआ है और बस इंतज़ार हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा के उस मुहूर्त का, जब प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी मूर्ति की। और आज कुछ सौभाग्यशाली अतिथियों को ही दर्शन का मौका मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ कल से क्या होगा 23 जनवरी से, तो श्रद्धालुओं के लिए मंदिर दर्शन का समय सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। और राम मंदिर में सुबह की आरती 6:30 बजे होगी, जिसे श्रृंगार या जागरण आरती कहा जा रहा है। और इसके बाद दोपहर में भोग आरती और शाम 7:30 बजे संध्या आरती होगी। आरती में शामिल होने के लिए पास की आवश्यकता होगी। तो ये कार्यक्रम रहेगा रौनक। 23 जनवरी से आज प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी और उसके बाद चूँकि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों का सैलाब उमड़ेगा अयोध्या में, राम मंदिर में। और तस्वीरें इस वक्त दर्शकों हम दिखा रहे हैं अलग अलग स्थानों से जो आ रही है, खूबसूरत तस्वीरें। किस तरह से राममय हो गया है पूरा देश। सभी के मन में आज हर्षोल्लास है, क्योंकि 550 साल का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है और राम मंदिर आज वहीं स्थापित हुआ है जहां उसकी जगह थी। और पूरा जो देश है वो भक्ति में सराबोर है इस वक्त। जी बिल्कुल रश्मि, and it's not only the nation either, it's actually the entire globe, because for the last few days we have seen, Rashmi, how people from across the world, we saw visuals from the United States, we saw visuals from Mauritius, we saw visuals from Paris, and even African countries like Uganda and so on and so forth, where people are also celebrating this joyous occasion in their own unique way. So it's something that has brought the entire world together, not just the nation, isn't it, Rashmi? बिल्कुल बिल्कुल रौनक, सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी उत्साह दिखा। तस्वीरें हम लगातार पिछले कुछ दिनों से दिखा रहे हैं। न्यूयॉर्क की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वहाँ पे भी जो भक्त है वो काफ़ी उत्साहित है। राम मंदिर के जो आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसको लेकर टाइम स्क्वायर की ये तस्वीरें सामने आई। काफ़ी उत्साह देखा गया है, भक्तों में लड्डू बांटे जा रहे हैं। तो राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा आज होने वाली है और उससे पहले देश कहें विदेश कहें हर कहीं राम भक्त भक्ति में लीन हैं। Yes, absolutely, Rashmi. Celebrations ahead of the Pran Pratishtha ceremony spilled over into several other countries, not just confined to here in India. So, laddus, as you very rightly mentioned, were distributed by the members of Overseas Friends of Ram Mandir at Times Square in New York City. वर्षों के बाद में सोचा नहीं था कि हमारे जीवन काल में हमें ये शुभ दिन भी हमें देखने को मिलेगा। कुछ ही देर में अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। यहाँ टाइम्स स्क्वायर पे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हम अयोध्या में हों। हर 3 स्ट्रीट को छोड़ के इंडियन डायस्पोरा के सभी संगठन अलग अलग जगहों पर इस त्यौहार को मना रहे हैं। दीपावली एक तरह से है, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौट रहे हैं। और इसका श्रेय देखें कई लोग जुड़े रहे, लेकिन ये सब संभव हुआ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब की अगर लीडरशिप की वजह से। और उन्होंने पूरा देश विदेश में ऐसा राममय माहौल बना दिया है कि 140 करोड़ भारत में रहने वाले ही नहीं, हम पूरे विश्व में फैले हुए अप्रवासी 3.5 करोड़ को भी रामलला से जोड़ दिया है।
So yes, viewers, the countdown has officially begun. It is only a matter of few hours now before the Pran Pratishtha ceremony takes place, with Prime Minister Modi presiding over the rituals. And at this point, Rashmi, हम दर्शकों को ये भी बताते हैं कि the early morning rituals, you know, the rituals which begin right from the early hours of the morning are already underway. So the temple doors actually opened at 5:30 a.m. this morning, and since then the early morning rituals are already underway, and the puja ceremonies, the puja part will begin around 8 a.m. So that of course is something that we will hopefully get visuals of, but for now there are already closed door rituals that have already begun at the temple premises, and of course this is all in preparation ahead of Prime Minister Modi's arrival in the holy city. He is slated to land in Ayodhya at around 10 a.m. around 10:25 a.m. rather this morning. बिल्कुल रौनक, पूरी सही बात जानकारी आप दे रहे हैं कि 5:30 बजे ही खुल चुके हैं, लेकिन मेहमानों को जो प्रवेश करना है वो 10:30 बजे तक का उनका समय है कि वो प्रवेश करेंगे, क्योंकि उसी के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। व्यापक तैयारियां होंगी, लेकिन हम यहां पर ये बताते हैं कि पूजन का क्रम कैसे होगा। तो सबसे पहले नित्य पूजन हवन पारायण, फिर देव प्रबोधन, उसके बाद प्रतिष्ठा पूर्व कृत्य, फिर देव प्राण प्रतिष्ठा, महापूजा, आरती, प्रसादोत्सर्ग, उत्तरांकर्म, पूर्णाहुति, आचार्य को गोदान करना, फिर कर्मश्वरापर्णम, ब्राह्मण भोजन, प्रेषात्मक पुण्याहवाचन और ब्राह्मण दक्षिणा दानादि संकल्प, आशीर्वाद, और फिर कर्म समाप्ति होगी। तो ये पूरा जो विधि विधान है, जो पूजन का क्रम है, वो इस तरह का रहेगा। तो 500 वर्षों के तप के बाद आखिरकार आज प्रभु श्री राम अपने नए और भव्य महल में विराजमान होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ सहित संत समाज और वीवीआईपी लोगों की मौजूदगी में रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान आज दोपहर 12:20 पर होगा। पूरी अयोध्या नगरी को हजारों क्विंटल फूलों से सजाया गया है। वहीं भव्य राम मंदिर को 3000 किलो फूलों से सजाया गया है। राम के स्वागत की तैयारी केवल अयोध्या में ही नहीं, बल्कि देश के अन्य शहरों के साथ साथ विदेशों में भी हो रही है। जिस तरह मैं लगातार बता रही हूँ कि विदेशों में भी तैयारी है, लोग उत्साहित हैं। देश के सैकड़ों मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। आज शाम को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। सांस्कृतिक नृत्य और वादन के जरिए अलग अलग जगहों पर प्रदेश के साथ साथ देश भर की परंपराओं और कला का समागम हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर के परिसर सहित पूरी अयोध्या को फूलों से सजा दिया गया है। जन्मभूमि स्थान में अलग अलग तरह के देशी और विदेशी फूलों से सजावट की गई है। तो काफ़ी मनमोहक तस्वीरें हैं, क्योंकि फूलों से सजी हुई है पूरी अयोध्या नगरी। वहीं जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ और लता चौक पर भी सुंदर फूलों की सजावट की गई है। अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच बनाए गए हैं। लता चौक पर लगी वीणा को भी लाइटिंग और फूलों से सजाया गया है। समूची अयोध्या नगरी में म्यूरल पेंटिंग और वॉल पेंटिंग के माध्यम से भगवान श्री राम की जीवनी से जुड़े अलग अलग अध्यायों का चित्रण किया गया है। राम की पैड़ी में सरयू आरती के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लेजर शो के जरिए लोगों में धार्मिक अलख जगाई जा रही है। अयोध्या धाम का हर एक स्थान रोशन है। साथ ही अयोध्या आने वाले अलग अलग हाईवे को भी फूलों और लाइट से सजाया गया है। आज सूर्यास्त के बाद 10 लाख दियों से दीपोत्सव की भी तैयारी की गई है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूर्यास्त के बाद देशवासियों से 5 दीप प्रज्वलित करने का आग्रह किया है। तो दीपों से प्रज्वलित होगी न सिर्फ अयोध्या नगरी, बल्कि पूरा देश। आज रौनक दीपों से प्रज्वलित होगा, दीप जगमगाएंगे, क्योंकि आह्वान किया गया है। एक राष्ट्र उत्सव आज है, ये मनाया जा रहा है, क्योंकि पूरे देश में आज बस श्री राम की ध्वनि ही गूंज रही है।
जी बिल्कुल रश्मि, as we can clearly see from the visuals, the cold of the winter has nothing to do with the kind of devotion that people are feeling today, and of course not just today, in the lead up to the Pran Pratishtha ceremony today. There has been so much of devotion, there has been so much of celebration. The people are in the absolute heights of happiness as Lord Ram Lalla is all set to return to Ayodhya today after a 500-year wait. So let's also talk about how people outside India are bringing in, are ushering in this auspicious occasion. So a huge 25-feet statue of Lord Hanuman also arrived at the Om Sri Sai Balaji Temple and Culture Center in Monroe, New Jersey, in the United States, ahead of the Pran Pratishtha ceremony at the Ram Mandir in Ayodhya. Surya Narayan Madulla, the chairman of the temple and culture center, along with trustee Pankaj Mohan and co-founders Ramesh Taduvai and Ramkrishna Sanidhi, were joined by community leaders Alok Kumar, Sanjeev Singh, Rajiv Akhodi and Anurag Kumar as the statue arrived in Monroe. They said that it was a great coincidence that at the time of the Pran Pratishtha ceremony in Ayodhya, Lord Ram's biggest devotee, Lord Hanuman, arrived in New Jersey. The 15-ton statue is made up of single stone and is the largest indoor statue in the whole of the United States. And let's also talk about neighbors Nepal. So Janakpur is also lit up ahead of the Ram Temple Pran Pratishtha ceremony in Ayodhya. Take a look at these stunning visuals. And not only this, Reliance Industries chairman Mukesh Ambani's house Antilia was also decked up, illuminating holograms of Jai Shri Ram ahead of the Ram Mandir Pran Pratishtha ceremony in Ayodhya. जी रौनक, अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही है। इस वक्त हुगली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आई हैं हुगली से, जहां धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। संत आप देख सकते हैं आज बहुत दिनों का हमारा सपना था कि अयोध्या में ही प्रभु श्री राम जी का मंदिर बने। वो आज
हो रहा है, इसकी खुशी में हमारा एक संकल्प था कि दीड नमस्कार कर कर हम खुशी मनाएं। वही आज हमारा जो सपना था वो पूरा हो गया, इसलिए हम आज दीड नमस्कार डालकर ये जो हमारा संकल्प हम पूरा कर रहे हैं कि श्री राम जी आज अयोध्या मंदिर में जो विराजमान हो रहे हैं, इसी से बहुत बड़ी खुशी खबरी हमें कोई नहीं हो सकती है। इससे बड़ी खुशी कौन सा भी नहीं है। मैं एक कार सेवक हूँ। 92 दिसंबर 6 तारीख को हमें कार सेवक में भाग ले को जो इच्छा किया था राम मंदिर वही बने, हमारा सपना था, आज सपना पूरा हो गया है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और सबको मैं विश्व हिंदू परिषद और सब समाज के सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन देश में आज एक दिवाली का संभ्रम सब जगह देख रहे हैं हम, इससे खुशी ज्यादा कौन सा नहीं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Right, so absolutely beautiful visuals coming in early morning hours today, viewers, as people across the nation are soaked in devotion, immersed in prayer, and of course this is a historic day for the entire nation, and if not the entire world today, as the Pran Pratishtha ceremony is just hours away and we are just building up to this historic event. And while we are waiting for the Pran Pratishtha ceremony, Rashmi, let's not forget the kind of gifts that have been showered upon Ayodhya and the Ram Mandir in the lead up to the Pran Pratishtha ceremony today. There have been so many gifts of so many different types that have been given to the Ram Temple Trust in the lead up to the Pran Pratishtha ceremony today. If we talk about idols, if we talk about there was, of course, I very clearly remember there was a Ramayan book which was priced at 1.65 lakhs, probably the most expensive Ramayan book that has ever been conceived, which is also gifted to be placed inside the temple. And that is just one of the many gifts, the assortment of gifts that arrived in Ayodhya ahead of the consecration ceremony today, Rashmi. बिल्कुल रौनक, कई तरह के उपहार पहुँचे। इन जो दिन थे बीते कुछ दिनों में कई तरह के उपहार पहुँचे हैं, देश से विदेश से तोहफे पहुँचे हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। 18 जनवरी को रौनक 18 जनवरी को ही रामलला की जो मूर्ति है वो गर्भगृह में स्थापित कर दी गई थी और आज दोपहर 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि जो प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उसमें विग्रह की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी और उन्हें दर्पण दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब करेंगे और मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति उनके बाल रूप की है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं को देश भर के 121 आचार्य संपन्न करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, यूपी के राज्यपाल सीएम योगी आदित्यनाथ और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। कई लोगों को निमंत्रण दिया गया है, सितारे हो, अभिनेता से लेकर उद्योगपति तक सब मेहमान की तरह यहाँ आने वाले हैं। जी बिल्कुल रश्मि, there has already been a large footfall of tourists and visitors who have already arrived in Ayodhya, and almost the same amount, if not more, are expected to arrive today again. So Ayodhya is all decked up and illuminated for this historic occasion today. And while we're on the subject of gifts that have arrived in Ayodhya, let's also talk about a very, very beautiful artwork that has come to light. So a sculptor artist from Puri has made a replica of the Ram Mandir using, just hold on here, using just matchsticks. Yes, you heard me right, viewers. The delicately carved miniature model was made by artist Saswat Ranjan. Take a look for yourself. सालों के लंबे इंतजार के बाद अब श्री राम लल्ला मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इस समय अयोध्या के साथ साथ देश के कोने कोने में राम के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। भक्त राम जी के स्वागत की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने अपने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है। इस वीडियो में वह लोगों के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पहुंच रहे हैं हम अयोध्या नगरी और
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। Yes, indeed, viewers, that is a man who needs absolutely no introduction. Anupam Kher, the veteran actor, on the flight en route to Ayodhya, chanting Jai Shri Ram along with other co-passengers. And of course, this is just symbolic of the kind of emotions that are running high across the entire nation today. People are soaked in devotion, and the significance and the auspiciousness of today's occasion cannot be stressed enough. It has been a 500-year-long wait, which is going to come to an end today. It has been a very long road towards what has led up to this day. It has been a road filled with ups and downs, but we are finally here today, viewers, and the consecration ceremony is just upon us. It's just a matter of hours now before the consecration ceremony gets underway, which is going to start at 12:05 p.m. That is the Shubh Muhurat as per the temple authorities. They have informed 12:05 p.m. is the time, the scheduled start for the Pran Pratishtha ceremony. But of course, before that, there are going to be a slew of other events and programs that have been lined up, and highlights amongst which will be the Mangal Dhwani, which is of course a which is going to be a delight not just to the ears but also to the eyes. It will be a musical ensemble, a symphony of sorts that will take place on the Ram Temple courtyard and will bring together an array of traditional instruments from across the various states of India, and it will be a symphony that, as per in the words of Champat Rai, the temple trust priest himself, who said that this Mangal Dhwani, as per the mythology, is a symphony that is performed before welcoming a deity into a temple. So it has a lot of religious significance, this Mangal Dhwani, and it will be something to behold when it does happen. And that, of course, is scheduled to begin at 10 a.m. later this morning. And former Aam Aadmi Party leader Kumar Vishwas said that the sadness of people has turned into happiness and excitement with the coming of Ram Lalla. Listen in. राम मंदिर आंदोलन भारत का एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आलोड़न था। उससे देश की राजनीति में भी कुछ लोग मिले, नेतृत्व मिला, सरकारें बनी, सरकारें गईं। उसके आवेग को समझने की भूल राजनीतिक पंडितों ने की, क्योंकि राम इस देश की आत्मा का डीएनए है। रमेति इति रामः, जो रमण करता है वो राम है। लोगों ने सोचा कि मंडल कमंडल की लड़ाई है, लोगों ने सोचा कि भाजपा जनता दल की लड़ाई है। ऐसा था नहीं। तो सामान्य जो मेजॉरिटी में सनातन समाज था, हिंदू समाज था, उसके पास सक्षम राजनीतिक नेतृत्व नहीं था। तो उसने एक राजनीतिक नेतृत्व पैदा किया अपने आंदोलन के लिए। लोगों को लगता है कि इस पार्टी ने मंदिर आंदोलन बनाया, नहीं। राम के प्रति श्रद्धा, जो रिचुअल्स नहीं करते, पारंपरिक पूजा पाठ नहीं करते, व्रत उपवास नहीं करते, उनके मन में भी है। इस देश में आदमी सुबह से शाम तक 100 बार राम कहता है। अरे राम जी, हे भगवान, हे राम, अरे बरस जा राम। आज तो राम जी तृप्त हो गए, 100 बार बोलता है। पैदा होता है बच्चे के कान में, बुआ बोलती है राम, जाता है तो पूरा गांव बोलता है राम। तो जो इतने अंदर तक डीएनए में हो, उस वैचारिकी के खिलाफ एक राजनीतिक विमर्श खड़ा करना मेरे ख्याल से समय की राजनीति की भूल थी। और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आज वो निर्णय हुआ, तो 500 वर्ष की लड़ाई है। लोगों ने इस कष्ट को, इस अपराध बोध को कि हमारे सक्षम रहते हम भगवान का मंदिर नहीं बना पा रहे, अयोध्या ऐसी अजीब सी लगती है, उसका जो दुख झेला था, अब चूंकि एक व्यवस्था ने उससे विपरीत कर दिया, एकदम सही कर दिया, चीज़ें क्या सड़कें, तो जो गुस्सा था
जो दुख था, जो ग्लानि थी, वो आनंद में, उत्साह में, आवेग में परिवर्तित हो गई है। वही पूरे विश्व में आपको दिख रहा है। And 5,100 earthen lamps or diyas were lit at the Sri Ram Raja Mandir in Madhya Pradesh. And the holy city of Haridwar has also been completely decked up ahead of the consecration ceremony. और इन पिछले कुछ दिनों में कलाकारी का भी अद्भुत नमूना देखने को मिला है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, जहां देश भर में उत्साह है। उस बीच गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक मूर्तिकार नवरत्न प्रजापति ने पेंसिल की नोक पर भगवान राम की मूर्ति बनाई है। नवरत्न ने कहा है कि इसे पूरा करने में उन्हें 5 दिन लगे हैं और इसकी ऊंचाई सिर्फ 1.3 सेंटीमीटर है। ये दुनिया की सबसे छोटी मूर्ति है। वे इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को उपहार में देंगे और श्री राम संग्रहालय में इसे जगह दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी खूबसूरत कलाकारी देखने को मिल रही है। अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं और ये पेंसिल की नोक पर बना राम की मूर्ति। सांवला जैसा कलर था और इसको मुझे बनाने में मुझे करीबन 5 दिन का समय लगा और इसकी जो हाइट है मात्र 1.3 सेंटीमीटर है। बहुत छोटी, मतलब सबसे महीन और छोटी इसको प्रतिमा कहा जा सकता है। जी जी, इसको सूक्ष्मदर्शी अपन इसको प्रतिमा कहते हैं कि जिसमें माइक्रो लेंस का सहारा लिया जाता है। तो उस प्रकार जो माइक्रो लेंस से जो कार्य किया जाता है वो सूक्ष्मदर्शी कार्य होता है। तो इसमें काफी मेहनत लगी होगी। जी जी बिल्कुल। इसके अंदर क्या है तो रखेंगे, कहाँ देंगे, क्या मंशा है? देखो, रामलला की मूर्ति और वहाँ के जो अयोध्या में एक श्री राम जी की म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो वहाँ पर कई ऐसे कलाकार भी, बड़ी बड़ी मूर्ति भी आएगी, यूनिक कार्य भी आए, काम करते हुए वहाँ आएंगे। तो फिर मैंने जो ये मूर्ति बनाई तो विश्व की सबसे छोटी मूर्ति आप इसको मान सकते हो। बिल्कुल विश्व की सबसे छोटी मूर्ति है और इसको मैं राम म्यूजियम के अंदर रखवाने के लिए वहाँ बात की जा रही है। वहाँ की जो ट्रस्ट है उसको मैं भेंट करूंगा। छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम को भांजे के रूप में पूजा जाता है। जांजगीर चांपा जिले के धर्मनगरी शिवरी नारायण से श्री राम का गहरा नाता है। यहाँ प्रभु राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे और इसी कारण यहाँ के राम भक्त शिवरी नारायण से शबरी के झूठे बेर लेकर भेंट स्वरूप शोभा यात्रा के साथ अयोध्या पहुंचे हैं। प्रभु श्री राम जी के ननिहाल छत्तीसगढ़ से और शिवरी नारायण से माता शबरी का बैर लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। 17 सदस्यों की राम भक्तों की टीम हमारी यहाँ अयोध्या आई है। क्या खासियत है वो बता दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं इस मीडिया के माध्यम से कि प्रभु श्री राम जी और माता शबरी जी जिस समय प्रभु श्री राम जी शिवरी नारायण आए थे उस समय भगवान श्री राम जी को अपने जूठे और मीठे बैर माता शबरी ने श्री राम जी को खिलाया था। वो बैर लेकर और साथ में एक ऐसा वृक्ष हम लोग लेकर आए हैं जो पृथ्वी में कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ वो शिवरी नारायण में ही मिलता है। वो उसका खासियत ये है कि वो अपने आप दोना बन जाता है और माता शबरी जी जब प्रभु श्री राम जी को बैर खिलाती थी तो उसी को दोना बनाकर उसमें रखकर और प्रभु श्री राम जी को देती थी। वो पौधा भी हम साथ लेके आए हैं इसलिए कि छत्तीसगढ़ की जनमानस और 35 लाख यदुवंशियों की आस्था को लेकर हम लोग आज यहाँ अयोध्या पहुँचे हैं और हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे वो वृक्ष लगे जिससे पूरे पृथ्वी के सभी लोग, जितने भी लोग हैं, उनकी आस्था जुड़ी हुई है वो अयोध्या में रहे। और इसी तरह हैदराबाद के नागभूषण रेड्डी नाम के एक व्यक्ति ने अयोध्या राम मंदिर के लिए 1265 किलोग्राम का लड्डू बनाया है जिसे मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाएगा। हैदराबाद से लड्डू लेकर वे अयोध्या पहुंचे हैं। लड्डू को रेफ्रिजरेटेड कांच के डिब्बे में रखा गया है। नागभूषण रेड्डी ने बताया कि इस लड्डू को तैयार करने में करीब 25 लोगों ने 3 दिन तक लगातार काम किया। जय श्री राम। मेरा नाम नागभूषण रेड्डी है। मैं हैदराबाद से आया।
हैदराबाद में हमारा एक बिजनेस है, कैटरिंग बिजनेस है। हम लड्डू लाया, बड़ा अखंड लड्डू, बड़ा लड्डू लेके आया भगवान के लिए। 2000 में हम लोग कैटरिंग, छोटा कैटरिंग स्टार्ट करा सब हैदराबाद में। अगर हम अच्छा बन गया भगवान का दया से, अच्छा हो गया था, हमारा फैमिली का अच्छा हो गया, तो राम मंदिर जब बनता, जब तक एक दिन का 1 किलो लड्डू बना के हम जिंदा रहे तो जरूर बना के देंगे बोल के संकल्प करा। इसलिए हम लोग राम मंदिर बन गया, हमारे मंदिर बन गया बोल के इतना लड्डू बना के लेके आया। कितने लोग आए आप? हम लोग 25 आदमी आया सर। सस्पेंशन बनाया सेपरेट उसका लिए, टोयोटा का सस्पेंशन बनाया, उसका थोड़ा खर्च कराया, उसका ग्लास बनाया, एसी है, 1 महीने तक वैलिडिटी है, फूड सर्टिफिकेट लाया, 1 महीने तक खराब नहीं होता वो। अच्छा, तो लड्डू बनाने में कितने दिन लगे थे और कितने कारीगर लगे? लड्डू बनाने को 3 दिन लग रहा सब। और कितने कारीगर लगे उसे बनाने में? 25 आदमी, 2 दिन लगा सब, 1 दिन जमाने को 1 दिन लगा, 3 दिन हुआ। अब आपको दिखाते हैं कि अंतरिक्ष से अयोध्या कैसे दिखती है। Yes, indeed. तो ये तस्वीरें हैं अंतरिक्ष से अयोध्या कैसे दिखती है। इसरो ने अंतरिक्ष से भव्य राम मंदिर की झलक दिखाई है। इसरो ने अपने स्वदेशी उपग्रहों का उपयोग करके ये तस्वीरें ली हैं। भारतीय रिमोट सेंसिंग सीरीज के सैटेलाइट के जरिए ली गई इन तस्वीरों में 2.7 एकड़ में फैले राम जन्मभूमि स्थल को देखा जा सकता है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की ये तस्वीरें पिछले साल 16 दिसंबर को ली गई थी। हालांकि तब से अयोध्या में घना कोहरा छाए रहने के कारण साफ तस्वीरें लेना मुश्किल हो गया। इन सैटेलाइट तस्वीरों में दशरथ महल और सरी नदी को साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी दिख रहा है। All right, so we're just hours away from the consecration ceremony of the Ram Mandir in Ayodhya. California in US is steeped in religious winds. Over 1,100 enthusiastic riders carrying saffron banners with the image of the Ram temple participated in a massive car rally in the Bay Area. Organized by 6 Hindu volunteers, the riders passed through the iconic Golden Gate Bridge and various areas of San Francisco and the Silicon Valley before culminating at a public meeting which included a cultural program and dances to popular Ram songs. Well, the event was followed by the distribution of a prasad and a Tesla car light show. LED led by a giant Ram Rath, the rally covered almost 100 miles and was escorted by 2 police cars for security purpose. The rally also had 3 digital trucks that played videos of Ram's life story with life-size pictures of Ram, Sita, Lakshman and Hanuman. Take a look.
So yes, indeed, viewers, of course, needless to say, the entire nation is absorbed in prayer and celebration, but it is equally heartening to see how people from the rest of the world are also leaving no stone unturned to celebrate this absolutely joyous, historic and auspicious occasion. So prayers and celebrations were also organized at the Brahma Rishi Mission Ashram in London, United Kingdom, ahead of the Pran Pratishtha ceremony today. Satyam Surana, an Indian student studying at the London School of Economics, said that the whole world has dived into the colour of Lord Ram and there is great enthusiasm amongst the Indian diaspora. Meanwhile, the United Kingdom is also witnessing vibrant celebrations as Hindu temples gear up for the Pran Pratishtha. Slough Hindu Temple, located thousands of miles away from Ayodhya in the heart of England, is brimming with enthusiasm as it is set to celebrate the Pran Pratishtha ceremony of Ram Mandir in Ayodhya. The excitement around the ceremony is palpable in the United Kingdom. There are about 250 Hindu temples in the UK and all of them are all geared up for the historic celebration today. Yes, indeed, viewers, these visuals can help us gauge the significance of the day today, because even though the actual Ram Mandir consecration ceremony is going to take place in Ayodhya, even in places like UK, the United States, thousands and thousands of kilometers away from Ayodhya, the excitement, the celebration, the happiness is palpable because the people there too are brimming with excitement, enthusiasm and devotion for this auspicious occasion today. Even though they are so many miles apart from Ayodhya, so many kilometers away, that has not dampened the spirit as people all across the world are in anticipation of this historic moment today when the Pran Pratishtha ceremony will get underway at 12:05 p.m. Rashmi, isn't it? बिल्कुल रौनक आज के दिन का जो महत्व है वो दर्शाता है, क्योंकि राम नगरी अयोध्या से कोसों दूर, मीलों दूर, लेकिन उत्साह वही, राम भक्तों में उत्साह वही सराबोर है भक्ति में, और श्री राम ध्वनि की गूंज विदेशों में भी सुनाई दे रही है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां भारतीय राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। न केवल भारत बल्कि कैलिफोर्निया में भी लोग श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको अलग अलग स्थानों से दिखा रहे हैं। भारत में ही नहीं, जय श्री राम की ध्वनि सुनाई दे रही है, विदेशों में भी कैलिफोर्निया की ये तस्वीरें सामने आई हैं।
Yes, you very rightly pointed out, Rashmi. All these visuals that we can see on our screens, one cannot be blamed for mistaking this to be Ayodhya itself, isn't it? Because everywhere you look, there are people celebrating, dancing to the tunes of Lord Ram. Everybody is chanting Jai Shri Ram. So even though the ceremony itself is going to take place in Ayodhya, the excitement, the echoes of Jai Shri Ram are reverberating all across India, if not the entire world. People all across the corners of the earth have seemed to indulge themselves in devotion and prayer today. It does not matter whether they are in the United Kingdom or in the United States or even in Africa or any other country for that matter. Everywhere you look, it seems as though it is Ayodhya right there. It isn't it, Rashmi? बिल्कुल। तो उत्साह जो है, क्या देश क्या विदेश, हर तरफ समान है, क्योंकि आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तस्वीरें जो है वो देश की हो चाहे विदेश की हो, लगभग एक जैसा नज़ारा है। हर कहीं लोग उत्साह में डूबे हुए हैं। श्री राम के जयकारे सुने जा सकते हैं भारत में, विदेशों में भी। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें विदेशों से आ रही है, जहां जय श्री राम की ध्वनि देखी जा सकती है। काफ़ी उत्साहित है लोग। सुबह की तस्वीरें हैं जहां आज लोग मिलकर जय श्री राम के जयकारे की ध्वनि। जी बिल्कुल रश्मि, बिल्कुल सही कहा आपने। It's actually something that is very significant to mention here, that how this historic occasion has brought together communities and people from all across the world, shattering barriers and boundaries that are man-made, and everybody uniting as one to celebrate and usher in this very joyous and momentous occasion. People, whether it be in different parts of India or different parts of other countries, if you talk about Nepal, if you talk about the United States and every other country, people have united like never seen before for this historic occasion. Isn't it, Rashmi? And let's also at this point talk about the mouth-watering sweets and prasads that are on offer and that have been offered to the Ram temple ahead of the Pran Pratishtha ceremony today. So people across the world presented special gifts to the Ram Mandir ahead of the consecration ceremony today. So, a 1,265 kg Laddu Prasad was offered to the Ram Mandir. And Nagabhushanam Reddy of Sri Ram Catering Services, who prepared these laddus, said that he had pledged to prepare 1 kilo of laddu every day till he is alive. And while we are on the subject of gifts, a lock and key weighing whopping 400 kgs, viewers, made in 6 months, was gifted all the way from Aligarh. And meanwhile, Vishwa Hindu Parishad President Alok Kumar has facilitated the exchange of gifts symbolizing unity and contributions from different parts of India and even Afghanistan for the ongoing construction of the Sri Ram temple. Kumar handed over gifts received from Kashmir, Tamil Nadu and Afghanistan to Anil Mishra, the Yajman of the Sri Ram temple. And members of the erstwhile royal family of Himachal Pradesh's Kullu also donated silver Charan Paduka for the Ram temple. From Lord Ram image adorned bangles to 56 varieties of petha, and from traditional items like a 500 kg iron copper nagara and the Onavillu bow to offerings of rice, laddus and vegetables, a diverse array of gifts also flooded in from all across the country. Also featured in the list of gifts are special perfumes from Kanauj, 500 kg kumkum leaves from Amravati, grains collected at a Ram temple in Delhi, flowers from Bhopal and papers with Lord Ram written
4.31 crore times from Madhya Pradesh's Chindwara. The Ram Temple Management Committee has received other offerings as well, such as a 108-foot incense stick, a 2,100 kg bell, a giant lamp weighing 1,100 kg, gold footwear, a 10-foot high lock and key, and a clock that simultaneously denotes time in 8 different countries, amongst others. And more than 3,000 gifts from Sita's birthplace in Nepal's Janakpur have also arrived to you. So amongst the traditional offerings, a nagada or drum weighing 500 kg has arrived from Gujarat, and Kerala's famed Padmanabh Baswami temple has gifted an Onabillu, a traditional ceremonial bow, while the Ayodhya-based Amava Ram temple is also going to present a 2.5 kg bow. So, Ram Mandir in Ayodhya ahead of the Pran Pratishtha ceremony. Every citizen in their own unique way has attempted or tried to contribute to this holy auspicious occasion, and that just goes to show the kind of significance this day holds in the lives of every Indian. It is something that has brought together an entire nation like never seen before. मैं कुल्लू के भूतपूर्व राज परिवार का सदस्य हूँ और प्रथम पुत्र हूँ, और हमारे यहाँ परंपरा है कि वहाँ के जब से लेकर रघुनाथ जी का पदार्पण हुआ है कुल्लू में, यहाँ से गई है मूर्तियाँ। ये जो आपका त्रेतानाथ ठाकुर का मंदिर है, वहाँ की प्राचीन मूर्तियाँ उस वक्त राजा जगत सिंह ने 1660 में कुल्लू में पधारे थे और वहीं मंदिर बन गया, और उस मंदिर के हम देखते भी हैं, देख रेख भी करते हैं, और प्रथम सेवक भी है रघुनाथ जी के। तो ये अब चरणपाद का जो है रामलला के मंदिर में चढ़े, और जो बाल्यावस्था है इसीलिए छोटे छोटे पाँव थे, इसका ये वो लड्डू यहाँ पर 13.5 लाख इन टर्म्स ऑफ नंबर, और वैसे 1111 मन और 45 टन, अब तीनों में से जो आपको ठीक लगे। 13.5 लाख संख्या में लड्डू हैं, और इसमें से 22 तारीख को जब उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो ठाकुर जी को, भगवान राम को, हनुमान जी को भोग लगाया जाएगा बाबा जी की तरफ से। एक त्रिकालदर्शी महायोगी की तरफ से भगवान राम और हनुमान जी को भोग लगाया जाएगा। और क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करा है। कृतज्ञता किस बात की? क्योंकि हनुमान जी ने ही इसकी मुक्ति कराई है। हनुमान जी अलौकिक जगत में इसके मुक्ति दाता, वो कराने वाले वही हैं। देखो तो भगवान राम के सारे कार्य हनुमान जी ही करते हैं, नश्वर शरीरों या नश्वर दलों के द्वारा नहीं होता। वो लौकिक जगत में वो उनका रोल रहता है। जैसे भारत विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, संघ परिवार है, उनका लौकिक जगत में एक बहुत बड़ा स्थान है। लौकिक जगत में जो फील्ड रोल है उनका, वो उनका है। पर अलौकिक जगत के जो वास्तुकार हैं वो हनुमान जी हैं और हमारे बाबा जी त्रिकालदर्शी महायोगी दोनों।
Welcome back, viewers, and we welcome you once again to this special broadcast of a historic day that is upon us today, the Pran Pratishtha ceremony of the Ram Mandir in Ayodhya, all set to take place in just a matter of hours from now. A historic occasion for which not just India, but the entire world has been waiting in high anticipation for many, many years now. And viewers, that day, that historic day is finally upon us. रश्मि, इट इज एन ऑस्पिशियस ओकेशन एंड शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता आज की अहमियत। बिल्कुल रौनक, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत अहमियत है, बहुत महत्व है आज के दिन का, और यही वजह है कि देश हो विदेश हो हर जगह राम भक्त आज सराबोर है। जय श्री राम के नार जो ध्वनि है वो हर जगह से सुनाई दे रही है। सीधी तस्वीरें भी इस वक्त आ चुकी है हमारे पास, जहां धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं, साथ ही सिक्योरिटी का अरेंजमेंट्स भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुकी है अयोध्या नगरी, और सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। देश विदेश से भक्त पहुंचे हैं आज अयोध्या नगरी में। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं बिरधा गांव से हूं, ललितपुर उत्तर प्रदेश के, जो हमारे उत्तर प्रदेश का आखिरी छोर पर बसा हुआ गांव है, जो मध्य प्रदेश की सीमा के पास है। बुंदेलखंड क्षेत्र से हम लोग बुंदेलखंड का श्रृंगार रस प्रधान राय नृत्य लेकर आए हैं, जो राजाश्रय का आभास दिलाता है। और जो राम दरबार सज रहा है, आज प्रभु राजा राम बन रहे हैं, तो राजा राम के स्वागत में हमारे श्रृंगार रस प्रधान लोक नृत्य राय की प्रस्तुति दे रहे हैं इधर, और हम लोग लोक भजन भी गा रहे हैं। तो रामकृत हो चुके हैं, राममय हो चुके हैं हम लोग। बिल्कुल, सबसे पहले तो हम कहेंगे कई बरसन में 14 बरस, अभी तो 14 वर्ष में भगवान यहाँ पर आए थे, अपनी जन्मभूमि में 14 वर्ष में आए थे, लेकिन कई बरसन में राम लखन सिया, कई बरसन में राम लखन सिया, अपनी जन्म भूमि आए अवध में, हो रहे मंगल बधाए, अवध में हो रहे मंगल बधाए। और माता कौशल्या जी आरती उतारें, माँ कौशल्या जी आरती उतारें, गद गद कंठे लगाए अवध में, घर घर दीप जलाए अवध में, घर घर दीप जलाए। और ये जो नज़ारा है, हम लोग तो धरती पर हैं तो धरतीवासी तो देख ही रहे हैं, लेकिन देवता लोग भी तरस रहे होंगे, ललच रहे होंगे यहाँ आने के लिए, क्योंकि हर कोई अवतरित नहीं हो सकता। इसलिए देवलोक में देवता तरसे, देवलोक में देवता हरसे, देवलोक में देवता तरसे, गद गद कंठे लगाए अवध में, हो रहे मंगल बधाए अवध में, घर घर दीप जलाए। और कई बरसन में राम लखन सिया, कई बरसन में राम लखन सिया, अपनी जन्म भूमि आए अवध में, घर घर दीप जलाए अवध में, घर घर दीप जलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ANI के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ललितपुर बुंदेलखंड से आए हैं। अरे हमें राम से मिलने की बहुत खुशी है, क्योंकि आज अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा। मैं मुंबई से आया हूँ हरियाणा से, और मैं बेसिकली आई एम लिरिसिस्ट राइटर, और यहाँ भगवान श्री राम के चरणों में आज बरसों का वनवास तोड़ के अवध नगरी में लौटे हैं राम जी, फिर से लहरेगा रंग केसरिया, राम राज की हो रही है वापसी, सरयू के तट पे लगा उत्सव भारी, पालकी में राम जी की निकली सवारी, एक रंग में रंगा सारा हिंद रे, सिया राम जी में बसते हैं प्राण जी।
So yes, that pretty much encapsulates the mood of the entire nation this morning, doesn't it, Rashmi? Of course, the entire nation soaked in Diwali fervor, and it does feel like Diwali has come very early this year. And why not? That is, of course, the significance of the day today as Ayodhya. These are, of course, the early morning visuals straight from the holy city that we are showing you on your channel, Northeast Live viewers. People already all decked up since the early hours of the morning today to welcome the King of Ayodhya, Lord Ram himself. So these are visuals of cultural troops who are already all decked up and they are ready to perform to the tune of Ram Bhajans. Jai Shri Ram chants are echoing all across the holy city. And of course, Ayodhya has never looked prettier, has it? You know, the entire city has been decked up with flowers, illuminated with lighting. So, you know, this is an absolute sight to behold, Rashmi. What is your take on this? बिल्कुल रौनक, आज से पहले शायद ही अयोध्या इतनी सुंदर लग रही होगी, क्योंकि हजारों फूलों से आज अयोध्या को सजाया गया है राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर। और ये तस्वीरें, जो कल्चरल तस्वीरें आ रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान एक तरफ चल रहे हैं, राम भक्ति एक तरफ चल रही है। ये आज पूरे देश की, सिर्फ अयोध्या की नहीं, आज पूरे देश की यही तस्वीर है। और देश ही क्या, विदेशों में भी इस तरह की तस्वीरें आज आ रही हैं। एक एक कर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम फिलहाल चल रहे हैं। खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाएगा, फूल बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाएगा, फूल बिछाए राम आएंगे। तो पूरी अयोध्या नगरी आज सज चुकी है फूलों से। काफ़ी मनमोहक तस्वीरें, साथ ही सुरक्षा, जो पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं अयोध्या नगरी को। तस्वीरें लगातार आ रही है। आज शाम को एक जिस तरह से दिए जलाए जाएंगे, किसी दिवाली के उत्सव से आज कम नहीं लग रहा है। एक राष्ट्र उत्सव आज मनाया जा रहा है राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर। 12:20 के बाद राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और इस बीच 10:30 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। और उससे पहले तमाम तैयारियां और उससे पहले धार्मिक अनुष्ठान हर जगह, सिर्फ अयोध्या नगरी ही नहीं, हर जगह से धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। Yes, absolutely, Rashmi. It is a labor of love that has made all of this possible, that has made this day possible. It is a labor of love, faith and devotion that has brought to fruition this historic day that we are witnessing here today, viewers. People lining up outside the Ram temple premises. As you can see, these are live visuals coming in from the holy city. Already there is a long queue of devotees and people who are waiting eagerly in line to enter the premises of this hallowed ground. And this is something that one would be forgiven for mistaking to be a festive occasion such as a Diwali, because
it is absolutely no less the way that Ayodhya, not to mention the entire country, has been decked up for the day with flowers and lights and beautiful lights, everything. It just reminds us of those childhood days when we used to flip through pages of beautifully animated books of Ramayana. And of course, we just remember how Ayodhya was lit up when Ram returned from exile after being after exile of 14 years. It just brings back those memories of those pages of those books that we used to read as children. And this, what we're witnessing here today, is quite similar. We're getting live reactions. Let's listen in. कितना सौभाग्यशाली अपने आप को मानना इस जी हम इसके साक्षी बनने आए हैं। हेलो भैया कैमरा बंद करिए। क्या नाम है भैया? अभिषेक। कितनी खुशी हो रही है भगवान रामलला आज विराजमान होंगे प्राण प्रतिष्ठा। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि हम लोग बहुत हम लोग आत्मा से बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, व्यवस्था में जा रहे हैं। भगवान की सेवा का अवसर मिला है, इस नाते हम लोग सब जा रहे हैं वहाँ मंदिर के अंदर। वो ज्यों गू गए मीठे फल को अंतर्गत ही भावे। हम लोग जो अंदर में पा रहे हैं वो कहीं नहीं मिलने वाला है, वो अंदर की अनुभूति हो रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है अयोध्या आए हुए, और हम लोग झांसी से आए हैं निशांत भदौरिया ग्रुप राय लेकर। बहुत खुशी हो रही है और यहाँ के हम सीएम साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और अपने विभाग संस्कृति विभाग को, जिनने हम लोगों को यहाँ मौका दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग इधर पर राई डांस करने आए हैं। राई ने जो बुंदेलखंड का बहुत प्रसिद्ध है, और पूरे ग्रुप के साथ आए हैं यहाँ पर। राई जैसे सरसों की तरह बिखर जाता है, ऐसा डांस होता है, और आपके बीच में हम दिखा रहे हैं आपको। ये हमारी जो नृत्यांगना है, जो लोग डांस करती हैं, ये विधा लुप्त हो रही है, मगर हमारे प्रशासन ने हम लोगों को मौका दिया। आज के लिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य है कि हमारे पूर्वज शायद उस टाइम नहीं होंगे, मगर आज हम उनके वंशज यहाँ पर इस सजी हुई अयोध्या को भव्य दिव्य देख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है और हम लोग बहुत खुश हैं। जी हाँ, आज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे त्रेता युग में भगवान राम अयोध्या आए थे, उस अत्याचारी उस रावण को मार करके, आज ही हमारे लिए वो दिन है त्रेता युग का। जैसा कि जब भगवान राम उस समय आए थे, उसी समय का आज मुझे दिन लगा कि जैसे हमारे मोदी जी आ रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा काम करके दिखा दिया। जी जी, हम 4 बजे से हैं, अभी से नहीं, हम लोग 4 बजे से पूरे हमारे बुंदेलखंड से जो टीम आई है, दिवारी नृत्य की टीम है, वो सुबह से 4 बजे से लगी है मोदी जी की आगवानी के लिए। हम लोग उनकी सेवा के लिए, रामलला की सेवा के लिए आए हैं। वो हमारी लाज रखेंगे, वो सबकी जग की लाज रखने वाले हैं, हमारी भी लाज रखेंगे। जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग वाराणसी से आए हैं बस में, और बहुत दिनों से इच्छा थी कि राम मंदिर के दर्शन हो, बट आज तो नहीं हो पाएगा। बट इस दिन यहाँ पर रह के बहुत अच्छा लग रहा है। सबकी मतलब पूरे इंडिया का ना जो ड्रीम है, जब सब विजिटिंग पे रह गए, मतलब चांस हम लोगों ने विजिट किया है, वो हमारा भी हम लोग बहुत लकी मानते हैं हम अपने आप को। और अभी दर्शन होते नहीं होते दैट इज सेकेंडरी, बट हम लोग यहाँ पर है, वही हम बहुत ना फॉर्चुनेट समझते हैं कि हम लोग आज के दिन इधर है। इट फील्स अमेजिंग टू बी हियर। हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके आए हैं अभी। आज राम जी के उसमें आज प्राण प्रतिष्ठा का भी दिन है। हाँ, आप लोग अपने आप को फॉर्चुनेट मानते हैं कि बहुत ज्यादा बहुत सारे लोग जिनका ड्रीम है कि यहाँ पे विजिट करें, हम यहाँ पे प्रेजेंट है, गेट के सामने प्रेजेंट है। अभी देखेंगे, अभी जब मौका मिलेगा जाके दर्शन भी करेंगे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।
Welcome back, viewers, to this special coverage of the Pran Pratishtha ceremony, which is all set to take place in a matter of hours in Ayodhya today. And with me, I have my colleague Rashmi, who is also joining us for this special coverage. And we are bringing you continuous live visuals from the holy city of Ayodhya. And as you can see, the city is an absolute sight to behold. It has been completely decked up. We have reactions coming in. Let's listen in. जी, बता तो रहे हैं आपको, जिसको जिस कार्य के लिए लगाया गया है उसको समय से पहले बुलाया गया है ताकि आगे अंदर की व्यवस्थाओं को हम लोग मैनेज कर सके, वॉलंटियर्स को लगाया जा सके काम में इस तरीके के लिए, इसलिए हम लोगों को जल्दी बुलाया गया। ठीक, थैंक यू। बिल्कुल रौनक, खूबसूरत तस्वीरें आ रही है अयोध्या से। और सिर्फ अयोध्या ही क्यों, असम में भी आज धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। जगह जगह से हम असम की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। खासकर अगर मैं बात करूं गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी में भी कई मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। हमारी सहयोगी सुष्मिता दत्त भी एक मंदिर में उपस्थित है। सुष्मिता, आपके पास आती हूँ। सुष्मिता, इस वक्त आप किस मंदिर में हैं और क्या कुछ धार्मिक अनुष्ठान वहाँ चल रहे हैं? जी रश्मि, सबसे पहले तो राम राम हमारे सभी दर्शकों को। और शुरुआत करते हैं। आज का दिन बहुत ही अहम है, आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। और इसी कड़ी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुवाहाटी शिलोंग रोड, जो जीएस रोड कहलाता है, वहाँ के एक मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अखंड पाठ चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर। रामचरितमानस यहाँ पे देख सकते हैं और लगातार कल से यहाँ पर पाठ हो रहा है और साथ ही साथ यज्ञ भी हो रहा है। यज्ञ दिखाएंगे हम अपने दर्शकों को। सुबह की तस्वीरें हैं और गुवाहाटी भी इस वक्त अयोध्या से कम माहौल में रमा नहीं है और गुवाहाटी भी इस वक्त अयोध्या धाम में तब्दील हो चुका है, कह सकते हैं। क्योंकि जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, गुवाहाटी वासी भी अयोध्या से दूर रहकर भी वो श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उतने ही उत्साहित है, उतने ही भावुक है इस चीज़ को लेकर। यहाँ पर चल रहा है पाठ और यज्ञ भी चल रहा है। यहाँ के पंडित से जानेंगे कि आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है। सबसे पहले पंडित जी आपसे जानेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? हम लोग आज कल से हम लोग कलश यात्रा के साथ पूजा का आरंभ किया हम लोग। उसके बाद अखंड रामचरितमानस का आरंभ हो चुका है और ये 24 घंटा चलेगा। उसके साथ साथ हम लोग का कल भंडारा कल से आरंभ है, कल से चल ही रहा है। और यज्ञ हमारा होमादि कल से चल रहा है और आज हम लोग का पूर्णाहुति होगा 1 बजे के आसपास। हमारा पूर्णाहुति होगा, अखंड रामायण का पूरा होगा। उसके बाद हम लोग का महाभंडारा चलता रहेगा। उसके बाद महाप्रसाद, सभी भक्तगण आके यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे और अपने भक्तों के मन में इतना उल्लास है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के आने पे। 500 वर्षों के बाद हमारा रामलला अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। इतने कष्ट करने के बाद हम लोग को ज़मीन वहाँ मिला और राम मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जिसके चलते जो भी भक्त वहाँ अयोध्या न जा सके और उसके लिए हम लोग यहाँ एक यज्ञ हवन पूजा सब रखा गया है कि उन लोग का भक्त का यहाँ सब भक्ति भाव से अपना पूजा पाठ कर सके। जैसे और सुष्मिता और भी पंडित यहाँ पर मौजूद जी। हैं। सुष्मिता 12:30 बजे के करीब पाठ है, बहुत से पंडितों का सहयोग भी जरूरी है। यहाँ पर जानेंगे जी। आप भी पाठ कर रहे हैं, क्या कहेंगे? इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बन रहे। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। 500 साल से ये पड़ा हुआ था, जिसका आज हम लोगों के खुशी मिला है। पूरा देशवासी का विश्व में ये कल्याणकारी राम मंदिर है, सब आदमी के कल्याण होगा। और हम लोग इतना सपना देख रहे थे, वो सपना पूर्ण हो रहा है। उसके लिए हम लोग ये जग रामायण ये जो भंडारा कर रहे हैं, वो खुशी में कर रहे हैं। पूरा गुवाहाटी आसाम सब उत्सव में है, हम लोग भी उत्सव में हैं और पूरा देश तो है ही। जी बिल्कुल। इस वक्त जो है गुवाहाटी भी कह सकते हैं कि अयोध्या से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि माहौल वैसा ही बन चुका है। हाँ, पूरा माहौल बन चुका है। कल से ही माहौल हम लोग बना के ऐसे पूरा सहयोग है, पब्लिक का सहयोग है और सबका उत्साहित है ना, मन में उत्साह है। उत्साह के कारण से ही सब एकदम से
मग्न है। अभी से अब लाइन लगेगा जी सुष्मिता, 12:20 से जो है वो शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। 84 सेकंड का अभिजीत मुहूर्त है, क्या महत्व है उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि ये जो अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है क्या महत्व है इसका। रश्मि अपना सवाल फिर से दोहराइए, यहाँ पे थोड़ी आवाज़। जी सुष्मिता, अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। चूंकि पंडित जी आपके साथ है, उनसे आप पूछ सकती हैं कि महत्व क्या है। 12:20 से 12:45 के करीब ये मुहूर्त रहेगा। हालांकि 84 सेकंड का अभिजीत मुहूर्त रहेगा जिस दौरान प्राण प्रतिष्ठा होगी। जी पंडित जी, आप अगर ये प्राण प्रतिष्ठा का पूरा महत्व क्या है उसको थोड़ा सा समझा दीजिए, क्योंकि ये जो 12:45 या फिर 40 मिनट के लगभग का जो समय है उसको लेकर भी लोगों के मन में, क्योंकि बहुत कम समय के बीच में जो है प्राण प्रतिष्ठा करना है, करीब कुछ सेकंड्स है, उसके अंदर ही प्राण प्रतिष्ठा करना है। प्राण प्रतिष्ठा का महत्व बताइए। इसमें बड़ा साधु लोग या बड़ा पंडित लोग एक मुहूर्त निकालता है, जैसे पंचांग में होता है। मुहूर्त जो होता है ना, मुहूर्त के कारण से उतने देर के लिए हाई मुहूर्त, इसलिए उसी मुहूर्त में किया जाता है। हम लोग भी सोचेंगे उसी मुहूर्त में इसको। महत्व बता दीजिए कि आज का दिन का जो प्राण प्रतिष्ठा करने का, क्योंकि इसके लिए बहुत राजनीतिक सवाल भी आते हैं, बहुत सारे। देखिए, बोलने वाला बोलते रहेगा, बोलने वाला का जो इच्छा है वो बोल रहा है। अब महत्व तो जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का महत्व है ना, रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा है उस बढ़िया मुहूर्त में हो रहा है। अब बढ़िया मुहूर्त के होने के कारण से सबका कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा, हम लोगों के भारत का कल्याण होगा, इसलिए ना उस मुहूर्त में हो रहा है। मुहूर्त बहुत बढ़िया है, शुभ मुहूर्त है, बढ़िया मुहूर्त है, इसके कारण से हो रहा है। और जजमान के रूप में भी अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा भी बहुत सारे जजमान है वहाँ पर, हाँ। जैसे कि नाम उनका सामने आया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि अब मेरा कहने का मतलब है, देश का राजा होता है, देश का राजा होता है ना, घर का राजा मुखिया होता है ना, तो घर का मुखिया अगर बैठ जाता है पूजा पाठ में तो सबका कल्याण हो जाता है। और मेरा देश का प्रधानमंत्री अगर पूजा पाठ में बैठ जाएगा तो देश का कल्याण होगा। इस कारण से ही प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री के साथ भी और भी जजमान रहेंगे। हाँ, जजमान जो रहेंगे वो तो साइड में रहेंगे, मगर प्रमुख जजमान जो होंगे हमारा प्रधानमंत्री रहेंगे ना। और प्रधानमंत्री रहने का मतलब सबका राजा है, और सबके राजा जो रहेंगे तो सबका मिलेगा मतलब शक्ति। घर का मुखिया के जैसे होता है ना, घर का मुखिया अगर पूजा पर बैठता है तो सबका मिलता है। जैसे गाछ का जो जड़ होता है, जड़ में पानी डालने से पूरा शाखा में पड़ जाता है, उसी तरह से अब देश का जो राजा है वो अगर बैठेंगे तो सबका शाखा में सबका जल पड़ जाएगा। ठीक है ना। 500 साल बाद आप भी इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बन रहे हैं। हाँ, बन रहे हैं, हम लोग तो एकदम तैयार हैं। भगवान एकदम समय दिए हैं तो उसको लाभ उठाएंगे सब आदमी मिलकर। और जी यहाँ पर सुष्मिता मौजूद है जो कि सुष्मिता, काफी उत्साह वहां दिख रहा है। अनुभव किस तरह का है, क्योंकि आज 500 साल का इंतजार खत्म हो चुका है और कुछ ही देर बचा है प्राण प्रतिष्ठा को, उत्साह कितना है? कहेंगे आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आज राम मंदिर में बहुत ही बड़ा, पूरा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में बहुत ही बड़ा उत्सव हो रहा है। और राम राज्य है और मतलब इतना बड़ा उत्सव है, सब वर्ल्ड में नाम हो रहा है। देखिए बात है, समझाए थे, बहुत अच्छी बात है। आज दिवाली मनेगी। आज दिवाली मतलब आज दिवाली बहुत अच्छी मनेगी, पूरा इंडिया में नहीं पूरा वर्ल्ड में मनेगी, समझाए थे। बहुत ही अच्छा उत्सव आज हो रहा बात है। सुबह में रैली भी कितना पूरा ऑल ओवर इंडिया में नहीं, गुवाहाटी में तो ऐसा रैली देखने को सब नहीं मिला हुआ, मतलब बहुत ही अच्छा उत्सव हो रहा है राम मंदिर का। बहुत अच्छी बात है, सबका, हर आदमी के, हर इसमें जाति लोग कुछ ये नहीं है, सबका एकदम उत्सव बहुत अच्छा हो रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो रश्मि, जैसा कि गुवाहाटी का भी माहौल इस वक्त अयोध्या में हो चुका है, ऐसे
तो जैसे कि कह सकते हैं कि अयोध्या में हो चुका है, यहाँ पर राममय हो चुका है और सवेरे की ये तस्वीरें हैं। और जबकि गुवाहाटी में कल बरसात भी हुई थी और आज काफ़ी ठंड भी है, तो इस वजह से भी क्योंकि लोगों पर कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है इसका, लेकिन लोग बहुत भक्त जो है राम भक्त, वो अपनी जो श्रद्धा है उस हिसाब से मंदिर पहुँच रहे हैं और अखंड पाठ का आनंद ले रहे हैं, अखंड पाठ में शामिल हो रहे हैं। और ये अखंड पाठ जो है 24 घंटे से चल रहा है पिछले, और आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भी ये अखंड पाठ चलेगा। उसके बाद जैसे कि बताया उन्होंने कि महाभंडारा चलेगा और भक्त, काफ़ी तादाद में भक्त इसमें जुड़ने वाले हैं। रश्मि, तो अखंड पाठ चलेगा, महाभंडारा चलेगा। सुष्मिता, ये तस्वीरें आपने दिखाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान आज पूरे असम में चल रहा है। गुवाहाटी के मंदिर की ये तस्वीरें हमारी सहयोगी सुष्मिता दत्त ने दिखाई। अयोध्या नगरी से जो तस्वीरें आई हैं वो काफ़ी खूबसूरत है, फूलों से सजी हुई है और रौनक। अगर मैं बात करूं, आज हमने पूरी बातें की। एक तो जो सुरक्षा इंतजाम है, फिलहाल सुना लेते क्या कुछ कह रहे हैं। आपके शहर में कार्यक्रम है, थोड़ा सा हमारी बात मान लीजिए, आपको बहुत बहुत मौका मिलेगा। मगर 2 लोग नहीं मानते तो 200 लोग और आकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। हमारे काम सुविधाजनक तरीके से हो सके, इसके लिए मेरा अनुरोध है। तो सुरक्षा इंतजाम देखा जा सकता है और साथ ही साधु संतों की तस्वीरें भी आई है। अयोध्या नगरी में आज पहुंचे हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मौका है। तस्वीरें लगातार आ रही है, ये भी सीधी तस्वीरें आ रही है जहां अनुष्ठान इस वक्त चल रहे हैं। Divine experience. No answer, only experience. It's a very divine love and prema, vibration and world peace. Yes, sir. What was the message given to the pupils? People, only solution, Rama's feet. The Rama Charanam, world peace. Shri Rama Charanam, Shri Rama Charanam, Shri Rama Charanam Bhaje.
Welcome back to this special broadcast, viewers, of the consecration ceremony of the Ram Temple in Ayodhya. We are continuously bringing you live visuals from the holy city that is all decked up, and already there is brimming with excitement and enthusiasm ahead of the Pran Pratishtha ceremony, which is scheduled to begin in just a matter of hours from now. मनमोहक तस्वीरें आज अयोध्या से लगातार आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही हनुमानगढ़ी भी काफ़ी प्रसिद्ध है। प्राचीन सिद्धपेट हनुमानगढ़ी को अयोध्या का सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर माना जाता है। हनुमानगढ़ी की तस्वीर आज सुबह की आपको दिखा रहे हैं। ये कहते हैं कि ये वही जगह है जिसे भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दी थी। तो हनुमानगढ़ी की तस्वीरें आपके सामने हैं। आज सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं, काफ़ी मनमोहक तस्वीरें हैं। ये वो जगह है जब लंका से लौटने के बाद राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दी थी, और उसी नाम से फेमस है हनुमानगढ़ी। मेहमानों का आगमन भी शुरू हो चुका है। अयोध्या में कल से ही वीआईपी मेहमान पहुंच रहे हैं। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन भी पहुंच चुके हैं। अयोध्या के लिए दोनों ही निकले हैं। तस्वीरें सामने आई हैं अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की। फिल्मी सितारों का भी जमावड़ा अयोध्या में हो रहा है। साथ ही उद्योगपति भी पहुंच रहे हैं। अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की तस्वीरें। अमिताभ सर, अमिताभ सर। Yes, indeed, viewers, that is none other than the Big B himself arriving in the holy city of Ayodhya. That is just one of the many people from the Indian film industry who have descended upon the holy city for this historic occasion today. And on the screens is, of course, the vehicle of Big B, Amitabh Bachchan himself, who has also just arrived in Ayodhya for the all-important consecration ceremony later today. तो अयोध्या में वीआईपी मेहमानों का आना जारी है। अयोध्या पहुंचने के बाद दक्षिण के प्रसिद्ध अभिनेता चिरंजीवी और उनके अभिनेता पुत्र रामचरण ने अपनी भक्ति जाहिर की है।
चिरंजीवी और उनके बेटे रामचरण भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जहां चिरंजीवी और उनके बेटे रामचरण को देखा जा सकता है। राम भक्ति खींच लाई है अयोध्या तक। मेहमानों के आने का सिलसिला चल रहा है। चिरंजीवी और उनके बेटे रामचरण ने भक्ति जाहिर की है और पहुंचे हैं अयोध्या। It is a historical event. So ఇలాంటి సెరమనీకి శ్రీరాముల వారి ప్రాణ ప్రతిష్టకి ఈ రోజున కుటుంబం సమేతంగా నేను అయోధ్యకు వెళ్ళటం అనేది ఇట్ ఈస్ అ గాడ్స్ గివెన్ ఆపర్చునిటీ ఐ ఫీల్ అండ్ ఇట్స్ అ డ్రీమ్ ఆఫ్ all the Indians for last so many decades. I mean to say more than 500 years, their wishes going to come true. So, ఇలాంటి అకేషన్కి మేము వెళ్ళటము అందులో మేము పార్ట్ అవటం అన్నది ఆ భగవంతుడు మాకు ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశంగా నేను భావిస్తున్నాను. అండ్ ఇది ఇన్ని శతాబ్దాల కళ, భారతీయుల కళ నెరవేరే రోజు ఈ రోజు. ఆ రాముల వారి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ జరుగుతున్నటువంటి ఈ ఈవెంట్లో మేము విట్నెస్ చేయటం, అవకాశం కల్పించినటువంటి దానికోసం ప్రయత్నించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అభినందనీయులే. వారందరికీ నా ప్రణామాలు తెలియజేస్తూ మరీ ముఖ్యంగా ఈ ఈవెంట్కి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ తన చేతుల మీద చేస్తున్న నరేంద్ర మోడీ గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఇది ఇలా జరగటానికి, భారతీయుల కళ నెరవేరటానికి కారణభూతమైనటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారికి, వారి 50 మందికి వెనుకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నా అభినందనలు అండ్ మాకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీకి ధన్యవాదాలు. तो अयोध्या नगरी आज सज चुकी है और बस कुछ घंटों का इंतज़ार, जिसके बाद राम लल्ला की प्रतिष्ठा हो जाएगी। मेरे साथ रौनक भी मौजूद है जो आज दिन भर की तस्वीरें हम दोनों मिलकर आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही घंटे अब शेष बच गए हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त भी आ रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी लगातार चल रहे हैं।
जी बिल्कुल रश्मि, और ये चलते रहेंगे पूरे दिन. These cultural performances that have started right from the early hours today. All right, we're getting live reactions. Let's listen in. क्या प्रदर्शन? हम लोग वैसे तो बढ़ावा कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा समझिए मन उत्सव है. हम नाच नहीं, हमारा मन नाच रहा. हम इतना उत्साहित हैं, इतने प्रसन्न हैं कि हम सबके मन नाच रहे हैं. इसलिए इसको कोई पर्टिकुलर नाम देना उचित नहीं होगा. ये मन उत्सव है, हमारा मन नृत्य है. कितना आर्टिस्ट है आप? हमारे 16 आर्टिस्ट हैं जी. দেখা গৈছে যে 16জন শিল্পী এনেদৰে সৰু So yes, viewers, those are live visuals coming to you straight from the holy city of Ayodhya, and the city has never looked so beautiful, so colorful as it is today. Since the early hours of the morning, even before dawn, even before daybreak, even when it was still dark outside, the city was already buzzing with activity, and as you can see from the visuals how beautifully the entire city has been decked up and adorned, all to welcome the King of Ayodhya, Lord Ram himself, after a wait of 500 long years. And these are cultural troops who are performing. The streets of Ayodhya today have a different energy to them today. There's a different vibe in the streets of Ayodhya today. It's something unlike what we have never seen before in the city, and that is what we are witnessing here today, viewers. These are live visuals straight to you from Ayodhya, and can you feel it, viewers? Can you feel the electricity in the air, which is so palpable at this point in time? And with each passing second, it is getting even more palpable. Emotions are running high. People are filled with happiness and devotion. As you can see, so many different visuals of colorful cultural troops, and of course the Tinseltown stars are also descending one after the other in the holy city for this grand occasion today. On your screen, of course, is the veteran actress and the queen of dance Madhuri Dixit, who is just the latest amongst the Tinseltown stars who have landed in Ayodhya for this grand occasion today. Rashmi, तो कितने सारे मेहमान ऑलरेडी आ पहुंचे हैं और बहुत सारे अभी आना बाकी है. बिल्कुल खूबसूरत अदाकारा भी पहुंच चुकी है. तस्वीरें दिखा रहे हैं हम. ले रहे तो पीछे आ जाओ ना, फिर बंद कर देगा वो. हस्तियां पहुंच रही है. पीछे आ जा. एक तरफ अयोध्या नगरी जहां पूरी तरह सजी हुई है, तो वही मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है. बड़ी संख्या में जो न्योता पहुंचा है, उसी के तहत मेहमान पहुंच रहे हैं. एक के बाद एक तस्वीरें जिस तरह से आती रहेंगी, आपको लगातार हम दर्शकों दिखाते रहेंगे. फिलहाल अयोध्या नगरी, एक दुल्हन की तरह सजी हुई अयोध्या नगरी की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं. साथ ही सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतज़ाम हैं, उसके बारे में भी जिक्र करना यहाँ बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज बड़ी संख्या में जहाँ भक्त पहुँच रहे हैं, मेहमान पहुँच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होने बहुत ज़रूरी है. और इस बीच धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं. सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे इस वक्त.
सृष्टि के कण कण से पूछो तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो द्वार में ये आके आज मारी जाए बड़ी सारी हुई पर तुम्हारी तन्हाई है सवारी संदेश आज खुशियों के हमारे आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घरान आए हैं नजरों की हमारी बनी हुए हैं नैन गुजारी जीवन दुनिया तू मेरे तारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी निर्मल का तुम धन मुरादो तुम ही रामायण मुरादो सब तुझ हर दो मन बिहारी मंगल भवन मंगल हारी Of course, all these live visuals from Ayodhya will keep coming in. For now, let's also take a look at another place which is also fully decked up for this historic occasion today. Times Square in New York, all the way in the United States, has also been illuminated for the Ram Mandir consecration ceremony today. Earlier, members of the Overseas Friends of Ram Mandir distributed laddus at Times Square ahead of the Pran Pratishtha ceremony today, which is scheduled to start at 12:05 p.m. While the Indian diaspora in the United States sang Ram Bhajans at the Sri Radha Krishna temple in North Borough ahead of the Pran Pratishtha ceremony.
तो बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार, जिसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। मैं और रौनक लगातार सुबह 6 बजे से आपको सीधी तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं और लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल स्टूडियो में मेरे साथ एक मेहमान भी मौजूद है, भाजपा प्रवक्ता जयंत गोस्वामी मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत मैं उनका स्वागत करूंगी। जयंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक भाजपा प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक आम इंसान के तौर पर आज के दिन का आपका अनुभव क्या है? आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और बस कुछ ही घंटे शेष है। जय जय राम, जय श्री राम, जय सनातन हरि है। श्रीमंत शंकर, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी का भूमि आसाम से आज हर एक भारतीय को, हर एक सनातनी, विश्व सनातनी को हम हार्दिक स्वागत करता है। रामलला को हम प्रणाम करता है। ये भूमि है, भारत जो भूमि है, ये भूमि एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। ये भूमि साधना का भूमि है, ये दर्शन का भूमि है। ये भूमि ने एक ज़माने में विश्व को नेतृत्व किया था। तो राम जी का आज जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, होने के लिए ये पावन अवसर पर हम हर एक भारतीय को, हर एक सनातनी को हम हार्दिक स्वागत करता है। तो अभी हम इस क्षण में अगर आप इसका थोड़ा आकलन करेगा तो ऐसा दिखाई देगा कि राम जी का जो जीवन दर्शन है वही सनातन है, वही सनातन जो आज विश्व में उसको सराहा जा रहा है, विश्व में उसको अभी एक्सेप्ट कर रहा है। तो उसका जीवन दर्शन में आप ऐसा देखिए, जिस समय में अपना राज्य के लिए अपना पिता को मार देता था, अपना भाई को मार देता था, उसी समय में राम जी का जो दर्शन था, क्या हुआ, उन्होंने अपना पिता का एक शब्द से, एक पिता का एक कथा से वो सारा राज छोड़ दिया, वन में चला गया। उसका भाई जो लक्ष्मण था, उसका साथ सारा सुख छोड़ के उसका साथ चला गया। भरत जो है, जिसको राजपाट मिला था, राजा होने का अवसर मिला था, लेकिन अपना भाता के लिए उन्होंने राजपाट नहीं लिया, उसका शरण पादुका से अपना राज चलाया। तो ये जो नीति है, ये जो दर्शन है, ये दर्शन अभी भारत का जो ये विश्वव्यापी दर्शन है, उसको अभी सराहा जा रहा है। सारा वर्ल्ड, ये विश्व अभी राम राम जय जयकार कर रहा है। Right. So, first of all, Mr. Jayant Goswami, thank you for giving us your time on this very auspicious occasion today, and welcome to Northeast Live. My question to you, Mr. Goswami, is also on similar lines. You know, as a layman, as a common man of this nation, of this great nation, you know, what is your first reaction? What is the first thought that comes to your mind when we talk about the significance of the day that is upon us today? How does it feel to be such a big part of history in the making, Mr. Goswami? See, from the land of Srimanta Sankardev, Mahapurush Srimanta Sankardev, I prayed Lord Rama to speak some slok of Kirtana, which is written by Mahapurush Srimanta. Mukhe bula Ramo, Krishna Honatana Hori, Hori hobo lila kotha huna korna bhori. तो रामेखे जीवन और रामेखे प्राण रामो बिना नहीं बांधव आनो. Mr. Goswami, I would just like you to hold on to your thoughts there. We'll come back to you in a minute. But for now, viewers, we are going to cut across live to two of our correspondents who are joining us live at this point in time. We have along with us Pinaki Das joining us live all the way from Agartala in Tripura. First of all, Pinaki, very good morning to you. It is such an auspicious occasion, a historic day for the entire nation, not to mention the world. Tell us a little bit about the mood in Agartala this morning. What is the mood like? Are people feeling the emotion in the air? What is it like over there right now? Give us the overview. Good morning, and we should say today Ram Ram. In Agartala today, I can say that the emotion is there in the air. We can see the city has been flooded with this
saffron flag or with Rama's picture in it, and God Ramas. And right now I am at Ravindra Satavarsiki Bhavan, and just behind me on the left side is the Durgavari temple, where a Havan or Yagna has been arranged. And at around 10:30, lot of dignitaries, including the Chief Minister, is scheduled to attend that. And other than that, there are rallies have been arranged, and at different places there are in the different temples and different corners of the city, there will be small puja on the occasion. And the city has been decorated with flags, and you can see just behind me some of the cutouts of God Rama. Those has been installed for this day, this special day, as they say, it's more than 500 years struggle, after which Goddess Rama's statue or the idol will be there in where he was born, that is Ayodhya. And this is a big day for particularly those who believe in Sanatan Dharma, or you can others say Hindu Dharma also. Absolutely, Pinaki. You know, the significance of the day cannot be put into words, because it has been a long wait of 500 years. It has not been an easy journey, but we are here today. We are finally here, and it feels so good to be a part of history, to be such a part of such a significant part of history of our great nation. If we have our colleagues Sushmita Datta and Prakash Adhikari also joining us at this point in time, we can cut across live to them as well. If we have Prakash Adhikari, who is joining us from all the way from Gangtok, the capital of Sikkim, joining us, we can cut across live to him as well. All right. I'm connected with my colleague Sushmita, who is joining us from the streets of Guwahati, and already we can see that there is a procession that is already underway. It is looking very colorful. Sushmita, आपका जो scarf है वो काफी color वो मिल रहा है जो procession चल रहा है उसके साथ. Please give us more details of what we are seeing on our screens, Sushmita. Take it away. Yes, Ronak, what are you saying is absolutely right. इस वक्त मैं फैंसी बाजार में मौजूद हूँ. आप इस रैली का साइज देख सकते हैं और राम भक्तों का जो जोश है वो भी देख सकते हैं. आप बस इस रैली को फॉलो कीजिए कि कितने मास अमाउंट ऑफ पीपल यहाँ पर निकले हैं. लोग किस तरह यहाँ पर हुजूम बना है लोगों का, और सभी लोग जयकारे लगाते हुए राम के निकल चुके हैं घर से अपने. और ये रैली जो है बहुत ही ज्यादा, मुझे कुछ कहना है. जय श्री राम, 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 जय श्री राम. देख सकते हैं वयस्क, बच्चे, महिलाएं. सुष्मिता, जयकारे हम सुन रहे हैं. निकल रही है ये सुबह जो यात्रा निकल रही है, कहाँ से कहाँ तक निकल रही है? यहाँ ये बात के लिए हम जानना चाहेंगे. सभी लोग इस वक्त उत्सव के माहौल में हैं. ये जो रैली है आप लोग का, कहाँ से कहाँ तक जा रही है? फैसलेदार में. क्या कहेंगे आज का रैली का महत्व क्या है, किस तरह से महसूस कर रहे हैं? बढ़िया महसूस. जो हमने 500 साल इंतजार किया है वो आज खत्म हुआ है. आज खत्म हुआ. तो आज के दिन हम सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम. देख सकते हैं किस तरह से आज का माहौल बन चुका है. सुबह ही यहाँ पर के आज लोग कह रहे हैं कि आज हम एक ही बात सिर्फ बोलेंगे, और वो है जय श्री राम. तो और यहाँ पे वयस्क भी मौजूद हैं. क्या कहेंगी आज का दिन ऐतिहासिक? बहुत बढ़िया. मेन वो है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. जय श्री राम. आज कैसा महसूस कर रहे हैं?
बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, बहुत अच्छा, ऐतिहासिक जैसे भगवान हमसे मिलने आ गया। बस राम जी के जयकारे सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक ही नारा, राम जय श्री राम, क्या बोलोगे? सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। हम नहीं सुनिया, हम नहीं सुनिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के जयकारे के साथ ये निकल रही है शोभा यात्रा। सुष्मिता, आप बने रहिए, फैंसी बाजार की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप भी लगातार उनके साथ ही चलते रहिए। लेकिन इस वक्त मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगी कि सिक्किम में क्या चल रहा है, क्योंकि सिक्किम में भी हमारे संवाददाता प्रकाश अधिकारी हमसे जुड़ चुके हैं। जी प्रकाश, वहाँ किस तरह का माहौल है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? क्या वहाँ भी मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं? अलग अलग तस्वीरें आपको, जगह जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिक्किम में किस तरह का आज माहौल है, चूँकि पूरा देश ही आज राममय हो चुका है। पूरे देश में श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं, हर कोई भक्ति में लीन है। तो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, जगह जगह से सिक्किम से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां धार्मिक अनुष्ठान किए गए हैं, देख सकते हैं। और कुछ ही देर में हमारे संवाददाता प्रकाश अधिकारी भी हमसे जुड़ जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा लें, सिक्किम की है। सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठान यहाँ भी किए गए हैं, पूरे देश में ही किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी उसी तरह का माहौल है, जहां पूरा देश, पूरा विदेश आज राममय बना हुआ है। तो पूर्वोत्तर में भी उसी तरह का नज़ारा कमोवेश हर जगह देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर पहले हमारी जो गुवाहाटी की हमारी सहयोगी सुष्मिता दत्त ने फैंसी बाजार की तस्वीरें दिखाई। उससे पहले त्रिपुरा के संवाददाता पिनाकी दास ने भी वहाँ की तस्वीरें दिखाई, किस तरह का माहौल है वहाँ पर। और फिलहाल ये तस्वीरें सिक्किम से आ रही है। प्रकाश अधिकारी हमारे संवाददाता यहाँ से हमसे जुड़े हुए हैं। प्रकाश, माहौल हम देख ही रहे हैं, जयकारे गूंज रहे हैं। किस तरह के धार्मिक अनुष्ठान आज किए जा रहे हैं और ख़ासकर किस मंदिर में आज धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है? संपर्क हमारे संवाददाता से फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। सिक्किम की ये तस्वीरें हैं जहां धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं, आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि अब महज कुछ ही घंटे शेष बचे हैं, जिसके बाद अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और उससे पहले ही पूरा देश राममय हो चुका है। राम, जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं, राम ध्वनि हर जगह सुनाई दे रही है। रौनक Yes, indeed, Rashmi very rightly said. Of course, we will keep bringing to our viewers all the live visuals from Ayodhya itself. But apart from that, we are also showing our viewers. All right, live reactions. Let's listen. हम इस बात का प्रतीक है कि भगवान राम यहाँ पधार रहे हैं। श्री अयोध्या में नहीं बल्कि सिक्किम की पवित्र भूमि में भी श्री राम पधार रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सिक्किम की सारी जनता खुशी है, सिक्किम की सारी कम्युनिटीज हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में भाग ले रही है। हमारी 21 कम्युनिटीज यहाँ पे भाग ले रही है। और आज इस कार्यक्रम में अभी शोभा यात्रा 9:40 पे मुख्यमंत्री महोदय 0 पॉइंट पे आएंगे और वहाँ से उनकी यात्रा शुरू होगी। और ये पूरा चक्कर गैंगटॉक का एक चक्कर लगा के हम एमजी मार्ग में यहाँ पे पहुँचेंगे। और यहाँ पे फिर सीधा प्रसारण अयोध्या से यहाँ पे सभी को दिखाया जाएगा। और मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा राष्ट्र हमारे सिक्किम स्टेट के बिहाफ में वो पूरी आरती करेंगे। इसलिए आज हम इस खुशी के मौके पर सारी भारतवर्ष की जनता और स्पेशली सिक्किम की जनता को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और शाम को भी कुछ कार्यक्रम होगा, भजन का कार्यक्रम ऐसा कुछ रखा है। शाम का हमारा दीपोत्सव का कार्यक्रम है। 1251 दियों से पूरा जगमगा उठेगा और शाम की आरती में 1251 लोग आरती करेंगे एक साथ।
ये बहुत बड़ा और सारा गैंगटॉक जगमाएंगे। जी हाँ, ये थे राम महोत्सव के प्रेसिडेंट रमेश परिवाल जो बता रहे थे 9:40 से 0 पॉइंट से एक रैली यहाँ पर आयोजन होगा जहाँ मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग खुद सहभागी बनेंगे। और आप देख सकते हैं कि एमजी मार्ग जो गैंगटॉक के हार्ट ऑफ द सिटी है, एमजी मार्ग पर अभी लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर जो एक राम मंदिर का रेप्लिका बनाया गया है, उस रेप्लिका में लोग आके पूजा अर्चना शुरू कर चुके हैं। और थोड़ी देर बाद गैंगटॉक के 0 पॉइंट से तिब्बत रोड होके एमजी मार्ग तक एक बृहद सांस्कृतिक झांकी का भी प्रस्तुत होगा। रौनक जी प्रकाश, जो एक शुभ मुहूर्त है आज प्राण प्रतिष्ठा का, क्या उस दौरान सिक्किम में भी किसी तरह का खास आयोजन, क्योंकि एक समय जो है वो निर्धारित है कि इस समय में प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में, तो उसी के संग संग क्या सिक्किम में भी कोई खास आयोजन उस वक्त? जी हाँ, जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी उसका सीधा प्रसारण गैंगटॉक पर होगा, जिसमें मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग खुद सहभागी बनेंगे। सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष अरुण देवी उपस्थित रहेंगे। तो एक बड़ी सांस्कृतिक झांकी जो गैंगटॉक के 0 पॉइंट से शुरू होगा मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, और वहां से तिब्बत रोड होके एमजी मार्ग तक होगा। जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगा, राम मंदिर का, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो इसका सीधा प्रसारण गैंगटॉक के एमजी मार्ग में किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश अधिकारी, जो तस्वीरें आप हमारे लिए लेकर आए। आप बने रहिए, हम फिर से आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा लेते हैं। अखंड पाठ कहीं तो कहीं धार्मिक अनुष्ठान, हर तरफ एक ही नज़ारा आज चूँकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। महज कुछ समय का और इंतज़ार। फैंसी बाजार की इस वक्त तस्वीरें आ रही है रौनक। जी बिल्कुल रश्मि, and right now we are showing you live visuals from the streets of Guwahati. This is the Fancy Bazaar area in Guwahati to be precise. So here too, as you can see, people are out and about, and a sea of saffron can be seen on the streets of Guwahati, viewers, just like the rest of the nation, as the entire country soaks in this historic occasion today, as the Pran Pratishtha ceremony is just a matter of hours away from us. Now we are almost, that historic moment is almost upon us. 12:05 p.m. That is the time, viewers, when officially the Pran Pratishtha ceremony will begin, presided over by none other than Prime Minister Narendra Modi. Rashmi, इस वक्त क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी पहुंच चुके हैं। एक एक कर मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और इस वक्त पहुंच चुके हैं सचिन तेंदुलकर भी। तस्वीरें लगातार अयोध्या से आ रही है और गुवाहाटी से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फैंसी बाजार की ये तस्वीरें हैं जहां शोभा यात्रा निकाली गई है। राम नाम के जयकारे गूंज रहे हैं। लगातार हमारी सहयोगी सुष्मिता दत्त भी इस शोभा यात्रा के साथ चल रही है। so yes, indeed, viewers, apart from Ayodhya itself, where we will continuously bring you the live visuals, we are also showing you visuals from across the northeast, where too a very festive atmosphere can be seen from the early hours of the morning today. People who are in the northeast here too, there's a sort of atmosphere here that makes it feel like we are not too far away from Ayodhya, isn't it, Rashmi? People are so in a mood that that has rarely been seen before. The Pran Pratishtha ceremony of Ram Lalla has brought together and the entire nation like it has never done so before, and it has completely transcended communal boundaries as well, isn't it? You know, we saw the visual from Sikkim as well, where, as the man was saying, it has united communities, people cutting across various communities, people speaking different languages have all come together today for this very historic and auspicious occasion. Rashmi जी बिल्कुल, आज राममय हो चुका है पूरा देश और हर जगह सिर्फ जय श्री राम की जयकारे।
Welcome back, viewers, to this special coverage of the consecration ceremony of the Ram Mandir in Ayodhya. We are just a matter of hours away before the Pran Pratishtha ceremony gets well and truly underway. But even before that, several hours before that, the atmosphere is already electrifying. Lord Jai Shri Ram chants are reverberating across the air, no matter where you see. If you talk about Guwahati, if we talk about Tripura, if we talk about Sikkim, everywhere across the northeast, not to mention the entire country, is up in celebration for this historic and joyous occasion. We have with us in the studio at this point in time BJP spokesperson Mr. Jayanta Goswami, who is also joining us live on this very special occasion. Mr. Jayanta Goswami, once again, I would like to get a first reaction from you. How does it feel to be part of history today, Mr. Goswami? You see, the Ramji is the role model of perfect human beings. As well as, you see, he is the symbol of justice. What the Mahapurush Srimanta Shankardev stated, that Ramokhe Jibon, Ramokhe Pran, Ramo Bine Nai Bandhavan. It means that Ram is the life and Ram is the Pran. It means Atma. And without Ram, we cannot survive. The Bhakat cannot survive. The devotees cannot survive. The Indian people, Sanatani people cannot survive. This is the philosophy of Sri Ramchandra. Therefore, I am very much proud that I am entertaining. I am the witnesses for this auspicious occasion, that Pran Pratishtha of Ram Lala today which will be held in Ayodhya. बिल्कुल जयंत जी, काफ़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम प्राण प्रतिष्ठा होते देख रहे हैं राम लल्ला की, और कुछ ही देर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। जयंत जी, मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कल उन्होंने कहा था कि धर्म की नहीं सभ्यता की जीत है। किस तरह से देखते हैं? हाँ, आप देखिए, कल हमारा मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बात बोला कि उन्होंने अपील किया, जो इस्लाम धर्म का लोग है, जो मानता है, ईसाई जो मानता है, उनको भी बोला कि ये जो आज का दिन में आप थोड़ा स्पेशल प्रेयर कीजिए अपना मस्जिद में, अपना गिरजा में, क्योंकि इस दिन के लिए हम लोग रुका हुआ था। क्योंकि देखिए, ये जो सभ्यता का जीत है, जो इंडियन द विनिंग ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन फिलोसफी, इंडियन वर्शिप, this is the you can say it that the winning of Bharatiya Tattva. This is the Bharatiya Tattva, and therefore this is not just like the religious occasion. It is the occasion of it is the proud moment of all the Indians and all the Sanatani, all the peoples belongs to the Sanatani Dharma, and therefore our Chief Minister rightly stated, and he also stated that he also appealed to all the people of this state and that to celebrate this moment, because this is the winning of Indianism. It is the winning of Bharatiya Tattva. ठीक है जयंत जी, आप कह रहे हैं भारतीय तत्व की जीत है, सभ्यता की जीत है। और जहाँ तक मैं बात करूँ पीएम मोदी की, तो उनकी एक खास बात ये रही है कि हर उत्सव हो, चाहे वो कोई भी उत्सव हो, देशवासियों को शामिल करते हैं। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा आज होने जा रही है, पूरे देश को शामिल किया गया है, राष्ट्र को शामिल किया गया है। क्या कहूँ मैं इसे, राष्ट्र उत्सव है, सनातन धर्म का उत्सव है, क्या कहूँ? नहीं, ये राष्ट्र उत्सव है, ये राष्ट्र का जीत है। क्योंकि अब देखिए, जब मुगलों ने, और ये जो बाबर कौन था, वो बाबर था, आक्रांता था। इट मीन्स वो बाहर से आया था, वो हमारा सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ आदमी नहीं था, जुड़ा हुआ लोग नहीं था। उन्होंने हमारा जो सभ्यता का सबसे उच्च शिखर वाला राम जी का मंदिर को तोड़वाया और खुद का मस्जिद बनाया। कोई इस्लाम में भी बहुत सारा इस्लामिक पंडित बोलता है कि ठीक है जयंत जी, इस वक्त लाइव तस्वीरें हमारे पास आ रही है अयोध्या से, और ये तस्वीरें देख सकते हैं फैंसी बाज़ार से। इस वक्त तस्वीरें आई हैं गुवाहाटी के फैंसी बाज़ार से। ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। तस्वीरें लगातार आ रही है, आज लाइव विजुअल्स हम लगातार आपको सुबह से दिखा रहे हैं।
जी बिल्कुल रश्मि, these are visuals from the streets of Guwahati. Hard to believe because this is a visual. This is a sight of Guwahati that is rarely that we rarely get to see today. Of course, that just goes to show how significant the day is for every Indian, and the scenes coming in from Guwahati are no different than the rest of the nation, isn't it? You know, people in large numbers, all draped in a sea of saffron, holding flags of Lord Sri Ram in their hands, are out on a procession on the streets of Guwahati. These are of course visuals from Fancy Bazaar, and devotees in the hundreds are out in the streets, and this it's just a little it's just 15 minutes before the clock strikes 9 a.m. in the morning, and of course the Pran Pratishtha ceremony is scheduled to take place at 12:05 p.m. But from the early hours of the morning today, viewers, these are the visuals that we are getting to see from all across the nation. People are out and about from the early hours of the morning. It's a real cold morning here in Guwahati today, as well as in several other parts of the northeast, but that has not put a dampener on the spirit of the people, as is clearly visible. The cold has done nothing to dampen the spirit of these people, and why not? Because this has been a long wait for the entire nation. This has been a wait that cannot be put into words. 500-year long wait, and yes, that is just visible on the screen, viewers, how much this day means to every single one of them. All right, my colleague Sushmita Datta is right there alongside these enthusiastic people on the streets of Guwahati in Fancy Bazaar. Sushmita, we can already make out what an electrifying atmosphere it is right there where you are right now. Tell us more. What are you feeling? How are the people feeling over there? श्री राम, मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के मैं दिवाली बनाऊंगी, दीप जला के मैं दिवाली बनाऊंगी। मेरे कर्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे कर्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो बल ना झुलाऊंगी, राम आएंगे तो बल ना झुलाऊंगी। मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जाने के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। Sushmita, if you can still hear me, it's obvious that the people cannot be bothered to say much more other than Jai Shri Ram at this point in time, as everybody is absolutely immersed in devotion and prayer, and of course happiness as well. At the same time, we are continuously bringing you all the live visuals from Ayodhya, of course, but also from the different corners of the northeast as well, where people are in equal amounts of celebration and gaiety for this historic occasion today.
course, not to mention the who's who has landed in Ayodhya ahead of the consecration ceremony today. So celebrities who have been invited to attend the Pran Pratishtha ceremony have started descending on Ayodhya. Actor Madhuri Dixit along with her husband Dr. Madhav Nene were spotted leaving for Ayodhya this morning. And Bollywood actors and celebrity couple Vicky Kaushal and Katrina Kaif were also spotted leaving for Ayodhya from the Mumbai airport. And actor Ayushmann Khurrana was also spotted leaving for Ayodhya early this morning. And of course, the little master, the legend himself, Sachin Tendulkar, also left for Ayodhya just a short while ago. Take a look. All right, we are getting reactions from singer Kailash Kher on this historic occasion. Let's listen in. तो कैसा उत्साह है? अयोध्या जा रहे हैं, भगवान राम आ रहे हैं। उत्साह तो बहुत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे देवलोक से ही बुलावा आया है और परमात्मा ने बुलाया है। और आज का दिन इतना शुभ है, आज की घड़ी इतनी शुभ है कि न केवल भारत में परंतु तीनों लोकों में उत्सव मन रहा है। न केवल मानव जाति में बल्कि समस्त जीव जंतुओं में उत्सव मन रहा है। पेड़ भी नाच रहे हैं, आप दंग हो जाएंगे। सामान्यतया फ्लाइटें डीले होती हैं, लेकिन आज का दिन देखिए आप, कुदरत ने बिफोर लाके ऐसे पलट दी। क्यों? क्योंकि मेरे महादेव कह रहे हैं मेरा बच्चा जा रहा है भगवान राम के अवतरण के लिए, मैं अपनी हथेली बढ़ा लेता हूँ, उसी पर उतार लेगा जहाज। तो ऐसे उतरवाया जहाज बाबा ने। सर कल आप हरियाणा में थे और रात हम हरियाणा में थे, रात भर जागे हैं। उसके बाद भी 1 घंटा सो के भी ऐसा लग रहा है जैसे 100 घंटे सो के आए हूँ। सर वो कौन सा गाना था इस पे लाखों लोग झूम उठे? अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। अरे जल थल गगन मंडल में राम, राम ही पार लगावेंगे, राम ही पार लगावेंगे। वहाँ सब मंगल है, वहाँ कोई अमंगल नहीं हो सकता। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवु सुदशरथ अजर विहार। तो राम के नाम पर मत डराओ कि इस घड़ी मुहूर्त शुभ नहीं है। जहाँ राम है वहाँ शुभ ही शुभ है। टेंट से राम दिव्य भव्य मंदिर में आ रहे हैं। गर्भगृह का पूरा निर्माण हो चुका है, शिखरबद्ध मंदिर भी पूरा खड़ा हो चुका है, शिखर पर कलश भी जल्दी लग जाएगा। और ये राम मंदिर का निर्माण मात्र नहीं हो रहा है, ये राम राज्य की ओर राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। राम जैसी मर्यादा, राम जैसा चरित्र, राम जैसा आचरण।
Welcome back to this very special broadcast, viewers. We are bringing you continuous live visuals as we count down to the Pran Pratishtha ceremony of the Ram Mandir. The Pran Pratishtha, of course, will take place at 12:05 p.m. And in the meantime, we are showing you visuals from all across the nation, not to mention the entire world, where people are up in celebration, coming together like never seen before for this historic occasion today. People cutting across communities, people speaking different languages, people following different faiths even, have all come together. People are standing united today in all corners of the world like very rarely seen before. And this is all because of how historic and significant the day is, isn't it, Rashmi? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तस्वीरें जो है विदेशों से भी जो आई है, तस्वीरें काफ़ी मोहक करने वाली है। और ये तस्वीरें इस वक्त लाइव तस्वीरें आ रही है, अनुष्ठान चल रहे हैं, देश विदेश की तस्वीरें आपको आज हम लगातार सुबह से दिखा रहे हैं। मैं और रौनक आपको लगातार दिखा रहे हैं सुबह से ही ये धार्मिक अनुष्ठान की तस्वीरें। विश्वपद्गते तारानामीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशाय। ॐ तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो देवी चक्षुरा ततं। ॐ तद्विष्णु परमं पदं माधवो माधव वाची माधवो माधवरीति स्मरन्ति साधव सर्वकार्येषु माधवम्। ओम कृष्ण वै सच्चिदानंद गण वज्जयत् मंगलं तत्लवते कृति। ओम स्वस्ति न गोविंद स्वस्ति न अच्युतानंदो स्वस्ति न वासुदेव विष्णुर्दधातु स्वस्ति न नारायण। अयोध्या अयोध्या मेरे प्यारे और ये जो निशान यात्रा निकली है इसमें सब स्व इच्छा से आए हैं, सब दल संगठन के लोग आए हैं यहाँ पे। आज पूरा गुवाहाटी राम में हो गया है। कितने लोग लगभग यहाँ पे जुड़े हैं? जैसे कि हमें तो हजारों की तादाद में दिख रहे हैं। यहाँ पे कम से कम भी 3 से 4 हजार लोग यहाँ पे स्व इच्छा से आए हैं। सब राम की भक्ति में आए, सब राम भक्त है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों ने गुवाहाटी के इस इलाके को अयोध्या बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज पूरे भारत का गली गली कण कण अयोध्या है, केवल गुवाहाटी नहीं, हर एक घर अयोध्या है। सबके घर में राम आएंगे। आज कुछ ही क्षण में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में समारोह भी होना है। उससे पहले बहुत सारी ऐसी बातें, राजनीतिक बातें भी आ रही थी, उसको लेके आज राजनीति की बातें ना करें तो अच्छा है। आज धर्म की बातें करना चाहिए और जो राजनीति की बातें करते हैं उसे राम जी नकार देंगे। आज आप लोगों ने राम
राम यात्रा निकाली है और दूसरे लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उनके बाद में आज अशुभ नहीं बोलना हमें, आज कुछ भी अशुभ नहीं बोलना, सब शुभ करना। शुभ दिन है, शुभ बात करिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सुष्मिता, क्या आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। फैंसी बाजार से तस्वीरें लगातार आ रही है, अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही है, अयोध्या से तस्वीरें आ रही है। अयोध्या अच्छे हस्बैंड, ऐसे सब जगह एक आदमी को जितने भी लाइफ में होना है वो सबका आदर्शवादी राम है। वो राम का जन्मस्थल पे आज उनका विग्रह प्रतिष्ठान हो रहा है, उसके लिए गर्व है। और मैं इस संदर्भ में वो देवल इधर दर्शन करने के लिए आया हूँ और त्रिपुरा के सभी लोगों को इसका अनुभवी करके वो आगे जाएंगे और राम का आशीर्वाद सबके ऊपर रहेगा, यह मेरा विश्वास है। ये टेम्पल बहुत अच्छा टेम्पल है, अच्छा मेंटेन कर रहे। मैं जो रोज़ नित्य अन्नदान करने का किचन भी देखा है, बहुत नीट है और गौशाला मेंटेन कर रहे, गौशाला भी बहुत अच्छा है। ये टेम्पल कमेटी को मैं फिर एक बार उनका धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। फैंसी बाज़ार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुवाहाटी के फैंसी बाज़ार का ये माहौल सुबह से आप देख सकते हैं। हमारी सहयोगी सुष्मिता दत्त वहाँ लगातार मौजूद है और हमें वहाँ की तस्वीरें वो लगातार दिखाती आ रही हैं। भक्ति में सराबोर है सभी। राम फेरी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। फैंसी बाजार की ये तस्वीरें हैं। पूरा असम, पूरे देश के साथ ही पूरा असम भी आज राममय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 10:30 बजे के बाद अयोध्या पहुंचने वाले हैं। जो उनका शेड्यूल है उसके हिसाब से वो 10:30 बजे के करीब अयोध्या पहुंचेंगे। और जहां तक हम बात करें विधि विधान की, तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि आज दोपहर 12:20 से शुरू होगी। सब हुए मगन हर्षाए हैं, सब हुए मगन हर्षाए हैं। श्री राम अयोध्या आए हैं, 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 श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम सिया राम सिया राम। Right, and along with the rest of the country, a procession was carried out by the devotees in Pasighat in Arunachal Pradesh as well. Hundreds of people took part in the procession while chanting Jai Shri Ram, marking the inauguration of the Ram Mandir at Ayodhya today. तो पासीघाट से भी ये तस्वीरें आई है जहां शोभा यात्रा निकाली गई है। आज राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है उस मौके पर देश भर में जय श्री राम की जयकार। असम के विभिन्न स्थानों से तस्वीरें आई है। ये तस्वीर इस वक्त आ रही है फैंसी बाजार से। 500 साल का इंतज़ार आज खत्म हो रहा है और राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। गर्भगृह में 18 जनवरी को ही स्थापित कर दिया गया था और आज प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। शुभ मुहूर्त है, 12 बजे से शुरू होगा विधि विधान।
राम भक्तों का उत्साह देख सकते हैं, चरम पर है उत्साह। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है अयोध्या में, और उससे पहले इस तरह की तस्वीरें गुवाहाटी के फैंसी बाजार, जो कि एक वेस्ट इलाका है, वहाँ पे आज देख सकते हैं। आज बिल्कुल अलग नज़ारा है। इस वक्त जब फैंसी बाजार में व्यवसायियों की भीड़ होती है, आज वहाँ राम भक्तों की भीड़ है। Right, so these are live visuals coming in from Fancy Bazaar in Guwahati. Now, we are being joined by our executive editor, Louis Neil Dong, who is in Ayodhya for all the live visuals and all the live updates. So, Louis, how is the atmosphere there? Must be very exciting and electrifying at the moment. Give us more. Yes, you can see the visuals right in from Ajodhya. All the way from here to the Ajodhya Ram temple. Garlands have been laid all around the stadium, and there are also cultural groups performing. The Pran Pratishtha will take place at 12:40 to 1 p.m. where Prime Minister Narendra Modi will attend the program, and where the Abhijit Muhurta is from 12:29 seconds to 12:30 32 seconds, and the idol which has already been placed in the temple. That in the temple already been placed in the sanctum sanctorum, and the Prime Minister and other 4 persons will be there. And right now you can see the live visuals from Ajodhya where the cultural groups are performing, because it is a day that the people have been waiting for the last 500 years. The Ram Lala has been returning to his temple, and the Pran Pratishtha will take place. And you can see all the people from all the way from across the country are reaching here in large numbers to attend the program, and also they feel blessed that they are right here in the Ajodhya when the Pran Pratishtha ceremony will take place. You are seeing these people, this artist troupe from Jhansi, they will be performing like this during the Pran Pratishtha ceremony. You can see the live visuals. जी बिल्कुल, ये लाइव तस्वीरें आ रही है इस वक्त अयोध्या से, लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें, सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ चल रहे हैं। हमारे तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं इस वक्त अयोध्या से। Yes, ahead of this Pran Pratishtha event, ahead of the Pran Pratishtha event, there is a carnival-like atmosphere you can see in Ajodhya, because we have been here for the last 8 days, and this atmosphere, it's really one of the spiritual and the devotional atmosphere you can see. And besides this, security has been heightened in Ajodhya. 7-layer security system has been placed because the Prime Minister will be here, where SPG has been looking over all the security system, and Rapid Action Force Jawans, anti-terrorist squad, snipers, Uttar Pradesh police, then SDRF, NDRF, and fire brigade, everything has been put in place so that no untoward incident take place. So, but the scene here is, you can see the carnival-like atmosphere, because in Ajodhya tonight there will be a light and leisure show, and devotees, they have been already shouting slogans. They are doing arati at the Sarju Ghat, which is around 100 meters away from this place. In the Sarju Ghat, there are about 150 women will take the kalash to the Ram temple, where
the Ram Mandir, in the Ram Mandir Pran Pratishtha ceremony will take place. Prime Minister will also address the gathering from 1 p.m. to 2 p.m. So everything is ready. Ajodhya is all decked up for the great occasion, and you can see these cultural troops are performing right in this rampart. Absolutely. And Louis, as you very rightly mentioned, a carnival-like atmosphere is clearly visible in Ayodhya today. And why not? That this has been a long wait of 500 years for the nation. And finally, what we are witnessing here on this historic day, that is a representation of the kind of significance that this day holds for every Indian. Wouldn't you say so, Louis? अयोध्या नगरी पावन धाम विराजे मेरे प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी पावन धाम विराजे मेरे प्रभु श्री राम जय श्री राम 14 वर्ष बिताए वन में बसे रहे प्रभु सी के मन में 14 वर्ष बिताए वन में बसे रहे प्रभु सी के मन में And I also like to mention the Prime Minister has been observing a series of strict 11-day religious rituals to prepare for the consecration ceremony that will take place at 12:40 to 1 p.m. when the Prime Minister will attend the ceremony. And this historic Pran Pratishtha ceremony will also attended by representatives of all major spiritual and religious sects of the country, and people, you can see the people from all walks of life, including representatives of various tribal communities, are also here, and also they will attend the ceremony because more than 8,000 guests have been invited to this program. So Prime Minister will interact with the laborers who have been building the Ram temple, and around after 2 p.m. he would visit the Kuber Tila, where one ancient temple of Lord Shiva has been restored. So everything has been decked up. A spiritual atmosphere has been put in. I have seen this spiritual atmosphere. People with devotion, they are coming from different parts of the country with large numbers, and they are waiting because there is only 3 hours left for the event. It is 10 minutes past 9, and the Pran Pratishtha program or the ceremony will take place from 12:40 to 1 p.m. where the visit muhurta is of 12:29 to 12:30. That 84 seconds, the Ram Mandir in the Lord Ram Pran Pratishtha ceremony will take place where 5 persons, including Prime Minister Narendra Modi, will attend. Right. So, Louis, if you can hear me, what you're witnessing, what we are all witnessing on our screens right now, and you are right there in Ayodhya, would you say that this joyous atmosphere is proper representation of what this day means for the people? It has been a long wait of 500 years. So, does this all, do you think that this is representative of how much this means to the people, Louis? Yes, for the 500 years people have been waiting for, because in the Treta Yuga, you can say after 14 years, Lord Ram has returned to Ajodhya, and the roads have been illuminated, Diwali-like atmosphere took place. And after 500 years, people have been waiting for with devotion, because you can hear the hymns of the Jai Sri Ram, Jai Hanuman. You can see the marigolds and the garlands have been put in place, and all the from here to the Ram temple, all the way. Everyone is excited for the moment. Everyone is praying with hands folded. They have been waiting for this moment. So people from all sects of life, you can see, from the general people to the businessmen, to the spiritual leaders, the Adhyatmic gurus, everyone is here, because for them, Ram is not a god. For them, Ram is the part of their life, because they, from the birth to the death, one person, they think that Ram is their life, and that's why people from large numbers, from across cutting religions, caste and creed, everyone has been coming here. And this road, you can see, this road is leading to the Ram temple, where you can see the entire road has been decked up with flowers. Security has been placed in place. No persons with valid pass has been allowed to
roam on the street, and we can see only people coming in large numbers to attend the ceremony. Though they will not attend it, they can watch it in the television. Big screens have been put up in place, and also they will feel lucky that during the Pran Pratishtha ceremony in Ajodhya, they are in Ajodhya at that time, and they feel lucky that though they will not be able to attend the program physically, but in Ajodhya, in the birthplace of Ram, they are here today during the Pran Pratishtha ceremony, and for them it is a big occasion. Right, and Louis, very quickly before I let you go, you mentioned about the security being also very tight for this grand occasion. Of course, it's a big day and it calls for top-notch security. So, what do you make of the security arrangements, Louis? Do you think that the security that is in place is adequate for this historic occasion? Yes, the security has been put tightly in place because I have already mentioned there are more than 10,000 CCTV cameras has been installed in Ajodhya. And besides, there are also artificial intelligence system and put in place where drone camera has also been used. Snipers have been put in place in high-rise buildings, and CRPF Jawans, Rapid Action Force Jawans, anti-terrorist squads, SSF, STF, then NDRF, SDRF, everyone has been put in place. You can see a 7-layer security system has been put in place in Ajodhya. So because it is a Prime Minister's program, dignitaries across the country are arriving here. Foreign nationals around from 40 countries, they will also attend this event. So entire road, no one can enter this road without a valid permission. So 7-layer security system where SPG and NSC has also been put in place. Anti-terrorist squads from Delhi has been brought in, and also snipers in high numbers waiting in Sarujugat. So Uttar Pradesh police have that taken in his hands so that any untoward incident take place. Also, I would like to mention the artificial intelligence cameras, face recognition cameras have been put in place so that if someone with doubtful personality, then they will be immediately be arrested by the Jawans, and also intelligence bureau personnel are also in place. So security arrangement has been put in place, and it is really one of the biggest occasions that the country is looking for. Undoubtedly. Louis Nildon reporting live from Ayodhya. Thank you very much for joining us and sharing all those live details. So there you have it, viewers. It is a day of celebration all across India today. We are celebrating, Ayodhya is celebrating, the entire Northeast is celebrating, and we will continuously keep bringing you all the live visuals in the lead up to the Pran Pratishtha ceremony, which is just a matter of hours away from us now. All right, and of course, the tinsel town has descended in large numbers in Ayodhya. Bollywood actor Ranbir Kapoor, Alia Bhatt and filmmaker Rohit Shetty have also arrived in Ayodhya. Take a look for yourself. And that is, of course, actor and BJP MP Hema Malini, who was also spotted leaving from her hotel in Ayodhya. And meanwhile, we also have reactions coming in from actor Manoj Joshi, who expressed his excitement over the grand Pran Pratishtha. Well, speaking to the media, Joshi said it's the end of years-long wait. Listen in. बहुत ही अद्भुत अनुभूति है, एक दैवी शक्ति का प्रतीति करने हम जा रहे हैं। हमारे राम आज राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठित होंगे और वो तेज अपनी आंखों से देखेंगे। इतने वर्षों का इंतजार, इतने वर्षों की प्रतीक्षा, 505 वर्षों की प्रतीक्षा, हमारी कई पुश्तों ने इसकी प्रतीक्षा की है। वो प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो चुकी है और प्राण प्रतिष्ठा के वो मंत्रोच्चार, वो सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे और राम लल्ला स्वयं यहाँ आज विराजमान होंगे उस मंदिर में। वो घड़ी बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही भावुक है। इसलिए
मैं उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन एक ही कहूँगा, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभियता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। आज हम बहुत उत्साहित हैं और वृंदावन से आए हैं और आज तो हमारे श्री राम लला विराजमान हो रहे हैं अयोध्या नगरी में, तो एक अलग ही उत्साह बना हुआ है। सभी आर्टिस्ट के फेस पे आप देख सकते हैं, खूब आनंद आ रहा है। हम लोग वृंदावन से हैं, वैसे तो हम राधा कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन फिर भी हमें आज इतना उत्साह है। आज राधे राधे नहीं, आज तो जय सिया राम। राधाम कृष्णम स्वरूपमयी कृष्णम राधाम स्वरूपनम। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। हम तो उस भूमि के रहने वाले हैं, ब्रज भूमि से, और हमारे यहाँ कहावत है, चारों धामों से निराला ब्रज धाम। अयोध्या अयोध्या ए मेरे प्यारे राम।
आज देश भर में राम नाम के जयकारे गूंज रहे। हम सुबह से दिखा रहे तस्वीरें, दिन भर से अयोध्या में जो कलाकार आए हैं वो कार्यक्रम पेश करेंगे। उत्साहित है काफी। All right, Anna, we are bringing you continuous live visuals from all across the nation. Right now, let's go straight to Shillong, where my colleague Purbasha Bhattacharjee is joining us live. Purbasha, very good morning to you. And it is one of the most historic days that we will witness in our lifetime. And that is not me saying it. It's the visuals that are coming in from all across the nation, and particularly from here in the Northeast, that is saying these things. So tell us about the atmosphere in Shillong right now. Can you feel the electricity in the air? Can you feel the emotions running high? Purbasha, give us the lowdown. It seems we've lost the connection with Purbasha Bhattacharjee, who was joining us from Shillong. We will reconnect with her in just a moment from now. But of course, viewers, we are continuously bringing you the live visuals of celebrations from all across the nation, and in particular from here in the Northeast. All right, so the devotees in Amritsar carried out a Shobha Yatra ahead of the Pran Pratishtha ceremony today. Take a look. हेलो, ये लाइव चल रहे हैं कि बर्थडे मतलब अमृतसर से लाइव चल रहा ना शोभा यात्रा। बताइए सर, आपको नहीं चाहिए तो मैं बंद कर देता हूँ ना। मैंने उसी अपना थोड़ा लगाना, नहीं चाहिए तो बंद कर देता हूँ। मैं क्या लाइव चल रहा है, चलते बाद में मैं अरे मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो, ये लाइव चल रहे हैं कि बर्थडे मतलब अमृतसर से लाइव चल रहा ना शोभा यात्रा। बताइए सर, आपको नहीं चाहिए तो मैं बंद कर देता हूँ ना। বুঝা না কি কলা অবশ্য হেৰি কথা কোৱা নাই মই এতিয়া
And people across the world presented special gifts to Ram Temple. A 1,265 kg Laddu Prasad was denoted to Ram Mandir. And Nagabhushanam Reddy of Sri Ram Catering Services, who prepared these laddus, said that he had pledged to prepare 1 kg laddu every day till he is alive. And in more gifts, a lock and key weighing around 400 kilos, made in 6 months, was gifted from Aligarh. পূর্বাশা শুনতে পাচ্ছ? Purbasha, can you hear me? This is Ronak from the studio. হ্যাঁ পূর্বাশা, আরেকবার বলো তো। ये চাই भी नहीं देगा, जाने भी नहीं देगा भगवान। ये এনেকে হয় নেকি বে, মানুহক টৰ্চাৰ কৰিব পৰা। 6টা বজাৰ পৰা বহি আছো, कम से कम वॉशरूम तो जाके आए। ना बाथरूम जाने को मिल रहा है, ना चाय मिल रहा है, ना कुछ। 6 बजे से बैठे हैं ऐसे चूतिया की तरह। नहीं आया अभी तक, नहीं आया, नहीं आया, कुछ नहीं आया। सुबह ही दिया था। खाना तो दिया है, बट अभी तो नहीं खा सकता है ना, बिकम्स अ प्रॉब्लम। हाँ পূর্বাশা শুনতে পাচ্ছ? পূর্বাশা কিছু একটা বলো, just say something if you can hear me. বাদ দিয়া, যোনটো আহা না সেইটো বাদ দিয়া। বম তামোল খাইছো বে এতিয়া। চাহ নালাগে, वाशरूम যাব পাৰিম নেকি? এবাৰ এবাৰকে পুতুকে গৈ আহো। आप जाइए, कोई बात नहीं। नहीं, मैं आती फट से ना, फिर तुम चले जाना। আৰু সকলোৱে মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ শিৱলিংগত গাখীৰ আৰু পানী সকলো ফুল পুষ্প আগবঢ়াই সেৱা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে, নৈবদ্য আগবঢ়াইছে, আৰু এই ধৰণে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে আৰু মহাভৈৰৱ মন্দিৰত।
विराट और विशाल है। जी उधर यूरोप के So yes, viewers, as you can see, we are continuously bringing you all the live visuals from Ayodhya, which is of course ground zero. But apart from that, we are also showing you how people are up in celebration all across the nation. These are visuals of people, smiling faces of people, and it cannot be put into words, viewers, what this day means to crores of Indians, how significant this occasion is. It can only be gauged from the visuals that we see on our screens. People are soaked in devotion. People, this is the day that for a lot of people was something that they probably did not expect to see in their lifetime. This is not something that for a lot of people they ever thought would come to fruition, but here we are today. With the blessings of the Almighty, this day has been possible, and the jubilance on the faces of the people across the nation is just there for everyone to see. Ayodhya, of course, as we heard our executive editor Louis Neil Don, who is right there in Ayodhya, say earlier, it is a carnival-like atmosphere is present in Ayodhya. But of course, it's not just confined to Ayodhya, is it? It's all across the nation today. People across the nation, if we talk about right here in the northeast, here in Guwahati, people have taken to the streets in large processions. They are chanting hymns of Lord Ram. Jai Shri Ram is echoing everywhere you go, everywhere you see. There is everywhere it is draped in a color of saffron. This is something unprecedented, viewers, in the history of the nation. What we are witnessing here today is nothing short of history in the making. Another very illustrious chapter of the history of our great nation, and today will definitely go down as one of the most illustrious chapters in the history of this great nation. And meanwhile, devotees in Amritsar carried out Shobha Yatra today ahead of the Pran Pratishtha ceremony. सुरेश्वरानंद पुरी जी महाराज, निरंजनी अखाड़ा, महामाया आश्रम उज्जैन, कहते हैं आनंद ही आनंद बरस रहा प्रभु देव तुम्हारी नगरी में, आनंद ही आनंद बरस रहा श्री राम तुम्हारी नगरी में, प्रभु राम तुम्हारी नगरी। जय अयोध्या नगरी में आकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। कल भी कलश यात्रा में झूम झूम के मैंने नृत्य किया, अपने भावों को व्यक्त किया विचारों के माध्यम से, और आगे देश की रक्षा के लिए खड़ी हूँ। आज हम बहुत उत्साहित हैं और वृंदावन से आए हैं, और आज तो हमारी श्री राम लला विराजमान हो रहे हैं अयोध्या नगरी में, तो एक अलग ही उत्साह बना हुआ है। सभी आर्टिस्ट के फेस पे आप देख सकते हैं, खूब आनंद आ रहा है।
वृंदावन से हैं। वैसे तो हम राधा कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन फिर भी हमें आज इतना उत्साह है। आज राधे राधे नहीं, आज तो जय सिया राम। वहाँ सब मंगल है, वहाँ कोई अमंगल नहीं हो सकता। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवु सुदशरथ अजर विहार। तो राम के नाम पर मत डराओ। संत सुरेश्वरानंद पुरी जी महाराज, निरंजन अखाड़ा, महामाया आश्रम, उज्जैन, कहते हैं आनंद ही आनंद बरस रहा प्रभु देव तुम्हारी नगरी में। आनंद ही आनंद बरस रहा श्री राम तुम्हारी नगरी में। प्रभु राम तुम्हारी नगर। जय जय श्री राम। अयोध्या नगरी में आकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। कल भी कलश यात्रा में झूम झूम के मैंने नृत्य की। देखिए, अयोध्या नगरी है और अयोध्या में सब धर्म के, सब जात के देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। आज जो है, आज का दिन जो है वो 22 तारीख का है। आज के दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, मंदिर की शुरुआत होने जा रही है। संघर्ष जो भी रहा हो, सब जो है वो सारी चीज़ें जो बताई जाती थी, वो आज का दिन वो पूरा लोगों का हो गया है। अब लोग जो है अयोध्या आवें और सरयू स्नान करें और अयोध्या में जो है घूम के देखें अयोध्या धर्म। इंतज़ार की घड़ियां धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं और रौनक लगातार सुबह से आपको अयोध्या से तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। और आज दिन भर देश भर से आए कलाकार अयोध्या में कार्यक्रम पेश करेंगे। कितने उत्साहित है ये कलाकार, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको दिखाते हैं।
आज दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। अयोध्या से मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही हैं, मेहमान पहुंच चुके हैं एक एक कर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 10:30 बजे के बाद पहुंच जाएंगे अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा का यह पावन आज अवसर है। शुभ मुहूर्त दिन के 12:29 और 8 का है, जो 12:30 यानी 12:30 बजे और 32 सेकंड तक का रहेगा। तो ये है शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त जिसे कहते हैं। और इसी मुहूर्त के बीच प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और मुख्य जो यजमान है अनिल मिश्रा वहाँ मौजूद रहेंगे, सपत्नी, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। 84 सेकंड का बेहद ही शुभ मुहूर्त बताया गया है, और इस 84 सेकंड जो कि करीब करीब 1.5 मिनट का समय है, उसके बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। Absolutely, Rashmi, and of course we are bringing you visuals of the celebrations not just from India but also from around the world. And case in point, on the eve of the Ram Temple Pran Pratishtha in Ayodhya today, Querétaro, a city in Mexico, got its first Lord Ram Temple on Sunday. The temple was inaugurated after the Pran Pratishtha ceremony was performed by an American priest with Mexican hosts and the idols brought from India. The ceremony was held amidst hymns and songs chanted by the Indian diaspora, which reverberated throughout the venue. Take a look. रौनक, और सुबह 10 बजे का समय है जब से मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा, और कुछ ही समय बाद मंगल ध्वनि सुनाई देगी अयोध्या से। Absolutely, Rashmi. You know, the countdown has officially begun. We're just about 12 minutes away from the start of the Mangal Dhwani, which is sure to be one of the highlights of the day today. It is going to be a symphony of musical instruments, traditional musical instruments from the various states of India, including from Assam and Manipur. So that is just a matter of 10-11 minutes away now, Rashmi. So the excitement is at its peak, isn't it? बिल्कुल रौनक, विभिन्न राज्यों से 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना का साक्षी बनेंगे। तो 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र बजाए जाएंगे, मंगल ध्वनि से गूंज उठेगा अयोध्या। And we are continuously getting live visuals from all across the world, viewers, not just from here in India. And it's really, you know, one would imagine not to see such visuals coming in from places like Mexico, but even there too, the anticipation for the Pran Pratishtha is soaring. The excitement there is visible for everyone to see. This is something, the occasion today has brought the entire world together. It is absolutely mesmerizing to see how this glorious occasion has united the globe as one, isn't it? बिल्कुल बिल्कुल रौनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। 4 घंटे तक आज वे अयोध्या में रहेंगे, और कब 10:30 बजे के करीब वे अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 10:55 का एक निर्धारित समय है जब वो राम जन्मभूमि पहुंचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के बाद 1 बजे प्रस्थान कर सभा को संबोधित करेंगे, और 2:10 पर कुबेर टीला के दर्शन कर दिल्ली लौट जाएंगे।
Welcome back, viewers, to this very special coverage of this historic occasion that we are continuously covering, viewers. It is the Pran Pratishtha ceremony of the Ram Mandir in Ayodhya today. And of course, we are just minutes away, viewers, minutes away from the Mangal Dhwan musical symphony, which is going to be one of the biggest highlights of the day. Let me tell you, viewers, it is going to be one of the biggest highlights. It is going to be an absolute spectacle. And of course, we are getting visuals of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, who has arrived at the premises of the Ram Mandir. He is just there, and of course, he is greeting devotees and people present at on the occasion. Yogi Adityanath, live visuals coming in straight from Ayodhya on your screens. उसके पीछे जैसा कि आपने कहा कि मेजबान की भूमिका में है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है और सबसे ज्यादा सराहना भी योगी आदित्यनाथ को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी कही जा रही है कि इन्होंने मिलकर वो करके दिखाया है। कई बार जो है वो अयोध्या गए, अयोध्या की छोटी-छोटी बारीक-बारीक जो पिछले हफ्ते की बात है। So yes, viewers, those were live visuals of Yogi Adityanath, the Uttar Pradesh Chief Minister, greeting people at the venue. Today, of course, we are just minutes away from the Mangal Dhwani. All right, more live visuals coming in, viewers. These are the arrival of VIPs as well as security personnel who are, I believe, are coming for tightening the security. All right, these seem to be visuals of cricketers. These seem to be visuals of cricketers that are coming. This is the Indian cricket team that is also, I believe, arriving at the temple premises. If that is the case, then it is only going to get even more grand. बिल्कुल रौनक, तो दिग्गज खिलाड़ी भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। क्या अभिनेता, क्या खिलाड़ी, क्या राजनेता, सब पहुंच रहे हैं एक एक कर, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है जिसका इंतजार कह सकते हैं कि 500 साल से अधिक समय से किया गया। रौनक, मंगल ध्वनि की हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे मंगल ध्वनि थोड़ी देर में बजाई जाएगी, कुछ ही चंद मिनटों का इंतजार है। देश भर के 50 पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाएगा। और यहाँ मैं रौनक दर्शकों को भी बता दूं कि अयोध्या के प्रसिद्ध कवि यतीन्द्र मिश्रा द्वारा संचालित इस भव्य संगीतमय प्रस्तुति को नई दिल्ली की संगीत नाटक अकादमी से भी सहयोग मिल रहा है। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अनुसार यह संगीत प्रस्तुति सुबह 10 बजे शुरू होगी, यानी चंद मिनटों के बाद। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल रश्मि, अभी live visuals we're getting of the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, who has just arrived at the premises. Of course, he is going to inspect all the arrangements that are in place just ahead of Prime Minister Narendra Modi's arrival in Ayodhya. His flight, of course, is slated to land at the Ayodhya airport somewhere around 10:25 a.m. So right before that, it is of course understood that the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath is taking a tour of the premises, making sure everything is in place, everything is in order, making sure that everything, all the elaborate arrangements are absolutely in place ahead of the Prime Minister's arrival. So Yogi Adityanath taking a tour of the premises, inspecting the preparations that are in place. And of course, there are two events that are going to take place in this. There are two events that are going to take place in a span of the next 30 minutes. So first, of course, we are just counting down to the beginning of the Mangal Dhwani. That is going to be something to watch out for. And of course, shortly thereafter, around 10:25 to 10:30 a.m., that is when Prime Minister Narendra Modi will land at the Ayodhya airport, and he will straight away from the airport, he will take a chopper straight to the venue. And then at 10:55 a.m., Prime Minister Modi is slated to reach the Ram Mandir venue. Then following that,
from 11 a.m. to 12 p.m. The next 1 hour has been left up to the Prime Minister, and during this time he is likely to take a tour of the premises before sitting for the Pran Pratishtha. Then at 12:05 p.m. sharp, the Pran Pratishtha or the consecration ceremony will begin with Prime Minister Modi presiding over the rituals. बिल्कुल रौनक, 10 बज चुके हैं और अब मंगल ध्वनि शुरू होगी, संगीतमय कार्यक्रम शुरू होगा और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बांसुरी और ढोलक, कर्नाटक से वीणा, महाराष्ट्र से सुंदरी, पंजाब से अलगोजा, ओडिशा से मर्दला, मध्य प्रदेश से संतूर, मणिपुर से पुंग, असम से नगाड़ा और काली, छत्तीसगढ़ से तंबूरा, बिहार से पखावज और इस तरह से अलग अलग वाद्य यंत्र इसमें बजाए जाएंगे। तो अब से कुछ ही देर में मंगल ध्वनि शुरू होने वाला है। 10 बज चुके हैं रौनक। जी बिल्कुल रश्मि, it's just a matter of time now. We're eagerly awaiting for the start of this Mangal Dhwani, which promises to be an absolute spectacle for all those watching, all those present in Ayodhya, as well as all those watching on their television screens from the comforts of their homes. This is going to be an exquisite affair with as many as 50 instruments from different states that will create a divine melody, and that will go on for 2 hours. So this Mangal Dhwani is slated to be a melody that reaches a crescendo and will continue for 2 hours. That is what has been told by the temple authorities. And of course, talking more about the Mangal Dhwani, let's talk about it a little bit more before it actually starts. It has been orchestrated, as you mentioned, Rashmi, by Ayodhya's own Yatindra Mishra, and this grand musical rendition is supported by the Sangeet Natak Academy, New Delhi. The instruments include a wide array of instruments which will be taken from various states of India. They're representing each state and also having a historical significance regarding from every state one instrument, and they will have a historical significance as well. अयोध्या की ये मनमोहक तस्वीरें लगातार आ रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रौनक, मेहमानों की लिस्ट काफ़ी बड़ी है और मेहमान भी लगातार पहुंच रहे हैं और अब बस आधा घंटा शेष है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, जिनका इंतजार किया जा रहा है। रामलला की प्रतिष्ठा होनी है, प्राण प्रतिष्ठा आज होनी है। जी बिल्कुल रश्मि, एंड ऑफ कोर्स the number of people who are arriving one after the other in Ayodhya, as we saw, cutting across lines, people from all walks of life, whether it be politicians, leaders, whether it be cricketers, whether it be all the top Bollywood superstars, everyone has descended on Ayodhya today for this historic occasion. We earlier saw the Big B himself, Amitabh Bachchan, leaving for Ayodhya from his residence. We also saw the cricketing great, the god of cricket, Sachin Tendulkar, also leaving for Ayodhya a while back. Yesterday there were about 8,000 VIP guests who had already reached Ayodhya, and it's expected that another 8,000 are going to arrive today. All right, now as we see these live visuals from Ayodhya, let us once again come back to Guwahati, where we are also getting live visuals. We are also getting live visuals from Guwahati at this point in time, and I believe the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma is also present there. If we could have those visuals on screen, please. All right, let me cut across to my colleague Sushmita, who is joining us from the streets of Guwahati, where of course a very, very festive atmosphere can be seen. Sushmita, just a while back we saw there was a very colorful procession that was going out in Fancy Bazaar area. Tell us where you are at right now, because behind you we can see it's looking very beautiful and colorful. Tell us more about where you are. Ronak, Jai Shri Ram to all our viewers first of all, and I am at present Guwahati Harijan Colony.
यहाँ पर जो है देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ही वक्त बाद जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा मौजूद होंगे और यहाँ से वे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लुत्फ उठाएंगे। यहाँ से वे मौजूद रहकर उस भावनात्मक ऐतिहासिक चीज को देखेंगे। यहाँ पर बहुत लोगों के गणमान्य अतिथि भी बुलाए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर भी उमड़ा है और सभी लोग इस वक्त राम के रम में रमे हुए हैं और इस वक्त राम की धुन लोगों में उत्साह है। कुछ ही देर बाद प्राण प्रतिष्ठा का समारोह उससे पहले शंखनाद किया जा रहा है। कुछ ही देर बाद राम लला जो है विराजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा उनका होगा और बात करेंगे क्या कहेंगे। आज राम लला विराजेंगे अपने स्थान पर। आज आनंद का दिन है, फुर्ती का दिन है, नया दिन आया है, राम आएगा, हमारे के लिए बहुत अच्छा दिन है। मुख्यमंत्री यहाँ पर रहकर आप सभी के साथ इस दृश्य को देखेंगे और इस भावनात्मक मुहूर्त को अच्छा ही है, इसने को कौन देखने को मिलता है, अच्छा ही लगता है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज रामलला विराजेंगे अयोध्या में। हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 500 साल बाद आ रहा है हम लोग का हिंदू के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा। क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा महसूस। हमारे पूर्वजों ने शायद ही ये पल जिया हो, लेकिन 500 साल बाद हमें ये मौका मिल रहा है कि हम इस क्षण है उसको जिए। बहुत अच्छा लग रहा है, मन में बहुत आनंद है, सब मिलकर हम एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है सच में राम जी आ रहे हैं। जय श्री राम। और मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा मौजूद रहेंगे। वो भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मन मंदिर आ रहे। जय सिया राम। तो रौनक जैसा कि दिखा रहे हैं दर्शकों को, यहाँ से तस्वीरें हरिजन कॉलोनी की। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और भाजपा से भी बहुत सारे नेता यहाँ पर आए हुए हैं और देख सकते हैं कि भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो भी इस वक्त पूरे जश्न के माहौल में सराबोर है। देख सकते हैं इस तरह से राम की जो हेलो जी सुष्मिता, कब तक पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री? काफी खास ये आयोजन होगा क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे, यहीं उपस्थित रहकर राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह देखेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि जानकारी के हिसाब से 11:15 बजे 10:50 तक शायद यहाँ पर मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे, जितनी जानकारी हमारे पास है। तो कुछ ही समय बाकी रह गया है, करीबन आधे घंटे बाद वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और यहाँ पर से वे इस क्षण का लुत्फ उठाएंगे और आगे यहाँ का जो दृश्य है वो दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह की तैयारियां की गई है। उन लोगों को पीछे एक डिसिप्लिन की तरफ से हर एक को अपनी अपनी सीट्स पे बैठने के यहाँ लिए पर भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं जो साथ में। सुष्मिता, अगर आपके आयोजकों से बात हो सके, क्योंकि आयोजकों से ये पता कीजिए कि क्या कुछ आज दिन भर यहाँ होगा। मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में बंदोबस्त कैसे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स भी है जिसके तहत हम आगे दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स है जो सभी के लिए मान्य है और हम जा रहे हैं, बिल्कुल दिखाएंगे, आयोजकों से बात भी करेंगे, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो प्रोटोकॉल का भी ठीक है सुष्मिता, ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है सुष्मिता, आप बने रहिए। सुष्मिता आप बने रहिए, मुख्यमंत्री आते तो हम वापस लौटते हैं और इस वक्त अयोध्या से तस्वीरें आ रही है, वो दिखा लेते हैं। ये परमानंद का आप दोनों ने क्या कार सेवा आप बता रहे हैं इकट्ठे? मेरे ताऊजी चूंकि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री थे
तो उनके साथ जाना होता था संकट मोचन मंदिर अपनी यामाहा पर बिठाकर, आचार्य रामनाथ सुमन पुण्य श्लोक। तो उस समय में 4 अक्टूबर की जो रैली थी जिसका उन्होंने संचालन किया था, उसके ठीक पीछे में खड़ा हुआ था जहाँ रितंबरा जी बोली थी। वो 10 लाख का ज्वार और उसका गुस्सा, उसकी व्याप्ति देखी थी। तो आज उन आंसुओं का प्रतिफल मिल रहा है। जी थैंक यू। बस मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं ये थोड़ा सा कुमार जी प्लीज। मनोज जी कैसा अनुभूति हो रही है? आपने अभी बताया कि आप कार सेवा में भी शामिल रहे हैं। मेरे अकेले की अनुभूति नहीं है, यहाँ आए हुए प्रत्येक ये जो भी राम भक्त यहाँ आया है उसकी अनुभूति भी बहुत ही सेम है, किसी की कम ज्यादा नहीं है। और यहाँ आए हुए और भारतवर्ष में जो टीवी पर देख रहे हैं और हर एक व्यक्ति को, हर एक भारतीय के मन में आज वो आनंद है, वो परमानंद है कि राजा राम स्वयं यहाँ आज राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। और आज ये दिव्य स्वरूप पूरा भारतवर्ष देखेगा, पूरा विश्व देखेगा। यह आनंद का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति भावुक है इस समय, और वो भावुकता शब्दातीत है। आप मोदी जी के बारे में काफी नैरेटिव बोलते रहे हैं जी, मंदिर को लेकर मोदी जी को आप किस तरह देखते हैं? मैं निश्चित एक चीज अवश्य कहूंगा कि मोदी जी के कार्यकाल में यह मंदिर हुआ है, और निश्चित रूप से भगवान राम ने ही उन्हें भेजा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में राज्य राम, मुझे नहीं, हर एक व्यक्ति को लगता है कि राम राज्य की आरंभ हो चुकी है, राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। थैंक यू मनोज जी। So that was, of course, the actor who has just landed in Ayodhya. There we see the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. All right, we're getting reactions from the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh. Let's listen in. उनकी मती मारेगी। All right, Ashok Singhal is saying something. Let's listen in. এক নতুন যুগৰ আৰম্ভণি বুলি ক'ব পাৰি। ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পুনৰুত্থান হ'ব, আৰু আকৌ আমি যিটো পহৰ পাইছোঁ, আমি আকৌ বিশ্বগুৰু আসনত বহিম এদিন, এই সপোনটো আছে। আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল কৰ সেৱক আছে প্ৰতিগৰাকী চকুত চকু পানী, সকলো আৱেগিক হৈ পৰিছে। আচলতে मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें सामने आई हैं। अयोध्या पहुंचे हैं। रामनगरी से तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने वहां पे जो तैयारियां हैं उसका भी जायज़ा लिया, और तमाम जो मेहमान हैं इस वक्त एक एक कर पहुंचे हैं। अभिनेता हो, क्रिकेटर हो, उद्योगपति हो, हर कोई पहुंच रहा है रामलल्ला के दरबार। जी बिल्कुल रश्मि, these are visuals of the UP Chief Minister Yogi Adityanath greeting the people as he has arrived at the Ram Mandir venue, and of course just minutes away from Prime Minister Modi's scheduled landing time at the Ayodhya airport as well. So Yogi Adityanath, the Uttar Pradesh Chief Minister, arriving ahead of time at the venue, making sure everything is in place, all the arrangements are in place, and of course this is a big occasion, one of the biggest, if I may say so myself, and it is pertinent upon the Chief Minister Yogi Adityanath to make sure that everything is in place to review the preparations just ahead of the Prime Minister's arrival. All right, let's now take a look at, let's now come back to the region and take a look at a rally that is underway in Meghalaya's Tura. Of course, here too, the atmosphere is palpable as the people are chanting Jai Shri Ram and holding up Lord Ram flags
and are taking out a rally, a procession. So no place left behind, isn't it, viewers? We have almost covered the entire northeast region now, and everywhere we see it is the same atmosphere, the same energy amongst the people, the same positive energy, the same enthusiasm amongst the people, smiles on everyone's faces as they chant Jai Shri Ram and await the Pran Pratishtha, which is just a matter of hours away from now. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। Welcome back, viewers, and we are continuously bringing you this special coverage all the way from Ayodhya of the Pran Pratishtha ceremony of the Ram Temple. And of course, for this historic occasion, several airlines have introduced direct flight services to Ayodhya. Indigo has started direct flights from Delhi, Ahmedabad and Mumbai to Ayodhya. Air India Express has started direct flights to Ayodhya from Bengaluru and Kolkata from the 17th of January. SpiceJet Airlines has announced direct flights to Ayodhya from Chennai, Bengaluru and Mumbai from the 1st of February. Meanwhile, Pandit Lakshmikant Mathuranath Dikshit, a Vedic scholar from Varanasi, will lead the group of priests at the consecration ceremony of Lord Ram Lalla at the Ram Temple. The 86-year-old Vedic Karmkand or ritualism scholar has been chosen by the authorities to lead a team of 121 scholars from all branches of the Vedas from across the country to solemnize the idol consecration rituals, which began on the 16th of January. The idol of Lord Ram will be placed in the Garbhagriha of the Ram Mandir in Ayodhya.
All right, Mohan Bhagwat, the RSS chief, has arrived at Ayodhya as well. It's just one of the latest in the line of VVIPs who have arrived in the holy city ahead of the Pran Pratishtha ceremony. So, Rashmi, yet another eminent personality arriving in Ayodhya. जी बिल्कुल रौनक, संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंच चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा का जो ये पूरा कार्यक्रम है वो दोपहर 1 बजे तक पूरा हो जाएगा और सभी पूजा विधि समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत संदेश देंगे। तो 1 बजे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम समाप्त होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत संदेश देंगे। और इस बीच तस्वीरें आ चुकी हैं, संघ प्रमुख पहुंच चुके हैं अयोध्या। अभिनेता, क्रिकेटर, उद्योगपति और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हैं। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच जाएंगे। 10:30 बजे का उनका जो शेड्यूल है वो पहुंच जाएंगे और उसके बाद 12:30 बजे से पहले 12:20 पर अनुष्ठान शुरू होगा। प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा और एक जो शुभ मुहूर्त निकाला गया है उसी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और इस बीच मेहमानों की लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी है और उसी लिस्ट के आधार पर मेहमान पहुंच चुके हैं। Right, and from what we've been... All right, these are visuals coming in from the revered Kamakhya temple here in Guwahati, viewers. So Kamakhya Mandir also filled with devotees on this auspicious day as people have gathered in large numbers ahead of the Pran Pratishtha ceremony. Even here in Guwahati at the revered Kamakhya Mandir, there is a large footfall of devotees who have gathered today on this very, very auspicious occasion. तो कामाख्या मंदिर से ये तस्वीरें आई है जहां भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं। आज राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरे देश में ही इसी तरह का माहौल है। मंदिरों में लोगों की भीड़ है। राम लल्ला के जो जयकारे हैं वो गूंज रहे हैं और साथ ही तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही है, पूरे देश से ही और पूर्वोत्तर से भी तस्वीरें आपको हमने दिखाई है, मेघालय से, सिक्किम से, त्रिपुरा से। और ये तस्वीर फिलहाल असम के शहर गुवाहाटी से है जहां कामाख्या देवालय से ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं। अशोक सिंघल इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। मेयर मृगन शरण्या भी साथ में मौजूद है, गुवाहाटी के मेयर। और इस वक्त मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा भी पहुंचने वाले हैं। फटाशील के जो हरिजन कॉलोनी है वहां पर खास आयोजन किया गया है और बस थोड़ी देर का इंतज़ार, यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वो हरिजन कॉलोनी से ही देखेंगे। रौनक, और बस कुछ समय का इंतज़ार है, 10:30 बजने वाले हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। यूपी के डिप्टी सीएम भी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जो तैयारियां हैं उसका जायजा ले रहे हैं, मेहमानों से बात कर रहे हैं, आओ भगत कर रहे हैं। तस्वीरें ये सीधी आ रही है अयोध्या से और बस कुछ समय का इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:25 जो उनका निर्धारित समय है अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 10:55 पर राम जन्मभूमि पहुंचेंगे। अब ये रिएक्शंस आ रहे हैं, बाबा कुछ कह रहे हैं। राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिन है।
सदियों के संघर्ष के बाद और हजारों ऋषि मुनि महात्माओं महापुरुषों के त्याग तपस्या बलिदान के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस समारोह के साक्षी बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये हो ना पाता अगर इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते। हम कह सकते हैं जो लोग बहुत विरोध कर रहे थे उनके लिए मतलब कितना मैसेज भी है, क्योंकि आज कुछ भी हुआ। जो लोग विरोध कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करें, राम का विरोध ना करें। किसी राजनीतिक दल से लड़ें, राम से ना लड़ें, क्योंकि राजनीतिक दल को लड़के हराया जा सकता है, राम को नहीं हराया जा सकता है, सनातन को नहीं हराया जा सकता है, भारत को नहीं हराया जा सकता है, और राम भारत की आत्मा है। हमें कह सकते हैं कि आज के दिन का बहुत सदियों से इंतजार रहा। आज वो दिन सब सनातनियों, हिंदुओं, जिनके लिए आप कह रहे हैं, सब आया है हमारे सामने। ये गौरव का दिन है। एक दिवाली तब मनी थी जब भगवान राम लंका फतेह करके आए थे, और एक दिवाली आज मनेगी जो उससे भी बड़ी दीपावली है। सबको बधाई। और इस वक्त कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण कुछ कह रहे हैं, वो भी सुना दे आपको। कैसा महसूस हो रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? It's a wonderful occasion, very divine occasion. Blessed to be a part of this, very historic, and looking forward to seeking blessings of Ram Lalla. Obviously, it will mean a lot more for us. We'll continue to come to Ayodhya, but this is, to be a part of this self. So how do you see Ayodhya now? It's before and now. This is my first visit, so I'm hoping that we'll be coming a lot more for His divine blessing. So yes, really looking forward to the event. Have you visited Ayodhya some places? Not yet. So after this, yes, for sure. Thank you. Ma'am, so how is your feeling right now? How do you feel now? I'm really elated beyond words, and it is such a blessing to be a part of this divine occasion. It has, I think it is many births tapasya, and you get an opportunity like this. It is indeed a divine blessing. Thank you. Thank you. So, ma'am, can I So that was, of course, the spin wizard Anil Kumble along with his wife, who have arrived at the venue, the Ram Mandir. And right now what you see on your screens, viewers, are visuals coming in from Agartala. Rallies are being organized in various parts of the northeast ahead of the consecration ceremony of the Ram temple today. And these are visuals of the same coming in from Tripura capital, Agartala, where, as you can see, young girls in their traditional attires, colorful traditional attires, are holding up Lord Ram flags and have taken to the streets in this very beautiful colorful procession. त्रिपुरा में आज के दिन नहीं, बहुत पहले से त्रिपुरा में हर गांव में, हर जगह में, चाहे वो क्लब हो, सोसाइटी हो, हर जगह में ये हमारा आस्था है। राम मंदिर जो उद्घाटन होने जा रहा है, कुछ ही क्षण में उद्घाटन हो जाएगा। चाहे वो शहर में हो या गांव में, जनजाति क्षेत्रों में, बहुत जगह में हम लोगों ने रैली देख रहा है। तो इसी जो आज के दिन शुभ दिन है, उसको हम लोग एक दीपावली उत्सव की तरह मना रहा है। हर बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सभी खुशी है, अपने मन में सभी राम राम है। तो हम लोग ये पूरा जनजाति की ओर से राम का जो भव्य मंदिर होने जा रहा है, तो उसी जैसे अयोध्या में जैसे खुशियाँ माहौल है, त्रिपुरा में भी सेम शहर से गांव तक पूरा एक दीपावली जैसा हम लोग उत्सव मना रहा है।
हम भी बहुत प्रसन्न हैं। धन्यवाद संपूर्ण भारत को विश्व आप पिछले कुछ दिनों में अयोध्या की नई अयोध्या की जब आपने तस्वीरें देखी हैं तो एक इतिहासकार की दृष्टि से Welcome back, viewers, to this special coverage of the Ram Pratishtha, of the Pran Pratishtha ceremony of the Ram Temple in Ayodhya. We're getting live visuals coming in from Ayodhya at this point in time. Devotees in large numbers are flocking to the venue, one after the other, not to mention a slew of VVIPs from, and we can also see the
Ramdev ji also on our screens. He too has arrived in Ayodhya. He's one of many eminent personalities who have descended upon the holy city today for this historic occasion. From spiritual leaders to politicians to Bollywood stars to cricketers, everyone has descended on Ayodhya today for this historic Pran Pratishtha ceremony. And not to mention, the streets of Ayodhya are wearing a carnival-like look today with colorful processions out and about, cultural troops putting on a performance, and that is a beautiful performances, all decked up in their traditional attires. We're getting live reactions. That's this. देखने का अवसर मिला है हमारे जैसे करोड़ों लोगों के लिए सपने साकार होना जैसा है बहुत तपस्या की है, बहुत संघर्ष किया है, वो बलिदान दिए हैं और उसी का परिणाम है कि आज भगवान श्री राम को हम लोग इस रूप में देख रहे हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। जय श्री राम। मेहमान जुट चुके हैं और बस इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो किसी भी वक्त पहुंचेंगे रामनगरी। बाकी है तो सनातनियों को बहुत बहुत बधाई राम जी के आने के। तो रौनक मैं कह रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय बाद पहुंचने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम मोदी बतौर यजमान पूजा पाठ करेंगे। पीएम मोदी पूजा पाठ में शामिल होने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। रौनक काफ़ी दिनों से वे खुद को तैयार कर रहे हैं और इसके लिए कड़ी व्रत तपस्या भी कर रहे हैं। यही नहीं, पीएम खास तरह का जाप भी कर रहे हैं इन दिनों, जो उन्हें सिद्ध महात्मा द्वारा बताया गया है। मोदी सन्यासी की तरह फर्श पर सो रहे हैं और सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। तो ये सब दिनचर्या इन दिनों उनकी चल रही है। आज प्राण प्रतिष्ठा में उनको यजमान के तौर पर उपस्थित रहना है। ऐसे में कड़ा तप वो भी करते हुए इन दिनों नजर आए हैं। रामलला के दर्शन हो रहे हैं। जी बिल्कुल रश्मि, आपने बिल्कुल सही कहा। द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर द लास्ट 7 days, I beg your pardon, for the last 11 days for this grand Pran Pratishtha ceremony today. It is a historic occasion for multiple reasons. So for this, what the Prime Minister did ahead of the grand temple opening, Prime Minister Narendra Modi visited a series of temples in South India having a deep link to the Ramayana. On Sunday, the Prime Minister announced an 11-day Anushtan ahead of the consecration and completed his spiritual journey to temples by worshipping at a Lord Ram shrine near Arichal Munai, where he prayed and paid floral tributes at the seashore. And then, marking completion of his visits to various temples ahead of the consecration, Prime Minister Modi performed puja and had darshan at the Sri Kothandaramaswamy temple, which is just on the way towards Dhanushkodi and Arichal Munai. That is, of course, the place from where the Ram Setu is said to have been built. रौनक मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं इन दिनों। आप जिस तरह बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं। एक बात इसमें मैं और जोड़ दूं, ब्रह्म मुहूर्त में वो जाग जाते हैं और हर दिन 1 घंटा 11 मिनट तक खास मंत्र का जाप भी कर रहे हैं। ये भी एक विशेष बात है इस बार, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में वे यजमान होंगे। ऐसे कठोर तप वो कर रहे हैं और जिस जप की मैं बात कर रही हूँ, वो मंत्र का 11 दिनों तक जाप उन्हें अनिवार्य बताया गया था। विशेष धार्मिक परंपरा के मुताबिक ही फर्श पर सो रहे हैं। फर्श पर वो सिर्फ कंबल बिछाते हैं। मतलब जिस तरह की कठिन तपस्या की जाती है, इस तरह तपस्या करते हुए दिखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब कुछ ही देर का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ अयोध्या पहुंचेंगे। इस बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे। जी बिल्कुल रश्मि, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार जारी है सुबह के घंटों से। फ्रॉम द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग टुडे वी कुड सी दीज कलरफुल परफॉर्मेंसेस बाय दीज ट्रूप्स, कल्चरल ट्रूप्स. Colorful performances in traditional attires from Ayodhya coming in. These have been underway since the early hours of the morning today. It's an absolute carnival out there in Ayodhya. And why not? The king of Ayodhya is returning to his rightful place, his birthplace, after a 500-year-long wait for all devotees. So this is an occasion that calls for going absolute all out. It is the grandest occasion, the grandest celebration, as Lord Ram is returned to Ayodhya.
All right, so Assam Minister for Urban Affairs Ashok Singhal spoke exclusively to Northeast Live just a short while back about the historic occasion. Today, let's listen in to what he had to say. सर, आज का क्षण बेहद भावुक करने वाला है। सर, आप भावुक हो रहे हैं इस वक्त और कैसे वर्णन करेंगे आज के क्षण का? ये अस्मरणीय है, अतुलनीय है, मन, दिल और दिमाग सबको भावुक करने वाला है। इस क्षण की अपेक्षा हिंदू समाज 500 वर्षों से कर रहा है और आज का दिन बहुत त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद हमको देखने के लिए मिला है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में हमको इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखने का सौभाग्य मिल रहा है। सर, अगर आप उस क्षण को याद करेंगे जिस क्षण में आप लोग भी इस चीज़ के पीछे आप लोग बहुत भाग रहे थे और मतलब किस तरह के उस चीज़ को आप लोग वर्णन करेंगे सर? संघर्ष में यात्रा है पर सफल समाप्ति है, इस बात का एक सुखद अनुभव हो रहा है और आज से भारत के पुनरुत्थान का दिन शुरू हो रहा है। असम के मंत्री अशोक सिंघल जो आज इस प्राण प्रतिष्ठा के क्षण में काफ़ी भावुक नजर आए। हमारी सहयोगी सुष्मिता दत्ता के साथ उन्होंने बात की और उसी दौरान भावुक नजर आए। 500 साल का जो इंतज़ार था वो खत्म हो चुका है और आज राम लल्ला की प्रतिष्ठा हो रही है। एक गौरवशाली ये क्षण है उनका कहना है और काफ़ी भावुक आज वो नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। सर, आज का क्षण बेहद भावुक करने वाला है। सर, आप भावुक हो रहे हैं इस वक्त और कैसे वर्णन करेंगे आज के क्षण का? ये अस्मरणीय है, अतुलनीय है, मन, दिल और दिमाग सबको भावुक करने वाला है। इस क्षण की अपेक्षा हिंदू समाज 500 वर्षों से कर रहा है और आज का दिन बहुत त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद हमको देखने के लिए मिला है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में हमको इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखने का सौभाग्य मिल रहा है। सर, अगर आप उस क्षण को याद करेंगे जिस क्षण में आप लोग भी इस चीज़ के पीछे आप लोग बहुत भाग रहे थे और मतलब किस तरह के उस चीज़ को आप लोग वर्णन करेंगे सर? संघर्ष में यात्रा है पर सफल समाप्ति है, इस बात का एक सुखद अनुभव हो रहा है और आज से भारत के पुनरुत्थान का दिन शुरू हो रहा है। और आज यहाँ सब हमारे शीर्ष संत महापुरुष, एक दो को छोड़ दीजिए वो अपवाद है, सब भारत के साधु संत महात्मा, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इतना ही नहीं पूरी दुनिया के 200 करोड़ से अधिक राम भक्त प्रसन्न हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता जिसको आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं। महाराज जी, तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को अब बस कुछ ही वक्त बचा है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, यजमान होंगे। तो ऐसे में पूरे दिन का उपवास आज उन्होंने रखा है और इस वक्त इंतज़ार हो रहा है प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे, क्योंकि तमाम जो मेहमान हैं जिनकी लिस्ट जिनको न्योता भेजा गया था, मेहमानों की लिस्ट काफ़ी बड़ी है और ये तमाम मेहमान इस वक्त पहुंच चुके हैं। अभिनेता हो, राजनेता हो, क्रिकेटर हो, हर कोई इस वक्त पहुंच चुका है। रौनक जी बिल्कुल रश्मि, एंड ऑल दीज पीपल गैदर्ड देयर आर नाउ eagerly awaiting for the arrival of Prime Minister Modi, who is hopefully going to arrive at the venue in a matter of minutes now. We're getting more live reactions at this point in time. Let's have a look. So yes, as I was saying, viewers, more and more people are flocking to the venue every minute. There are so many devotees at the venue today, not to mention people from all walks of life have gathered there, all united in devotion to welcome Lord Ram back to his birthplace, back to his rightful place after a long, long wait which cannot even be put into words. But at this moment, people are awaiting for the arrival of the Prime Minister himself, Narendra
Narendra Modi, who is expected to arrive in a matter of minutes now. And soon after he arrives, of course, the proceedings will get underway. Prime Minister Modi, of course, after having arrived at the venue, is likely to take a tour of the premises first, and then sharp 12:05 p.m. will sit for the Pran Pratishtha ceremony. All right, so we have breaking news coming in, viewers. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Ayodhya. So Prime Minister Modi has landed at the Ayodhya airport and will be arriving at the venue of the Ram Mandir in just a matter of minutes from now. Now, Prime Minister Modi, that is the confirmed news coming in at this point in time, viewers. Breaking news: Prime Minister Modi has arrived in Ayodhya. It is just going to be a matter of minutes now before we see him on our screen as he arrives at the premises of the Ram Mandir. So big breaking news this, Rashmi. बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या में और बस कुछ ही समय का इंतजार। जब वो वेन्यू में पहुंचेंगे, मेहमान जो तमाम वहां पहुंचे हैं, इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे। और इस वक्त खबर आ चुकी है कि अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यजमान के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे वेन्यू में। और इस बीच तस्वीरें लगातार अयोध्या से आ रही है। कुछ ही समय दौर से विश्व बचा गुजर है। रहा है, उस पर अगर हम देखें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से हमारा बहुत कल्याण हो सकता है। चाहे वो अपने संबंधों को निभाने की बात हो, चाहे अपने दायित्वों को निभाने की बात हो, अपने कर्तव्यों को निभाने की बात हो, भगवान श्री राम आज के लिए बहुत ही ये बहुत बड़ा क्षण मैं समझता हूँ। कैंसिल हो गया। तो बस अब कुछ समय का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त वेन्यू में पहुंच सकते हैं। अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान है वो शुरू होगा 12:20 पर। इस वक्त लाइव रिएक्शंस। इन्होंने इतना खूबसूरत भव्य राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर कराया। मैं मानता हूँ कि इस कलयुग के दौर में एक नए त्रेता युग की ये शुरुआत है। जिन्होंने आलोचना की कभी प्रभु की मूर्ति को लेकर, कभी मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ, निमंत्रण में बहुत लोग नहीं आए, जो मतलब
भाग्यशाली ही है जो सब निमंत्रण में आए, लेकिन कुछ लोग निमंत्रण में भी नहीं आए। मैं लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या ही बोलूं, अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है, जहां करोड़ों लोग इस पल का साक्षी बनने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली भी हैं जिनको आमंत्रित किया गया, पर उन्होंने अपने राजनीतिक मतभेदों के कारण भगवान राम को भी अस्वीकार उन्होंने किया। आप भाजपा से लड़ें, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लड़ें, पर भगवान राम से तो ना लड़ें। उनके दरबार में तो सब एक हैं, एक बराबर हैं, एक समान हैं। आज इतना खूबसूरत मौका था, जो नहीं आ पाए या जिन्होंने इस निमंत्रण को ठुकराया, मैं मानता हूं ये उन्हीं का ही बैड लक है। थैंक यू। तस्वीरें अयोध्या से लगातार आपको दिखा रहे हैं। मेहमान पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त फिलहाल इंतजार हो रहा है, जो कुछ ही देर में अयोध्या तो पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ ही देर में वेन्यू पहुंच जाएंगे और जहां प्राण प्रतिष्ठा आज होनी है। तमाम मेहमान वहां मौजूद हैं, फूलों से सजाए गई है अयोध्या नगरी। Yes, absolutely. So the big day is here, and of course the grandness of the occasion matches the anticipation that surrounded this big day in the lead up to today, and that is exactly what we are seeing on our screens. More live reactions coming in. Let's listen in. सर, सभी तो आनंद में सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन ये कहा गया कि ये बीजेपी का एजेंडा है। विपक्ष ने जिस तरीके से राम मंदिर मूर्ति को लेकर, मंदिर निर्माण को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठाए, निमंत्रण में नहीं आए, उस पर मुझे लगता है कि अपोजिशन नहीं दिया जाता था, मतलब अपोजिशन को जो इंडिया जो की आघाड़ी के लोगों में सबको निमंत्रण दे दिया है। सभी उद्योगपतियों को, स्पोर्ट्स के लोगों को, सेलिब्रिटीज को और कई नेताओं को मतलब निमंत्रण दे दिया है। तो ये प्रोग्राम बीजेपी का नहीं है और अपोजिशन ने मतलब इसमें सम्मिलित होने की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने मतलब इस पर बायकॉट डाला है। तो मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में ये अपोजिशन पर बायकॉट डालना चाहिए। दास अठावले थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा, चूंकि आज विपक्ष ने किरारा कर लिया है, न्योता भेजा गया था, लेकिन विपक्ष की तरफ से कोई यहाँ उपस्थित नहीं हो रहा। ऐसे में रामदास अठावले ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेहमान आ चुके हैं, उद्योगपति, वीआईपी, जितने भी तमाम मेहमान थे वो वहाँ पहुँच चुके हैं। बॉलीवुड सितारे, क्रिकेटर, उद्योगपति सब वहां पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां उपस्थित होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस पेज पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर पहले आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई संघ प्रमुख की। जी बिल्कुल रश्मि, एंड एज वी नो द प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलरेडी लैंडेड इन अयोध्या एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मिनट्स बिफोर ही अराइव्स एट द वेन्यू। एंड व्हाइल वी वेट फॉर हिज अराइवल, आई टेंड टू एग्री टू व्हाट चिराग पासवान वाज सेइंग just moments back. You know, those who are missing out on this spectacle today, I believe this is definitely their loss, because leaving aside everything else, it's just the sheer spectacle that is on display, the celebration that is on display, the unity that is on display. All right, Rohit Shetty, the famous director, the action director, Rohit Shetty, another Bollywood star that has landed in Ayodhya, and the stars just keep coming. There we see Alia Bhatt, of course, with Ranbir Kapoor. The Bollywood stars have all descended on Ayodhya for this grand celebration today. There we have Jackie Shroff as well on the screen. Everybody out with their phone cameras trying to get a picture of the Bollywood superstar. Jackie Shroff there, viewers. He too has arrived. Almost the entire Bollywood fraternity has come together and has descended on Ayodhya today, just ahead of the Pran Pratishtha ceremony. Now, only thing that remains is for Prime Minister Modi to arrive at the venue now. बिल्कुल, बॉलीवुड सितारे वहां पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम देख रहे हैं, तमाम जो सितारे वो पहुंच चुके हैं, राम भक्ति में आज लीन हैं और इस वक्त तस्वीरें आ रही है चौपर की। शायद रौनक, शायद इसी चौपर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। Yes, absolutely, Rashmi. I do believe you might be onto something there. We did catch a glimpse of a helicopter, even though it's quite foggy out there, but still.
But still, it seems as though that was the chopper carrying the Prime Minister who is going to land near the venue in just moments from now. And of course, we are getting live visuals of Tinseltown stars who have all flocked to the Ram Mandir today for this grand occasion. तो बिल्कुल अब चंद मिनट शेष है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और सभी राम भक्तों से मिलेंगे और राम भक्त इस वक्त जो तमाम मेहमान हैं वो मौजूद है अयोध्या में और राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का जो वे राम लल्ला के दर्शन करेंगे। काफ़ी सौभाग्य खुद को समझ रहे, काफ़ी सौभाग्य की बात उनके लिए है। Yes, these are live visuals, viewers, of more live visuals. All right, reaction from Jackie Shroff. Let's listen in. भगवान के मंदिर आए तो कैसे लगता है इंसानों को, यहाँ तक बुला लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि सब जूते निकाल कर आए तो और अच्छा है। Always leaving a mark wherever he goes, isn't it? Jackie Shroff, the man, the actor, and of course he was just talking about about the significance of the momentous occasion that we are witnessing today here, viewers. What a sea of crowd, what a sea of devotees on our screens that we can see. There must be thousands and thousands of people who have gathered at the Ram Mandir venue today, viewers, for this historic occasion. And of course, needless to say, sophisticated, elaborate arrangements of the highest order has been put in place for controlling this huge crowd that has gathered today, for making sure that everything goes according to plan. Now is just a matter of time before the Prime Minister arrives. There on our screens we see the always beautiful Katrina Kaif along with her husband Vicky Kaushal, both of them also amongst the crowd, and just alongside him is also Ranbir Kapoor and Alia Bhatt. So the Bollywood stars have all arrived, and these are visuals of the people gathered at the venue, and now I think they're all just waiting for the Prime Minister's arrival. Wouldn't you say so, Rashmi? जी बिल्कुल, जो तमाम बॉलीवुड सितारे हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, विकी कौशल, कैटरीना कैफ, हर कोई इस वक्त यहाँ मौजूद है और इंतज़ार बस कुछ ही पलों का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचेंगे। बॉलीवुड के तमाम सितारे, माधुरी दीक्षित से लेकर रणबीर कपूर तक, हर कोई यहाँ उपस्थित है और आज इस भव्य समारोह के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। And our executive editor Louis Neil Dawn is on ground zero in Ayodhya. Let's have a look. We are being joined by our executive editor Louis Neil Dawn, who is in Ayodhya for all the live visuals and all the live updates. So Louis, how is the atmosphere there? Must be very exciting and electrifying at the moment. Give us more. Yes. You can see the visuals right in from Ajodhya. All the way from here to the Ajodhya Ram Temple. Garlands have been laid all around the strip, and there are also cultural groups performing. The Pran Pratishtha will take place at 12:40 to 1 p.m. where Prime Minister Narendra Modi will attend the program, and where the Abhijit Muhurto is from 12:29 seconds to 12:30 32 seconds, and the idol which has already been placed in the temple. That in the temple already been placed in the sanctum sanctorum, and the Prime Minister and other 4 persons will be there. And right now you can see the live visuals from Ajodhya where the cultural groups are performing, because it is a day that the people have been waiting for the last 500 years. The Ram Lala has been returning to his temple, and the Pran Pratishtha will take place. And you can see all the people from all the way from across the country are reaching here in large numbers to attend the program, and also they feel blessed that they are right here in the Ajodhya when the Pran Pratishtha ceremony will take place. You are seeing these people, these artist troupe from Jhansi, they will be performing like this during the Pran Pratishtha ceremony.
ahead of the Pran Pratishtha event, there is a carnival-like atmosphere you can see in Ajodhya, because we have been here for the last 8 days, and this atmosphere, it's really one of the spiritual and the devotional atmosphere you can see. And besides this, security has been heightened in Ajodhya. 7-layer security system has been placed because the Prime Minister will be here, where SPG has been looking over all the security system, and rapid action force zones, anti-terrorist squad, snipers, Uttar Pradesh police, then SDRF, NDRF, and fire brigade. Everything has been put in place so that no untoward incident take place. So, but the scene here is, you can see the carnival-like atmosphere, because in Ajodhya tonight there will be a light and leisure show, and devotees, they have been already shouting slogans. They are doing arati at the Saraju Ghat, which is around 100 meters away from this place. In the Saraju Ghat, there are about 150 women will take the kalash to the Ram temple. मर्यादा के साथ साथ प्रेम की मूर्ति रहे हैं। रामायण एक तरह से राम और सीता को देखेंगे तो आप ये लव स्टोरी है कि अपनी पत्नी के लिए उन्होंने क्या क्या किया, है ना। तो वो सारे भाव आ रहे हैं मन में, कमिटमेंट, जो प्रजा के प्रति अपना, राजा का धर्म, ये सारे भाव मन में आ रहे हैं और यहाँ से यही सारी ऊर्जा लेके जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा किस तरह से उतरती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह से ये संपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है? ये सब कुछ मर्यादा में ही है, और मर्यादा के लिए कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की आवश्यकता जो होती है वो आज दिखा दिया यहाँ पर। प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं सर, कितना सौभाग्यशाली अपने आप में। बहुत ही 500 वर्ष का संघर्ष, और उसमें रक्त रंजित इतिहास, मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में कितने ही कार सेवकों की निर्घृण हत्या, और उसके बाद ये जो आज वास्तु और भवन निर्माण हुआ है, मंदिर निर्माण हुआ है, मन में करुणा भी है और कार सेवकों और केवल आस्था है मन में। धन्यवाद। So needless to say, viewers, a very, very emotionally charged atmosphere there. We're getting more reactions. Let's take a look. पन्नों में लिखा जाएगा ये दिन, और हम बहुत हैप्पी है हम इधर आए। थैंक यू। Yes, viewers, as I was saying, it is needless to say a very, very emotionally charged atmosphere. Even just a while back when we were looking at the reaction from the Assam Minister Ashok Singhal, he too got very emotional, speaking about the significance of the day, and it's very understandable because it has been a very long, painful, arduous wait for all Lord Ram devotees, not to mention the entire country. So it is very understandable that, there will be a lot of moist eyes in the audience, a lot of moist eyes in the crowd. People will be overwhelmed with emotion, with devotion today. It is that kind of a day today, viewers, isn't it? For the entire nation, not just the people who are present in Ayodhya, but for the entire nation who are watching at home and who are also celebrating this occasion in their own special way, in their respective states, in their respective cities. It is an absolutely joyous occasion, a very overwhelming occasion, rather.
सुबह से ही मनमोहक तस्वीरें अयोध्या से आ रही है। मेहमान वहां पहुंच चुके हैं और इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो तमाम जो मेहमान हैं बॉलीवुड सितारे हो। He likes one of the bhajan composed by me, that's Ram Ke Dham. So it's a beautiful feeling, and I'm very happy to be here and waiting for that. As all of us are anticipating the moment when actually the Ram Pratishtha will happen. जब आप पहली बार आए थे और आपने मंदिर देखा तो आपका पहला क्या इमोशन था? I had tears in my eyes. मैं जब enter कर रहा था, after the security, I started weeping, and that is something which cannot be controlled. It just happens to you. You don't plan it. It's just the tears well up in your eyes. And right now I'm here with everybody, and I'm grateful to Lord Shri Ram and Hanumanji that I, amongst billions of people, I'm one of them who has come here. रौनक, आप कह रहे थे कि भावुक क्षण है और हो भी क्यों ना, 550 साल का इंतजार है और उसके बाद आज ये क्षण आया है। और इस वक्त नवीन जिंदल कुछ कह रहे हैं। And we are feeling really elated. We are feeling really happy. It's like a dream come true. And today we feel we are really fortunate that we are seeing this day as a really happy occasion. Sir, the way Ayodhya is developing, what is your is there any plan or something? So Ayodhya has developed really well. The infrastructure, the airport, the roads have been widened. It's looking really beautiful. It's a really festive mood over here, and the people all over the country. You know, we are a country of 1.5 billion people, and I think today the whole country and Indians all over the world are really happy on this happy occasion. Thank you so much. Thank you. तो बिल्कुल खुशी और भावुक होने दोनों का ही ये क्षण है रौनक, क्योंकि 500 साल का इंतज़ार कम नहीं होता और आज राम लल्ला की प्रतिष्ठा होने जा रही है। देश का जो भी सच्चा राम भक्त है उसके लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अहम है। जी बिल्कुल रश्मि, और जैसे कि हमने सुना काफ़ी सारे लोग का ये कहना है कि वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आज का ये दिन उनको देखने का सौभाग्य मिला। तो क्यों ना हो आज का दिन सबके लिए, फॉर द एंटायर नेशन परहैप्स इट इज़ अ वेरी इमोशनली चार्ज्ड डे, अ वेरी हैप्पी ओकेजन डेफिनेटली, बट एट द सेम टाइम अ वेरी इमोशनल एंड अ वेरी ओवरवेलमिंग ओकेजन एट द सेम टाइम as well. जी बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अनुष्ठान किए जा रहे हैं और इस वक्त त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक सरकार कुछ कह रहे हैं। যেভাবে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে সেই জায়গায় আজকের দিনে এখানে রামলালা ওনার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে এবং সারা ভারতবর্ষ আজকে রামময় হয়ে গেছে। সব জায়গায় আমরা জানি যে রাম রাজত্বের কথা আমরা সবসময় বলি, তো আজকে মনে হচ্ছে সারা ভারতবর্ষ রাম রাজত্বের যে অধ্যায় আবার নতুনভাবে শুরু হবে। এবং সুশাসন কাকে বলে, একমাত্র রাম রাজত্বের কথা যদি আমরা স্মরণ করি তখনই মনে হয়। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও চাইছেন যে সুশাসন সমস্ত মানুষের জন্য যেন দিতে পারেন উনি, এবং সেই দিশায় আমরাও ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা চাই মানুষের কাছে যেন সুশাসন আমরা পৌঁছে দিতে পারি এবং মানুষের যে মৌলিক অধিকার সেইগুলো যেন আমরা ওনাদেরকে দিতে পারি, সেই চেষ্টা থাকবে। আজকে এই ভব্য যে রাম মন্দির ওখানে তৈরি হয়েছে এবং সেখানে রামলালাজির যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির মাধ্যমে আজকে হবে, এর জন্য আমরা অত্যন্ত খুশি এবং বারবার আমি ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে অনেক অনেক ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। नहीं, वो हमेशा वो कहते हैं ना कि इंसान के भीतर ही भगवान है और हम सब जानते हैं अगर इंसान को ठीक ठाक से उनका कोई असुविधा हो, उनका अगर कोई समस्या हो, समस्या को अगर हम निरसन करें तभी मतलब जो राज करने में उसमें ठीक होता है और जनता राजा के ऊपर भरोसा करते हैं। ये मेन एसेंस ऑफ द माने राम राजत्व। तो हम लोग अगर राम कालाम देखें और उसको जाने और पढ़ें तो उसमें सब देखता है कि जो हमेशा जो कहते हैं जो गुड गवर्नेंस का बात अभी चल रहा है, वो गुड गवर्नेंस हम प्रधानमंत्री जो चाहते हैं गुड गवर्नेंस, ये 500 ईयर से
कितना कोशिश के बाद कितना आंदोलन हुआ, कितना लोग उसमें शहीद हुआ, तो उसके बाद ये हुआ। आप सोच सकते हो पूरा देश में एक माने बहुत ही एक वातावरण इतना अच्छा हो रहा है, सब मतलब फीलिंग ऑफ वेलबींग जिसको कहते हैं वो अभी आ गया। मैं तो कैबिनेट लेके अभी जा रहा हूँ, 4 तारीख हम अभी शेड्यूल हुआ है, 4 तारीख पूरा कैबिनेट लेके हम अयोध्या में जा रहे हैं और 4 तारीख कल दिल्ली और 5 तारीख अयोध्या में जाने का अभी तक मतलब ये शेड्यूल है। ये थे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा जो काफ़ी गौरव महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुशासन ये सरकार के सुशासन को ही दर्शाता है, जो आज 500 साल बाद न्याय मिला है, राम मंदिर की स्थापना हुई है और आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि वे अपने पूरे कैबिनेट मंत्रियों को लेकर अयोध्या जाएंगे, 4 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे और 5 तारीख को वे अयोध्या नगरी का दर्शन करेंगे। प्राण प्रस्थान के बाद वो भगवान का रूप ले लेगी और जितने भी उनके मानने वाले लोग हैं श्री राम, वो जो रास्ता भगवान श्री राम ने दिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए। तो तस्वीरें लगातार अयोध्या से सामने आ रही है, जो विधि विधान चल रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नहीं उपस्थित हुए हैं। And we can see on our screens visuals. We can see visuals on our screens of Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha indulging, taking part in puja in Agartala today, of course. All right, let's now cut across live to Gangtok. Gangtok, where my colleague Prakash Adhikari is joining us live from MG Mark in the heart of Gangtok. So Prakash, हमें पता चला है कि अभी मुख्यमंत्री कुछ ही पल में अभी वहां मौजूद होने वाले हैं, और क्या जानकारी दे सकते हैं प्रकाश? We're facing some issues connecting with my colleague Prakash Adhikari at the moment. We'll try to reconnect with him in a minute. But in the meantime, viewers, what we were seeing just a moment ago was visuals of the Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha taking part in puja and rituals on this auspicious occasion today. And of course, he also mentioned just a while back, speaking to reporters, that he and the entire Tripura cabinet are planning a trip to Ayodhya in February. So what he said is the tentative plan is that on the 4th of February, they will reach Delhi, and from there they will arrive in Ayodhya on the 5th of February. So that is sort of the tentative plan of action for the Tripura cabinet led by Dr. Manik Saha. Once again, let me remind our viewers, we are just waiting for the Prime Minister, who has already landed in Ayodhya, to arrive at the Ram Mandir premises. And once he does, then all the other rituals will follow suit. First of all, the Prime Minister is very likely to take a tour of the premises. And then, of course, right after that, the Pran Pratishtha ceremony will follow. और ये सिक्किम से सीधी तस्वीरें आ रही है। मुख्यमंत्री PS गोले इस वक्त उपस्थित है। हमारे संवाददाता प्रकाश अधिकारी भी लगातार तस्वीरें वहां से हमें पहुंचा रहे हैं। ये सिक्किम की तस्वीरें। Yes, indeed, viewers. These are live visuals coming in from Gangtok. This is MG Mark in Gangtok, where Chief Minister Prem Singh Tamang has arrived, and there is a cultural program underway on this auspicious occasion. मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग उपस्थित हो चुके हैं। विधानसभा के अध्यक्ष अरुण उप्रेती और दूसरे मंत्री लोग भी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं और भारी मात्रा में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन किया जा रहा है। और मैं कैमरा पर्सन विनोद को अपील करूंगा कि वो सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी कैमरा की ओर ले आए और यहाँ पर एक राम मंदिर का
रेप्लिका प्रस्तुत किया गया है और यहाँ पर सीधा लाइव प्रसारण जो अयोध्या का है वो भी यहाँ पर लाइव प्रसारण में रखा गया है। तो जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगा उसका यहाँ पर जो बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं उस बड़े स्क्रीन पर और इसका सीधा प्रसारण होगा और जिसका मुख्यमंत्री हो या दूसरे कैबिनेट मंत्री हो यहाँ से ही जो प्राण प्रतिष्ठा का जो लाइव प्रसारण है उसका लुत्फ उठाएंगे। प्रकाश, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी खास आयोजन चल रहा है, नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है और दिन भर क्या कुछ चलने वाला है वहाँ पर? जी हाँ, लाइव प्रसारण होने के बाद यहाँ पर जो एमजी मार्ग को सजाया गया है और शाम को यहाँ पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम भी होगा और एक भव्य कार्यक्रम आज शाम को यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। प्रकाश, राज्य सरकार की तरफ से किसी तरह का आह्वान, क्योंकि हमने देखा है कि हर राज्य सरकार अपनी जनता से आह्वान कर रही है दीप प्रज्वलित करें और आप भी बता रहे हैं कि दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, लेकिन और किसी तरह का खास आयोजन कि शाम को ये करना है या वो करना है? तो इस वक्त फिलहाल हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क कट रहा है, लेकिन तस्वीरें तो लगातार आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त तस्वीरों में। Yes, viewers, that is of course the Defence Minister Rajnath Singh himself, who is also offering prayers at this point in time. The Defence Minister is also offering prayers at this point in time. Live visuals coming in on your screens. जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
काल परखिए जारी जही के जही पर सत्य सने हो सोते ही मिल ही ना कोई संदेह हो राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जाकी रही भावना जैसी रघुमूरत देखी तिन जैसी रघुकुरीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता राम जय राम राम जय जय राम सिया राम जय राम जय राम सिया राम जय जय राम मन में तन में जन जीवन में बसे हुए हैं राम मन की गठरी खोल के देखो दिख जाएंगे राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम अयोध्या अयोध्या ए मेरे प्यारे राम अयोध्या अयोध्या ए मेरे प्यारे राम जय श्री राम जय श्री राम। यकीनन सोनू निगम की बेहद मधुर आवाज़ जिसमें उन्होंने श्री राम के लिए ये भजन गाया और यकीन मानिए इस वक्त पूरा जो देश है वो जिस तरह से राम
तो भक्ति गीतों से गूंज उठा, सोनू निगम के भक्ति गीतों से गूंज उठा समा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बस कुछ ही क्षण का इंतज़ार है, पहुंचेंगे इस वेन्यू पर। तमाम जो मेहमान हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के जो होने वाली है उसका दीदार करने के लिए तमाम मेहमान वहां पहुंच चुके हैं और अब इंतज़ार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुछ ही देर पहले वो अयोध्या पहुंच चुके हैं, लेकिन वेन्यू तक पहुंचने में उन्हें थोड़ा वक्त लग रहा है और बस चंद मिनटों का इंतज़ार। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उपस्थित होंगे। Yes, and of course, in the meantime, the melodious voice of Sonu Nigam. All right, on our screens is the cricketing legend Sachin Tendulkar, who has arrived at the venue of the Ram Mandir. That is none other than the cricketing legend, the god of cricket, Sachin Tendulkar, the little master, who has arrived. And of course, he's not the only one. We earlier saw visuals of the entire Indian cricket team also arriving in Ayodhya. So hopefully we'll get to see a glimpse of them as well. And there on our screens is Rajnikant, the legend himself. Rajnikant too present on the occasion at the venue of the Ram Mandir. तो सुपरस्टार रजनीकांत भी देखे गए हैं, वहाँ पर मेहमानों के जो श्रेणी है उसमें बैठे हुए हैं और कई सुपरस्टार इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। उद्योगपति यहाँ मौजूद है, क्रिकेटर्स यहाँ मौजूद है, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर। थोड़ी देर पहले उन्हें भी यहाँ पर देखा गया है, पहुँच चुके हैं वे इस वेन्यू में और अब इंतज़ार तो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। And our colleague Sushmita Datta spoke to car sevaks and their family members in Guwahati just a while back. Let's take a look. हम 1990 में अयोध्या में थे, जिस समय बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ। उस समय हम अयोध्या में ही थे, लेकिन थोड़ा दूर। आज कैसा अनुभव कर रहे हैं? आज तो बहुत माहौल परिवर्तन हो गया। उस समय एक हिसाब से हम लोग तुगलक राज में चला था, मोहम्मद तुगलक जैसे राज किया था वैसे ही राज हुआ था। और उस समय सरकारी प्लानिंग से गणहत्या हुआ था अयोध्या में। कम से कम 500 लोगों को हत्या किया था, चारों तरफ से पुलिस घेराव करके वो ये कर दिया था। और अभी हम लोग हिंदू राज में है, हिंदुस्तान में अभी हिंदू राज प्रतिष्ठा हो गया। मिस्टर के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन अभी तो नहीं है, वो ऊपर चला गया तो हमारा बहुत खराब लगता है। अभी रहने से कितना अच्छा था। तो मिस्टर के लिए सब हमने देखा है और इतना सम्मान मिलता है मुझे मिस्टर के लिए, लेकिन अभी तो नहीं है ना, इसलिए मेरा इतना खराब लग रहा है। अभी क्या बताओ, वो भी आरएसएस का ही था, आरएसएस का स्वयंसेवक था, तो सब देश के लिए काम किया है, सब किया है, बहुत लड़ाई किया है। अभी तो नहीं है। बातचीत में उन्होंने कैसे बताया कि अयोध्या का हालात कैसे थे उस दौरान? संगठित था एकदम, गोला गुली मारपीट, फिर जंगल में घुसी थी भाई, ऐसे किया वैसे किया, सब ऐसे बताया। बहुत कष्ट किया उन्होंने। समुद्र
त्वदीयं स्वरूपं सदा पत्रनाशं सकोदण्डपाणम् निजे मानसे मन्दिरे सन्निधेः प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र ससौमित्रिणा कैकेयीनन्दनेन स्वशक्तानुभक्त्या च संसेव्यमान स्वभक्ताग्रगण्ये कपीशे महिषे अनेकैरनेकैश्च राम प्रसीद नमस्ते नमो श्रीश राम प्रसीद प्रसाधि प्रसाधि प्रकाशं प्रभोमा त्वमेवासि दैवं परं एकं सुचैतन्यमेतत् त्वदन्यं न मन्ये यतो भूतमेयं वियत्पायुतेजो ज्वलोराधिकार्यं चरं चाचरं च जय श्री राम। तो मंगल ध्वनि की गूंज रही है इस वक्त रामनगरी में। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचने वाले हैं और उससे पहले मेहमानों की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है और थोड़ी देर का इंतज़ार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच रहे हैं। अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। तो रामनगरी से खूबसूरत तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त इंतज़ार हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 12:20 से शुरू होना है। शुभ मुहूर्त की एक बार मैं बात करूं तो दिन के 12:29 पर है। So that is, of course, the brilliant producer and singer and music composer Shankar Mahadevan, who has now taken the stage right after Sonu Nigam.
सलाम। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणं। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणं। नवकंज लोचन कंज भोग कर कंज पद कंजारुणो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। गंधर्व गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरं। पटपीतमानहु तडित शुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं। श्री राम श्री राम श्री राम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनो। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनो। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनो। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणो। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणो। श्री शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणं। आजानु भुज
शरचाप घर संग्राम जीत कर दूषण श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारण श्री राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम सभी लोग गाइए राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम। शंकर महादेवन को आप सुन रहे थे राम राम जय सिया राम। और इस धुन से न सिर्फ अयोध्या गुंजायमान हो रही है बल्कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत राज्यों के विभिन्न मंदिरों में भी। और आज वो घड़ी आ गई है वर्षों स्नान आदि के पश्चात गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, इसलिए वे परिसर के अंदर ही स्नान आदि के निमित्त पहुंच चुके हैं। हम सब जानते हैं कि ये मंदिर भारत के इतिहास में परिवर्तन का काल है। भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का ये अवसर है। इस अवसर पर भारत से लगभग सभी प्रांतों से अधिक जनपदों से 150 से भी अधिक उपासना पद्धति गुरु परंपराओं से जुड़े हुए संत महापुरुष आज यहाँ उपस्थित हैं। भारत की तमाम विधाएं हैं, खेल, विज्ञान,
कला, लेखन, काव्य, वादन, सेना के अंदर अपना पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाने वाले, सेना का नेतृत्व करने वाले जनरल्स, प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी, दुनिया के किसी न किसी देश में राजदूत के रूप में काम किया, उद्योग जगत के लोग और जिनके परिवारों का कोई नागरिक कभी राम जन्मभूमि के लिए जीवन उत्सर्ग कर गया, ऐसे 16-17 प्रकार के समाज जीवन के लोगों को यहाँ निवेदन करके बुलाया गया है। सरकार ने जिनको पद्मश्री दिया उनकी गुणवत्ता के लिए ऐसे भी ये सब यहाँ उपस्थित हैं। ये संख्या अयोध्या अयोध्या ए मेरे प्यारे राम। अयोध्या अयोध्या ए मेरे प्यारे राम। इस वक्त तस्वीरें आ रही है अनिल अंबानी और उनका पूरा परिवार, इस वक्त मुकेश अंबानी और उनका पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है। आज हम सभी जय श्री राम पधार रहे हैं। जनवरी 22 आज के दिन का मुहूर्त काशी के गणेश्वर शास्त्री प्रभु जी ने निकाला है। उन्होंने ही प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी दिया था। वो अपनी टोली के साथ आए हैं। कर्मकांड वाराणसी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित जी और उनकी टोली कर रही है। उन्होंने भी प्रयास किया है अधिक से अधिक राज्यों के वैदिक इस कर्मकांड में उपस्थित रहें। आप महानुभावों की जानकारी के लिए 120 से भी अधिक वैदिक सामूहिक एक नेतृत्व में 16 तारीख से 16 जनवरी से यहाँ कार्य कर रहे हैं। आप जिस स्थल पर बैठे हैं और मैं जिस आसन पर खड़ा हूं, इसके बीच में लगभग 20 फुट से अधिक का अंतर है। आप तो हम सब दूर तक देखने की कोशिश कर पा रहे हैं। मैं जहां बोल रहा हूं और आप जहां बैठे इसमें लगभग 20 फुट का अंतर है। इस परिसर में चारों ओर एक परकोटा बनने वाला है। आप करकोटे के प्रवेश द्वार पर बैठे हैं।
सामने ये प्रवेश द्वार है। इस परकोटे में 6 मंदिर बनेंगे। आचार्य शंकराचार्य जी की पंचायतन पूजा, गर्भगृह में भगवान विष्णु का अवतार राम। परकोटे के 4 कोनों पर शंकर, गणपति, सूर्य और भगवती। एक भुजा में हनुमान जी, उत्तर दक्षिण में हनुमान जी, उत्तर में माता अन्नपूर्णा। परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी, ऋषि पत्नी अहिल्या, इनके मंदिर में बनेंगे। भगवान राम के साथ अंतिम भेंट जटायु। जटायु की स्थापना इधर ऊंचे कुबेर टीले पर कर दी गई है। आज मंच से उतरकर माननीय प्रधानमंत्री जी कुबेर टीला जाएंगे। वहां एक बहुत प्राचीन शिवलिंग है, उसके दर्शन करेंगे, जटायु के दर्शन करेंगे और फिर कुबेर टीला के पास ही कार्मिकों से भेंट करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मंदिर निर्माण में आज लगभग 4000 से भी अधिक मनुष्य शक्ति लगी है। इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं, आर्किटेक्ट हैं, मजदूर भी हैं। 4000 लोगों को बैठाना कठिन था। अयोध्या अयोध्या ए मेरे प्यारे राम। अयोध्या अयोध्या ए मेरे प्यारे राम। Yes, viewers, as you can clearly see on your screens, the who's who of Tinseltown are at Ayodhya, are at the venue, the Ram Mandir right now on our screen. On your screens, you can see the likes of Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Katrina Kaif, Vicky Kaushal and a host of others from Bollywood who have all arrived at the Ram Mandir and are all eagerly waiting for the Pran Pratishtha. All right, on our screens is the big B himself, Amitabh Bachchan, along with his son Abhishek Bachchan, who are also at the venue at the Ram Mandir premises right now. And all that remains now is for Prime Minister Modi to arrive, who is the chief Yajman, to arrive, and then the Pran Pratishtha ceremony can get underway.
बिल्कुल रौनक, इंतजार हो रहा है। भगवान श्री राम हमारी संस्कृति का प्रतीक है। जैसे सूर, कबीर, गुरु नानक जी, भगवान बिरसा मुंडा, इन सब की हमारी सरकार ने सुध ली है और आज बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर एक उत्साह है और सभी लोग इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। It's spectacular. I've seen so many images of it, but जब आंखों के सामने देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ इतना अनोखा, इतना भव्य, इतना जादू ही देख रहे हैं। नहीं भाई, आज भारत के लिए गौरव का दिवस है और भारत आज नया आयाम लिख रहा। धर्म विरोधियों की ठटरी बढ़ गई, राम राज्य का प्रारंभ हो गया। हृदय गदगद है, हमारे हनुमान जी खूब नाच रहे हैं राम जी के महोत्सव पर। हम भी बहुत प्रसन्न हैं। आपको धन्यवाद, संपूर्ण भारत को, विश्व को शुभकामनाएं। हिंदू धर्म को लेकर मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा है। ये दिवाली से बड़ा है, ये दिवाली है और वास्तविक दिवाली है आज। और देश को एकत्रित किया है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का इंसान हो, आज देश एकत्र हुआ है क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कहना था, वो सिंबलाइज करते थे गुडनेस को और त्याग की भावना को। और आज वो भावना, वो गुडनेस, वो टुगेदरनेस जो है वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। जय श्री राम। आज अभिभूत करने वाला दिन है और हम लोग तो बस इस दिन की राह ताक रहे थे और आज आ गया। अब बस समय नहीं कट रहा कि किस तरह से भगवान राम का प्रकाट्य हो। रामलला, एक लाइन संगीत आपका मधुर। नहीं, बस भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, शोधभूत रूप निखार। सब भारत के साधु संत महात्मा, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के 200 करोड़ से अधिक राम भक्त प्रसन्न हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता जिसको आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं। This is a very important day in the history of our country. Something that we have been looking forward to for over 500 years. And we are so privileged and blessed to experience this in our lifetime. And we go in, we meet Ram Lalla and we pray for the entire world. Sir, Thank you. please sing one line for all. Ram Ram Jai Raja Ram, Ram Ram Jai Sita Ram. Go! Ram Ram Jai Raja Ram, Ram Ram Jai. Bolo Jai Siya Ram. Of course, yes, it's a God's given opportunity to my family, and we are so overwhelmed. We are really very happy to be here. मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ हरिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हुई है वही जो राम रचिया था, होकर तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। धीरज धर्म नेत्र अरुणारी, आपद काल परखिए जारी। जहि के जहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिल ही ना कोई संदेह हो। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम,
सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम जय राम, राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम जय राम, सिया राम जय जय राम। मन में तन में जन जीवन में बसे हुए हैं राम। मन की गठरी खोल के देखो, दिख जाएंगे। लैंडस्केपिंग कहा गया है, ये जीएमआर नाम की संस्था ने स्वेच्छा से किया है। बड़े बड़े हवाई अड्डों पर वही सौंदर्यीकरण करती है। भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार का चिकित्सा विभाग, उद्यान विभाग, वन विभाग, ये सब जो सौंदर्य देख रहे हैं, उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। इस मंदिर में लगभग दुनिया के 150 देशों से जल आया है, यहाँ समर्पित हुआ है। जो वादक आए हैं, उत्तर प्रदेश से पखावज और बांसुरी ढोलक, कर्नाटक से वीणा, महाराष्ट्र से सुंदरी, पंजाब से अलगोजा, उड़ीसा से मर्दल, मध्य प्रदेश से संतूर, मणिपुर से पुंग, असम से नगाड़ा और ताली, छत्तीसगढ़ से तंबूरा, बिहार से पखावज, दिल्ली से शहनाई, राजस्थान से रावणहट्टा, बंगाल से श्रीखोल, आंध्र प्रदेश से घटम, झारखंड से सितार, गुजरात से संतार, तमिलनाडु से नागस्वरम मृदंग, उत्तराखंड से हुड़का। थोड़ी ही देर में, मात्र 2 मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने स्थान से चलेंगे। अधिक से अधिक 2 मिनट में आ जाएंगे। कार से उतरेंगे उत्तरी द्वार पर, फिर वो पैदल संत महापुरुषों के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हुए उत्तर से पूर्व की ओर आएंगे। पूर्व की सीढ़ियों से गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। मैं निवेदन कर सकता हूं, न मैं आज्ञा दे सकता हूं। देश के 135 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम शिखर पर पहुंचाने वाले व्यक्ति के आगमन पर शायद आपको स्वयं प्रेरणा हो जाएगी कि हम खड़े हो जाए। मैं आपसे कहूंगा नहीं, धृष्टता के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अभी नहीं, अभी बैठिए, अभी बैठिए, अभी बैठने की कृपा करें। जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा। वो पैदल आने के लिए उन्होंने सूचना दी है, वो पैदल आएंगे। अभी बैठ जाइए। मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन
जाइए, बैठ जाइए। अभी बैठने की कृपा करें, जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा। वो पैदल आने के लिए उन्होंने सूचना दी है, वो पैदल आएंगे। अभी बैठ जाइए। मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन करता हूं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से प्रवेश हो गया। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं। केशव पाराशरण जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र गर्भगृह में गोविंद देवगिरी जी श्री राम के उस गर्भगृह की ओर बढ़ाते हुए एक एक कदम बढ़ाते हुए अनेक मंडपों को पार करते हुए 5 मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं। भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में
140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए, लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए दिखाया था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है, करवट बदली अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है, यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है, यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है, यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है, आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है, आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है, आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है, आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय,
जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला। आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से, भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं। आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से, जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी
जाओ जाओ जाओ, अरे ठीक है जाओ, अरे जाओ यार, जाओ जाओ जाओ। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंचबाण है, पंचबाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहां मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। और नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है, जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे, ये आप भगवान श्री राम का वो विग्रह देख रहे हैं जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरतलला, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाइयों के काल रूप में दर्शन देते रहे और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शन को प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है जो लाल रंग का, रक्त वर्ण का हुआ और द्वापर में वो नीले रंग के हुए और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ में जो रामलला इस वक्त आप देख रहे हैं जिनके सामने चारों भाइयों के साथ में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए कि जो मुकुट है कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष बाण दे रहे हैं और उन्हीं प्राचीन विग्रहों के समक्ष बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं और भारत को, भारतीयता को, सनातन धर्म को शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो सनातन धर्म में जो ये अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री
प्रतिष्ठित काम काज कीने में मोर कहाँ विश्राम। ये भावना हमेशा घनीभूत रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 को प्रधानमंत्री ने उस समय देखा अनिकेत एक लेख में साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है, हिंदू चेतना प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला पूजन हुए। साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी की यात्रा की प्रस्तावना में गुजरात में समन्वय की भूमिका में रहे तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में क्षेत्र उन्होंने भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान नहीं पड़ा जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 से अधिक गांवों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के सारथी के रूप में अगर देखें तो एक वीर व्रती के रूप में नवरात्र के समय में जल पीकर 18 घंटे से ज्यादा एक वीर व्रती के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे, उन्होंने अपना अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी को एक कार्यकर्ता के रूप में अयोध्या आए थे, उन्होंने शपथ लिया था यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, उनका पुनरागमन और वाक्षण आज
हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम भज प्यारे तू सीताराम रघुपति सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम मेरा भैया
सभी संतों आप खड़े हो सकते हैं और रामधुन कुछ ही मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर
करेंगे। वहां शिवलिंग पर दर्शन पूजन तर्पण करेंगे, जटायु दर्शन पुष्पार्चन करेंगे, कार्मिकों से मिलेंगे और प्रस्थान करेंगे। डाक विभाग के अधिकारी उनको पीछे की ओर आ जाना चाहिए, मंच के पीछे।
पूजन विधि पूर्ण हो गई है। बाईं ओर से लोग निकलकर आ रहे हैं, यहाँ कुर्सियों पर बैठेंगे। इधर अंदर कुर्सियों पर बैठ जाइए, उधर से आना था, उधर से प्रवेश कर जाइए, सामने रास्ता खुला है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव रूप में मां कौशल्या के राघव, वही नाम जो मां कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि। निश्चित तौर से और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम, पटपीट मानहु तड़ित रुच सुचि, नवमी जनक सुतावरम। भक्तवत्सल के सामने भाव विह्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट्र की ओर से। और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। जय राम रमा रमणम शमनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। निश्चित तौर से समूचे राष्ट्र की समेकित शक्ति का, समूचे सनातन संस्कृति का आज अभ्युदय का दिन है। और कहा गया है कि तन की शक्ति, हृदय की श्रद्धा, आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव को शुभ चरणों पर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से ये ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, ये ध्येय है जगत गुरु भारत का, ये ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, समर्थ भारत का, सशक्त भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, आत्माभिमानी भारत का, स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का, सुंदर भारत का, विकसित भारत का और अंततः जगत गुरु भारत का। और जगत गुरु संस्कृति के प्रणेता, विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए अभूतपूर्व निधि है, क्योंकि हमारी ही संस्कृति समता की बात करती है और हमारी ही संस्कृति में राज्य राम राज्य की जो संकल्पना है वो आज भी समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं बाल रूप में, और यहाँ पर परब्रह्म कई रूपों में दर्शन दे रहे हैं। मां सरयू के रूप में वो जलाकार ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अयोध्या धाम के रूप में, जो कि स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है, वो इस धरा धाम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं।
इसके बाद आप नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं, उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों के लिए भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और अब आप देखिए कि प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच की ये जो कृष्ण वर्ण की मूर्ति आपके समक्ष इस वक्त जो प्रतिष्ठित हो चुकी है, भगवान श्री राम लोकाभिरामम इस वक्त मन मोह लेते हैं। और जिस तरह से लगातार पूरे प्रांगण में अयोध्या धाम में, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। इस वक्त गर्भगृह में माँ गंगा विराजमान है, तुलसी विराजमान है, शालिग्राम भगवान स्वयं जो दामोदर कुंड से आए हैं वो विराजमान है। और ये सुंदर मेघ श्याम, वही भगवान श्री राम जब रघुवंश के पति होते हैं तो वो रघुपति होते हैं। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है तो वो राजा राम होते हैं। जब वो अहिल्या माँ का उद्धार करते हैं तो वो होते हैं पतित पावन। और जब मिथिला जनकपुर धाम में जाकर मैया सीता के साथ विवाह संस्कार करते हैं तो हो जाते हैं सीताराम। लेकिन भगवान आज न रघुपति हैं, न राजा राम हैं, न पतित पावन हैं, न सीताराम हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। आज पौष के शुक्ल द्वादशी के पावन दिवस पर जब भगवान श्री राम पधारे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, तो माँ कौशल्या अत्यंत प्रसन्न होंगी। भगवान सूर्य जिनके वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, इस वक्त जो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, भगवान श्री सूर्य भास्कर की किरणें नवमी के दिन भगवान के मस्तक को चूमेंगी। ऐसे प्रतिष्ठा की गई है इस मंदिर की। आप समझिए कि इस वक्त भगवान शिव नृत्य कर रहे होंगे। मैं इस वक्त जो मन में मेरे भाव आ रहा है कि इस वक्त त्रिलोकी इस वक्त विह्वल नजर आ रही होगी, भावनाओं में नजर आ रही होगी। स्वर्ग लोक में इंद्र इस वक्त मृदंग का वादन कर रहे होंगे, देवता इस वक्त नृत्य कर रहे होंगे। हनुमान लला हनुमंत लाल इस वक्त नाच के श्री राम जय राम जय जय राम जो
की ओर आकर No, you are not entered. संत This area to this area only. मस्तक नमन किया है। ईशान कोण के में बैठे हुए, आग्नेय कोण में बैठे हुए संत महापुरुषों को अपना मस्तक नमाकर प्रणाम निवेदन किया है। अब प्रधानमंत्री उपस्थित हैं। स्वस्ति वाचन। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनु बिर्व्याशे मही देवाहितञ्जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सुशान्तिर्भवतु। हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, उडुपी मठ, पेजावर मठ के मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज और अयोध्या निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज को निवेदन करता हूं, मंच पर पधारें और वस्त्र भेंट कर अपना सम्मान, अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करें मंच पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति। पूज्य गोविंद देव जी महाराज माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज डॉक्टर मोहन राव भागवत के लिए, महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए वस्त्र, मालूम है उनको मालूम है। माननीय प्रधानमंत्री जी को गोविंद देव गिरि जी महाराज वस्त्र भेंट कर अपनी कृतज्ञता, प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। अन्य महानुभाव सम्मानार्थ खड़े हैं। पेजावर स्वामी जी माननीय डॉक्टर मोहन राव जी को, महंत दिनेन्द्र दास जी योगी आदित्यनाथ जी के प्रति,
योगी आदित्यनाथ, मैं धीरेन्द्र दास जी, यही है। तो पीतांबर वस्त्र, स्वर्ण आभूषण, हाथों में कोंदड़ और तीर ली रामलला की संपूर्ण तस्वीर देख लोग अभिभूत हुए। 500 सालों के बाद भारत में एक ऐसा दिन आया जिसका सदियों से इंतजार किया जा रहा था। प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। गर्भगृह में स्थापित हुए 5 वर्षीय बाल रामलला की मूर्ति अद्भुत है। ये श्यामल रंग के पत्थर से तैयार हुई है। भगवान श्री राम 5 शताब्दियों के बाद अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं। दिल्ली में राम जन्मभूमि के इस पावन प्रसंग पर एक डाक टिकट जारी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी और डॉक्टर मोहन राव भागवत को सम्मान में 2 चिन्ह भेंट करेंगे। ये राम जन्मभूमि मंदिर के चांदी के 2 बड़े मॉडल हैं। पूज्य गोविंद देव गिरि जी महाराज मंच पर आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुभ मुहूर्त में संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज शुभ मुहूर्त के हिसाब से मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज अंतःकरण अत्यंत उल्लास से, समाधान से और कृतज्ञता से भरा हुआ है। हमारा संपूर्ण राष्ट्र और पूरा विश्व भी आज भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है। यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास, इसकी प्रतीक्षा है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात यह संभव हो सका। इसके जो अनेक कारण हैं, उनके ऊपर तो आलोक हमारे सारे सम्माननीय अभ्यागत डालेंगे ही। मैं केवल एक काम के लिए यहां पर खड़ा हूं, छोटा सा काम। कारण तो अनेक होते हैं, लेकिन अनेक कारण मिलते मिलते आखिर वे एक विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाते हैं और उस स्तर पर कोई महापुरुष हम लोगों को उपलब्ध होता है और उस विभूति के कारण युग परिवर्तित हो जाता है।
प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है। और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान रत्नों में आज हम लोगों को समय की आवश्यकता, युग की आवश्यकता, सनातन के अंतःकरण की आवश्यकता के रूप में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं। यह केवल इस देश का नहीं, यह संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा राजदर्शी हम लोगों को प्राप्त हुआ। आपके मंगल हाथों से आज प्रतिष्ठा होने की बात थी, वह स्वाभाविक भी था, वो होना ही था मित्रों। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ जब मुझे लगभग 20 दिन पूर्व समाचार मिले कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रतिष्ठा के लिए स्वयं अपने लिए क्या क्या अनुष्ठान करके सिद्ध करना चाहिए स्वयं को, उसकी नियमावली आप लिख करके भेजें। जिस प्रकार का हमारे देश का राजनीतिक माहौल है, कोई भी आकर के किसी भी समय कुछ भी कर्म करके चला जाता है, वो उद्घाटन हो चाहे पौधारोपण हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए मैं अपने को सिद्ध करूं, इस प्रकार की भावना कहां होती है? यदि किसी ने पूछा तो मैं कहूंगा कि यहां होती है। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा करनी है। भारतीय जीवनादर्शों के सर्वोच्च आदर्श भगवान श्री राम है और इन समस्त जीवनादर्शों की प्रतिष्ठा करने के समान ही यहां की प्रतिष्ठा रही है। इसलिए एक महान विभूति को ऐसे लगा कि मैं अपने को भी साधूं। मैं कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से और वाणी से अपने को उसके लिए शुद्ध बनाऊं, सिद्ध बनाऊं, और उसका मार्ग तप ही है। भगवत गीता ने कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में तप। तप से ही विशेष परिशुद्धि होती है। आज मुझे आपको बतलाने समय अंतःकरण गदगद होने की अनुभूति हो रही है। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है, अनशन यह सबसे बड़ा तप है, अनशन। और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं। आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका यह अभ्यास 40 वर्षों का है। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। वे इन दिनों में हमने कहा था कि आपको विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांसर्गिक दोष भी आते हैं। विदेश प्रवास टाल दिया सांसर्गिक देशों के इस दोषों की संभावना के कारण, लेकिन दिव्य देशों का प्रवास ऐसा किया। नासिक से आरंभ किया, गुरुवायूर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए। इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमाणुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानो वे निमंत्रण दे रहे थे कि आइए दिव्य आत्माओं, अयोध्या पधारिए और हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। हमने केवल कहा था 3 दिनों तक आपको भूमि शयन करना चाहिए। 11 दिनों से आप भूमि शयन कर रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में इस प्रकार का शयन करना, मित्रों, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को निर्माण किया। उस समय उन्होंने
एक शब्द को सुना था। भारत की संस्कृति का सबसे मूल शब्द है तप तप इति। हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरु कहा करते थे, कांची के परमाचार्य जी महाराज, तपश्चर। मैं जब भी उनसे मिलता था वे कहते थे तपश्चर। आज तप की कमी हो गई है और उस तप को हमने साकार आप में देखा। मुझे इस परंपरा को देखते हुए केवल एक राजा याद आता है जिसमें यह सब कुछ था, और उस राजा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। मित्रों, लोगों को पता नहीं है शायद, वे स्वयं जब मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए श्री शैलम के ऊपर गए, 3 दिन का उपवास किया, 3 दिन शिव मंदिर में रहे, और महाराज ने कहा कि मुझे राज्य नहीं करना है, मुझे संन्यास लेना है, मैं शिव जी की आराधना के लिए जन्मा हूं, मुझे संन्यास लेना है, मुझे वापस मत ले जाइए। इतिहास का वो बड़ा विलक्षण प्रसंग है। उस प्रसंग में उनके सारे ज्येष्ठ मंत्रियों ने उनको समझाया और लौटा करके लाया कि यह भी आपका कार्य भगवत सेवा ही है। आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुष ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसको भगवती जगदम्बा ने स्वयं हिमालय से लौटा करके भेज दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो। तुम्हें भारत माता की सेवा करनी है। मैं अपने को कभी श्रद्धा रखने के बारे में भावुक नहीं पाता हूं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर आदर के साथ अपना मस्तक अपने आप झुक जाता है। ऐसा एक स्थान हम लोगों को उच्च पदस्थ राजर्षि ने जब दिखाया तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की याद आ गई। उन्होंने शिवाजी का वर्णन किया, निश्चयाचा महामेरु, निश्चयाचा महामेरु, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितिता निर्धारू, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी। हम लोगों को आज एक श्रीमंत योगी प्राप्त हुआ। आज मैं यहां पर केवल इसलिए खड़ा हूं कि इतने तपस्या के पश्चात इन सारे महात्माओं की अनुमति लेकर के और उनके आशीर्वाद लेकर के उनका यह तप पूर्ण करने के लिए, उसकी सांगता के लिए उनको चरणामृत दिया जा रहा है। आप सबकी सहमति हो तो आप सब लोग ओंकार का घोष करके मुझे सहमति दें। तो गोविंद देव गिरी जी महाराज ने कहा कि ये मंदिर में अपना उपवास पूर्ण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 11 दिवसीय उपवास को वो पूर्ण कर रहे हैं। मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचामृत खाकर अपना उपवास तोड़ा। मंच पर मौजूद गोविंद देव गिरी जी महाराज ने कहा कि ये मंदिर में केवल एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो सकी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपने को सिद्ध करने के लिए पूरी नियमावली का पालन किया। उन्होंने पीएम मोदी को राजश्री की उपाधि दी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर भगवान का महोत्सव हो रहा है। इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है। वास्तव में भगवान की लीला ऐसी है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम सभी लोग भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर हृदय से अपना स्नेह, अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री रामलला भगवान की, श्री रामलला भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, सरयू माता की, सरयू माता की, जय जय सीताराम। रामोत्सव के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूज्य संतजन, अपने अपने क्षेत्र के नेतृत्व देने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, रामोत्सव के इस पावन पर्व के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का, अन्य समागत अतिथियों और महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु रामलला के भव्य दिव्य और नव्य धाम में विराजने की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है, हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप रही है, रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज रघुनंदन राघव रामलला हमारे हृदय के भावों से भरे संकल्प स्वरूप सिंहासन पर विराज रहे हैं। आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव हैं। आखिर
भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति, विचार दर्शन, उपासना पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में आपके आगमन के साथ ही भारतीय जनमानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। अभी गर्भगृह में वैदिक विधि विधान से रामलला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को हम सब साक्षी बने हैं। अलौकिक छवि है हमारे प्रभु की, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धन्य है वह शिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की छवि को मूर्त रूप प्रदान किया है। विचारों और भावनाओं की विहलता के बीच मुझे पूज्य संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुण्य स्मरण हो रहा है। आज उनकी आत्मा को असीम संतोष और आनंद की अनुभूति हो रही होगी। जिन परंपराओं की पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ में अपनी आहुति दे चुकी है, उनकी पावन स्मृतियों को मैं यहां पर कोटि कोटि नमन करता हूं। श्री राम जन्मभूमि महायज्ञ न केवल सनातन आस्था और विश्वास की परीक्षा का काल रहा, बल्कि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्र की सामूहिक चेतना जागरण के ध्येय में भी सफल सिद्ध हुआ है। सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर प्रतीक्षित नवविवाह को देख अयोध्या समेत पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है। भाग्यवान है हमारी पीढ़ी जो इस राम काज के साक्षी बन रहे हैं, और उससे भी बड़भागी हैं वो जिन्होंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं। जिस अयोध्या को अवनी की अमरावती और धरती का वैकुंठ कहा गया, वह सदियों तक अभिषिप्त थी, उपेक्षित रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही। अपनी ही भूमि पर सनातन आस्था पद्दलित होती रही, चोटिल होती रही, किंतु राम का जीवन हमें संयम की शिक्षा देता है और भारतीय समाज ने संयम बनाए रखा। लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दृढ़ होता गया, और आज देखिए पूरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभा रही है। हर कोई अयोध्या आने को आतुर है।
आज अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव उतर आया है। दिख रहा है यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। पूरा विश्व दिव्य और भव्य अयोध्या का साक्षात्कार कर रहा है। आज जिस सुनियोजित एवं तीव्र गति से अयोध्यापुरी का विकास हो रहा है वह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के बिना संभव नहीं था। कुछ वर्ष पहले कल्पना से परे था कि अयोध्या में एयरपोर्ट होगा, यहां के नगर के भीतर 4 लेन की सड़कें होंगी, सरयू जी में क्रूज चलेंगे, अयोध्या की खोई गरिमा वापस आएगी। लेकिन मित्रों, डबल इंजन की सरकार के प्रयास से आज आप सबके सहयोग से यह सब साकार हुआ है। सांस्कृतिक अयोध्या, आयुष्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्षम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या के रूप में पुनरुद्धार के लिए हजारों करोड़ रुपए वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं। राम जी की पेड़ी, नया घाट, गुप्तार घाट, ब्रह्मकुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन्न कुंडों के कायाकल्प, संरक्षण, संचालन, रखरखाव के कार्य हो रहे हैं। रामायण परंपरा की कल्चरल मैपिंग कराई जा रही है। राम वनगमन पथ पर रामायण वीथिका का निर्माण हो रहा है। नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सभ्यता को संरक्षण तो हो ही रहा है, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आधुनिक पैमाने के अनुसार सभी नगरीय सुविधाएं भी विकसित हो रही हैं। इस मोक्षदायिनी नगरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। पूरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्थावानों, संतों, पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासुओं के प्रमुख केंद्र के रूप में इसे बनाने की ओर से अग्रसर किया जा रहा है। यह एक नगर या तीर्थ भर का विकास नहीं है, यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्यमेव जयते के रूप में भारत के राज चिन्ह में अंगीकार किया गया है। यह लोक आस्था और जन विश्वास का विजय है, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है। अयोध्या का दिव्य दीपोत्सव नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अभिव्यक्ति सिद्ध कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह राष्ट्र मंदिर है। निसंदेह श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक अवसर है। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गूंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर के स्वप्न को साकार रूप देने में योगदान देने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, शिल्पियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद। पुनः आप सभी को रामलला के विराजने की इस ऐतिहासिक पुण्य घड़ी की बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सरसंघ चालक जी, माननीय राज्यपाल महोदया और आप सभी महानुभावों का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम सब जो संकल्प पूर्वजों ने लिया था उसकी सिद्धि की भी
सभी को बधाई देते हुए प्रभु के चरणों में एक बार पुनः नमन करते हुए पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज के इस रामोत्सव के अवसर पर कोटि कोटि बधाई और अभिनंदन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय सीताराम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदया, देश के आज विद्यमान सभी पंथ संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे संत ऋषि आचार्य गण और समाज के सब स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले निमंत्रित महानुभाव, आज का आनंद शब्दों में वर्णनातीत है और उसके वर्णन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तव्यों में अच्छा हो गया है। यह भी बता दिया गया है और हम जानते भी हैं कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है। और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन के दिन फिर वापस जो जो श्रवण करेगा
वो राष्ट्र के लिए कर्म प्रवण होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख दैन्य हरण होगा। ऐसे इस इतिहास का सामर्थ्य है। परंतु उसमें हमारे लिए कर्तव्य जी ने तब किया, अब हमको भी तब करना है। राम राज्य आने वाला है, वो कैसा था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब निर्दंभ धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज्य के सामान्य नागरिकों का जो वर्णन है, हम भी इस गौरवमय भारतवर्ष की संतानें हैं। कोटि कोटि कंठ उसका जयगान करने वाले हमारे हैं। हमको इस प्रकार के व्यवहार को रखने का तप आचरण करना पड़ेगा। हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी। छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं, छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। आखिर है क्या? ये बात बताई, वो सामान्य नागरिक कैसे थे? निर्दंभ, प्रामाणिकता से आचरण करने वाले, केवल बातें करने वाले नहीं और बातें करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे। काम करते थे, आचरण करते थे और अहंकार नहीं था। ऐसे वो थे और धर्मरत थे। यानी क्या थे? इस पर कठिन भाषा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़े में धर्म के जो 4 मूल्य जिनकी चौखट पर धर्म है, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया है, सत्य करुणा शुचिता तपस, उसका आज हमारे लिए युगानुकूल आचरण क्या है? तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है, ब्रह्म सत्य है, वही सर्वत्र है। तो हमको ये जानकर आपस में समन्वय से चलना होगा, क्योंकि हम चलते हैं, सबके लिए चलते हैं, सब हमारे हैं, इसलिए हम चल पाते हैं। और इसलिए आपस में समन्वय रखकर व्यवहार करना, यह धर्म का पहला जो पैर है, सत्य, उसका आचरण है। करुणा दूसरा कदम है, उसका आचरण है सेवा और परोपकार। सरकार की कई योजनाएं गरीबों को राहत दे रही, सब हो रहा है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है, ये सब समाज बांधव हमारे अपने बंधु है। तो जहां हमको दुख दिखता है, पीड़ा दिखती है, वहां हम दौड़ जाए, सेवा करें, दोनों हाथों से कमाएं, अपने लिए न्यूनतम आवश्यक रखकर बाकी सारा वापस दे, सेवा और परोपकार के माध्यम से। यह करुणा का अर्थ आज है। शुचिता पर चलना है, यानी पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता के लिए संयम चाहिए, अपने को रोकना है। सब अपनी इच्छाएं, सब अपने मत, सब अपनी बातें ठीक होंगी ही ऐसा नहीं, और होगी तो भी अन्यों के भी मत है, अन्यों की भी इच्छाएं हैं। और इसलिए अपने आप को संयम में रखते हैं तो सारी पृथ्वी सब मानवों को जीवित रखेगी। गांधी जी कहते थे, अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, बट इट कैनॉट सेटिस्फाई एवरीवन्स ग्रीड। तो लोभ नहीं करना, संयम में रहना और अनुशासन का पालन करना, अपने जीवन में अनुशासित रहना, अपने कुटुंब में अनुशासन रहना, अपने समाज में अनुशासन रहना। सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करना। भगिनी निवेदिता कहती थी कि स्वतंत्र देश में नागरिक संवेदना रखना और नागरिक अनुशासन का पालन करना, यही देशभक्ति का रूप है। इससे जीवन में पवित्रता आती है। और तपस का तो मूर्तिमान उदाहरण आपके सामने आज दिया गया। व्यक्तिगत तपस तो हम करेंगे, सामूहिक तपस क्या है? संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनांसी जानता।
हम साथ चलेंगे, बोलेंगे आपस में, उसमें से एक सहमति का संवाद निकालेंगे, एक ही भाषा बोलेंगे, वो वाणी मन वचन कर्म समन्वित होगा और मिलके चलेंगे, अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। ये तपस हम सबको करना है। 500 वर्षों तक अनेक पीढ़ियों ने लगकर परिश्रम करके प्राणों का बलिदान देके खून पसीना बहाकर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्ध करा दिया। उन सबके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता है। मैं यहां बैठता हूं तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया, मैंने क्या किया? वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनिधि भी मुझे बनाया गया है। उस प्रतिनिधि के नाते मैं ये अवदान स्वीकार करता हूं और उन्हीं को अर्पण करता हूं। परंतु उनका ये व्रत हमको आगे लेके जाना है। जिस धर्म स्थापना विश्व में करने के लिए राम का अवतार हुआ था, उस धर्म स्थापना को अनुकूल स्थिति अपने आचरण में अपने देश में उत्पन्न करना, यह अपना कर्तव्य बनता है। रामलला आए हैं हमारे मन को आह्लादित करने के लिए, उत्साही करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, साथ साथ इस कर्तव्य की याद दिलाकर उसमें कृति प्रवण करने के लिए आए हैं। उनका आदेश सर पे लेके हम यहां से जाए। सब लोग तो यहां आ नहीं सके, लेकिन वो सुन रहे, देख रहे। अभी इसी क्षण से इस व्रत का पालन हम करेंगे तो मंदिर निर्माण पूरे होते होते विश्व गुरु भारत का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। इतनी क्षमता हम सबकी है। इसका मैं एक बार स्मरण देता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धेय मंच, सभी संत एवं ऋषिगण, यहां उपस्थित और विश्व के कोने कोने में हम सबसे साथ जुड़े हुए सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे।
हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। आज दिन, दिशाएं, दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है। ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गढ़ी को भी प्रणाम करता हूं। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सबको नमन करता हूं। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है। वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। मैं इन सभी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज
प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, त्रेता में राम आगमन पर पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति सबनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। साथियों, आज गांव-गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं। आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। आज शाम घर घर राम ज्योति प्रज्वलित करने की तैयारी है। कल मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुषकोडी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था। जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे, वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की। वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा।
अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे, चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो या फिर धनुषकोडी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए हैं। हम भारत में कहीं भी किसी की अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा। इससे उत्कृष्ट, इससे अधिक देश को समायोजित करने वाला सूत्र और क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाषाओं में रामायण सुनने का अवसर मिला है, लेकिन विशेषकर पिछले 11 दिनों में रामायण अलग अलग भाषा में अलग राज्यों से मुझे विशेष रूप से सुनने का मौका मिला। राम को परिभाषित करते हुए ऋषियों ने कहा है, रमन्ते यस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए हैं। हर युग में लोगों ने राम को जिया है। हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। प्राचीन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं। राम कथा असीम है और रामायण भी अनंत है। राम के आदर्श, राम के मूल्य, राम की शिक्षाएं सब जगह एक समान है। प्रिय देशवासियों, आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई है। उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। साथियों, आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यह क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है।
दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलझी हुई गांठों को खोलने का प्रयास किया, उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई, बल्कि कई बार तो पहले से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां बन गई। लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में है, वैसा ही अनेक देशों में है। आज अयोध्या का यह उत्सव रामायण की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। रामलला की ये प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं। आज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है।
राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई थी। हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हमें आज से, इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। राम के विचार मानस के साथ ही जनमानस में भी हो, यही राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी है। साथियों, आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा। हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पण, ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें बाहर नहीं खोजना पड़ता। प्रत्येक भारतीय में भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेंगे। और यही तो है देव से देश
और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। दूर सुदूर जंगल में, कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मां शबरी का ध्यान आते ही अप्रतिम विश्वास जागृत होता है। मां शबरी तो कब से कहती थी, राम आएंगे। प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। हम सब जानते हैं कि निषाद राज की मित्रता सभी बंधनों से परे है। निषाद राज का राम के प्रति सम्मोहन, प्रभु राम का निषाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है। सब अपने हैं, सभी समान है। प्रत्येक भारतीय में अपनत्व की, बंधुत्व की ये भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, आज देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। मैं तो बहुत सामान्य हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। गिलहरी का स्मरण ही हमें हमारी इस हिचक को दूर करेगा, हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है, अपना योगदान होता है। और सबके प्रयास की यही भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, लंकापति रावण प्रकांड ज्ञानी थे, अपार शक्ति के धनी थे, लेकिन जटायु जी की मूल्य निष्ठा देखिए। वे महाबली रावण से भिड़ गए। उन्हें भी पता था कि वो रावण को परास्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को चुनौती दी। कर्तव्य की यही पराकाष्ठा समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार है। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे। राम काज से राष्ट्र काज, समय का पल पल, शरीर का कण कण राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण के ध्येय से जोड़ देंगे। मेरे देशवासियों, प्रभु श्री राम की हमारी पूजा विशेष होनी चाहिए। ये पूजा स्व से ऊपर उठ करके समष्टि के लिए होनी चाहिए। ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए। प्रभु को जो भोग चढ़ेगा वो विकसित भारत के लिए हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रसाद भी होगा। हमें नित्य पराक्रम, पुरुषार्थ, समर्पण का प्रसाद प्रभु राम को चढ़ाना होगा। इनसे नित्य प्रभु राम की पूजा करनी होगी, तब हम भारत को वैभवशाली और विकसित बना पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों,
ये भारत के विकास का अमृत काल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है। जो आसमान में तेजस और सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है। आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाव के साथ रामलला के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी थोड़ा आसन ग्रहण करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से कुबेर टीला की ओर प्रस्थान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से स्थान से प्रस्थान के पश्चात हमारे महंत नृत्य गोपाल दास जी के शिष्यगणों से निवेदन करूंगा, मंच पर आकर उनको नीचे की ओर ले जाए। जानकी दास जी अब मंच पर आ जाइए। Turning Point, Guwahati. Crunchometer. Mandir perfect crunch kunile baji jabo. Hokolu mari korilu munch, kintu napalu perfect crunch. এই ক্রাঞ্চ টু Perfectly right. ই হল নতুন সানফিস্ট মারি লাইট। নতুন মসমসিয়া সানফিস্ট মারি লাইটত আছে পাচনি কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ। তেন্তে আপুনি বাৰু পালেনে আপোনাৰ পাৰফেক্ট ক্ৰাঞ্চ?
শক্তিৰ বন্ধন, ভৰসাৰ বন্ধন। অসমত তাৰেই নাম বন্ধন বেংক। প্ৰথম পিম্পল তেন্তে কি কৈছে তোমাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ? বহুত কিবা কিবি, কিন্তু মোৰ OG অৰিজিনেল ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ তুমিহে না। সেইকাৰণে এইটো মোৰ OG এডভাইচ। ইয়াত আছে 100% নেচাৰেলি ডিৰাইভড নিম। ই হ'ল সোপ ফ্ৰী আৰু পেৰাবেন ফ্ৰী। পিম্পলছ আঁতৰাই স্কিন কৰি তোলে হেল্ডি। হিমালয়া পিউৰিফাইং নিম ফেচ ৱাছ, পিম্পলৰ অৰিজিনেল সলিউশ্যন। एक 1000 वर्षों का जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है, वह निश्चित तौर से पूरी दुनिया के सामने भारत भारतीयता को नए रूप में व्याख्यायित करता है, सनातन संस्कृति को नए स्वरूप में व्याख्यायित करता है। हमारी ही संस्कृति कहती है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हमारी ही संस्कृति कहती है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। हमारी ही संस्कृति कहती है कि हम विश्व बंधुत्व के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करें, राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व अंशदान करें। प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन में राष्ट्रीय समरसता का संदेश पूरे विश्व में व्यापक होता हुआ भगवान श्री राम की धरा से बहुत ही आनंद का विश्व की समरसता, विश्व की कल्याण और शांति की स्थापना का संदेश एक बार फिर से गुंजायमान होता हुआ कुछ तो है, कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में आकर्षित कर लेता है। कुछ तो खास है इस अयोध्या धाम में जो निर्गुण निराकार परब्रह्म को सगुण साकार बना देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र की धूल में, इस राष्ट्र के अन्न में जो मां कौशल्या के गर्भ में उस राम को उत्पन्न कर देता है पुत्र के रूप में, और उनकी गोद में पुत्र के रूप में परब्रह्म को खेलने पर विवश कर देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो भक्तों की भावना के अनुरूप अनंत अनंत रूप में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। राम सबके हैं, राम सर्वत्र हैं, और इसीलिए आज एक ऐसे ही अद्भुत अलौकिक स्वरूप में, बाल रूप में 5 वर्ष के राघव अब अपने भक्तों को नए नवीन नूतन दर्शन के लिए पधार चुके हैं। स्वागत कीजिए भगवान श्री राम का इस नए अवतार में। आज के इस अलौकिक दिव्य द्वादशी के तिथि में, जब कूर्म अवतार का दिन, आज भगवान श्री राम ने एक बार फिर से अवतार लिया। धराधाम, अयोध्या धाम, सरयू, सब कुछ प्रसन्न, आनंदित, उल्लसित। और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर पहुंचे हुए संत समाज का, आम जन का, जनता जनार्दन का, विशिष्ट अतिथियों का। आज अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम इस मायने में भी विलक्षण है क्योंकि समूची भारत की सारी परंपरा, सभी धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ, सबका यहाँ पर सम्मेलन हुआ है। एक यहाँ पर ऐसा समागम हुआ है जो सनातन संस्कृति के शाश्वत स्वरूप को स्थापित करता है। यहाँ पर शैव, वैष्णव, शाक्त, पत्य, गणपत्य, सिख, बौद्ध, जैन, दशानंद, शंकर, रामानुजाचार्य संप्रदाय, निम्बारका संप्रदाय, विष्णुनामी संप्रदाय, राम सनेही संप्रदाय, पंथों में घीसा पंथ, गरीबदासी, गौड़िया, कबीर पंथी, वाल्मीकि पंथी, धार्मिक संगठनों में अनेकानेक विश्व कल्याण में लगे हुए, भारत निर्माण में लगे हुए संगठनों के प्रतिनिधि, महिमा समाज, अकाली, निरंकारी, राम नामधारी, राधा स्वामी, वरकरी, वीरशैव, हर कोई भारत की समस्त मत पंथराय की जो अलग अलग धाराएं हैं वो आज उनका यहाँ पर समागम हुआ है, आज उनका यहाँ पर संगम हुआ है। और पूरी दुनिया चकित रूप में देख रही है कि किस तरीके से वैविध्य में एकता का प्रमाण, विविधता में एकता का प्रमाण, बहुरंगी सतरंगी विविध रंगी संस्कृति का आज यहाँ पर सम्मेलन हुआ है और पूरी दुनिया उल्लासित है। संभवतः इसीलिए कहा गया है कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तनमन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही, सब कुछ कर दूं इसको अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का सेवक हूँ, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का
कर सकता बलिदान अभय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो निश्चित तौर से एक जो हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है वो आज पूरी दुनिया देख रही है इस परम अयोध्या धाम से। वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई इस राष्ट्र की, कई वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई है उन संतों की जो लगातार भगवान श्री राम के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते रहे। तपस्या पूर्ण हुई है स्वयं प्रधानमंत्री की जो लगातार पिछले 11 दिनों से विशेष उपवास अनुष्ठान में हैं। उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई क्योंकि वो विशेष तौर पर श्रीरंगम और श्री रामेश्वरम से खुद भगवान श्री राम के लिए उपहार लेकर के आए, और उपहार तो समस्त देश से यहां पर पहुंच रहे हैं। कोई रामलला के लिए भोग न्यौछावर कर रहा है, तो कोई उनके पोशाक तैयार कर रहा है, कोई उनके लिए हीरे जवाहरात भेज रहा है, तो जनकपुर और मिथिला वाले भार भेज रहे हैं। उस भार में सोना है, चांदी है, भाव है, भंगिमा है, प्यार है, दुलार है, संस्कार है। तभी तो भगवान श्री राम सबके हैं, सर्वत्र हैं, और इसीलिए शायद ही कोई ऐसा राज्य हो इस राष्ट्र का जिसने भारत भूमि में अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के नव्य और भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान न दिया हो। यहाँ पर पत्थर आते हैं राजस्थान से, कारीगरी होती है तमिलनाडु से, पच्चीकारी होती है उड़ीसा से, श्रमजीवी होते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश से, और जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो 140 करोड़ लोगों के जनमानस की भावना को केंद्र में रखकर राष्ट्र के अध्यक्ष, राष्ट्र के नेता प्रधानमंत्री मोदी स्वयं प्रतिष्ठित करते हैं भगवान श्री राम को चेतन स्वरूप में सभी के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम सबके हैं, सर्वत्र हैं। और वही आह्वान उन्होंने किया है, वो आह्वान है कि भक्ति मुक्ति साधकम भारतम, धर्म कर्म नैष्ठिकम भारतम, रीति नीति संस्कृतम भारतम, शस्त्र शास्त्र धारकम भारतम, शक्ति युक्ति समृतम भारतम। और निश्चित तौर से ये आज एक संकल्प के सिद्धि का दिन है, और आज ही एक शपथ लेने का भी दिन है, आज ही एक और सौगंध लेने का दिन है, जिसमें कहा जाता है कि अजय्याम च विश्वस्व देही शक्तिम सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत, श्रुतम चैवयत यत्तंतकाकीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कार्येत। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दे कि विश्व में हमें कोई चुनौती न दे सके, ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिसके समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो, और ऐसा ज्ञान दे जो कि स्वयं स्वीकृत कंटकाकीर्ण मार्ग को सुगम बना दे, और सभी कंटकाकीर्ण मार्गों को सुगम बनाते हुए हम भारत को जगत गुरु की पदवी पर विश्व में स्थापित कर सके। यही कहा गया है कि परम वैभवम में नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम, हम अपने राष्ट्र को परम वैभव पर प्रतिष्ठित करें, और इसी का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धराधाम से आज इस युगांतकारी क्षण में दुनिया को दिया है। और इस वक्त आप देखिए संतों के लिए दरवाजे खुल चुके हैं भगवान श्री राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद संत जन चल चुके हैं प्रभु श्री राम के उस अलौकिक दिव्य छवि का दर्शन करने के लिए, जो बाल रूप में एक बार फिर से पूरी दुनिया को मोहित कर रही है, आकर्षित कर रही है। क्यों न हो, अयोध्याम च परब्रह्म सरयुः सगुणप्पमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान शिव जो कि जगत गुरु हैं, भगवान शिव जो श्री राम के सखा हैं, भगवान शिव जो श्री राम के स्वामी हैं, स्वयं मां पार्वती से कहते हैं कि अयोध्या जो परब्रह्म स्वरूपा है, सरयू का तीर्थ जो कि साकार जलाकार परम पुरुष परमात्मा की स्वरूपा है, उस अयोध्या के निवासी समस्त जीव जगन्नाथ स्वरूप हैं। जो इस वक्त सांस ले रहे हैं अयोध्या में, वो भी अयोध्यावासी हैं। जो अपने मन से इस दृश्य को देख रहे हैं, वो भी अयोध्यावासी हैं। जो परिकल्पना कर रहे हैं कि वो कभी अयोध्या आएंगे, भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे, वो भी इस वक्त अयोध्यावासी हैं। और अयोध्यावासी हैं इसीलिए जगन्नाथ स्वरूप हैं। और उन सभी जगन्नाथ स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के प्रेमी संतों के चरणों में, चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए बार बार वही धुन निकलती है कि भगवान श्री राम सबके हैं, लेकिन वो संतों के मन में रमते हैं, इसीलिए तो वो राम कहलाते हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं संतों का हुजूम, 8000 से ज्यादा विशिष्ट अतिथियों में संतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। और अनेकानेक बलिदानों के बाद जो आज प्राप्त हुआ है, अयोध्या की धरा को, भारतवर्ष की धरा को आज
संत विह्वल होंगे, उनके नयन सजल होंगे भगवान श्री राम को अपने बीच पाकर, अपने बीच एक नव्य और भव्य रूप में पाकर, उस कृष्ण वर्ण की 5 वर्ष के बालक के रूप में राघव को पाकर, जो आज कलयुग में त्रेता युग से उतर करके आए हैं और सभी को दर्शन करके दाढ़ दे रहे हैं। कितनी अलौकिक छवि, कितनी दिव्य छवि। आप भी अपने हृदय में उनको समा लेना चाहते होंगे, संजो लेना चाहते होंगे, और आप सभी का मन कर रहा होगा कि एक बार तो आए अयोध्या में और अयोध्यावासी बन जाए, स्वयं जगन्नाथ बन जाए। और ये समागम है, आज संगम हुआ है विविध मत, धर्म, पंथ, संप्रदाय का। 50 से अधिक आदिवासी, गिरिवासी, तटवासी, द्वीपवासी, जनजातीय परंपराओं की उपस्थिति इस आयोजन को समग्र समावेशी बनाती है। पहली बार भारत की इस बहुरंगी संस्कृति का ऐसा भव्य आयोजन इस धरती पर हुआ है, इस देश में हुआ है, आर्यावर्त में हुआ है, भारतवर्ष में हुआ है, और धन्य है ये अयोध्या धाम जहां पर इतना बड़ा समागम हुआ है। ये संगम आज श्री राम जन्मभूमि के दिव्य नव्य प्रांगण में हुआ है। निश्चित तौर से दुनिया आज देख रही है कि किस तरीके से एक नए भारत का उदय हो रहा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। जब दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। हमारी संस्कृति इतनी प्राचीन है, इतनी शाश्वत है, सनातन है। सनातन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राम जी के भैले जनमावा चलवो करियाई दर्शनवा। छल के सुख के छत्रपति सिंह दिलीप, छत्रपति और दिलीप दोनों मंच की ओर आ सकते हैं, आ जाओ। खैर से चलिए। छत्रपति सिंह और दिलीप दोनों अगर कहीं मेरी आवाज सुन रहे मंच पर बारंबार निवेदन करूंगा, धीरे धीरे आगे बढ़िए। मोरे राम अवध घर आए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। मोरे राम अवध घर आए, 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 मोरे राम अवध घर आए। संतोषी अखाड़ा के महंत जी को मेरा प्रणाम। आगे आगे राम चले, पाछे चली सेना, पाछे चली सेना, पाछे चली सेना। आगे आगे राम चले, पाछे चली सेना। आगे चले राम चले, पाछे चली सेना। हनुमान उड़ी आए, मोरे राम अवध घर आए। अरे हनुमान उड़ी आए, मोरे राम अवध घर आए। मोरे राम अवध घर आए, मोरे राम अवध घर आए, मोरे राम अवध घर आए, मोरे राम अवध घर आए। अरे घर घर लोग
वही जटायु जो अत्याचार के खिलाफ, वही जटायु जो विषमता के खिलाफ अपने आप को उन्होंने झोंक दिया, अपनी आहुति दे दी। और आप समझिए कि जिस पक्षी को, जिस गिद्धराज को इस समाज में सबसे अधम माना जाता है क्योंकि वो मरे हुए पशुओं का मांस खा करके अपनी जीवन रक्षा करता है, उसी पक्षीराज को भगवान ने अपनी गोद में रख करके अंतिम विदाई दी। उन्हीं पक्षीराज को अपनी गोद में रख करके भगवान ने वो गति प्रदान की जो उन्होंने अपने पिता स्वयं श्री दशरथ जी को प्रदान नहीं की। वही दशरथ जी जो स्वयं भी मनु के अवतार कहे जाते हैं, वही दशरथ जी जिन्होंने 33,000 वर्षों तक नैमिषारण्य में तपस्या की, मां शत्रुपा के साथ और कौशल्या और दशरथ के रूप में अवतरित हुए भगवान श्री राम को कर्षित कर लिया उन्होंने, लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें वो गति प्रदान नहीं की, उन्हें वो गति प्रदान की जटायु को। उस जटायु को जो पक्षी होते हुए भी उस पक्षी की भी श्रेणी में सबसे निम्नतम श्रेणी में आता है, उसको भगवान श्री राम ने हरि का रूप प्रदान किया। और हरि का रूप जब प्रदान किया तो जटायु हरि रूप में होकर के भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं। और संस्कृत में अध्यात्म रामायण में जो अद्भुत स्तुति जो जटायु जी ने की है उसका हम वर्णन करेंगे, लेकिन अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए, क्योंकि भगवान शिव माना जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के इष्ट भी हैं और लगातार उनका जो लगाव है वो हमारे सामने आता रहा है। भगवान रामेश्वर की पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्वेश्वर की पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर से लंका पर विजय प्राप्त करने के पहले जब भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया तो उस समय रामेश्वरम में भगवान विश्वेश्वर की, भगवान रामेश्वर की उन्होंने आराधना की। यह हमारी संस्कृति है जो किसी युद्ध के पहले सेतु बनाने का कार्य करती है। यह हमारी संस्कृति है जो युद्ध की जगह नीति पर अपना ध्यान देती है। यह हमारी संस्कृति है जो शाश्वत सनातन मूल्यों की स्थापना के लिए अपना दूत लंका में भेजती है। और यही हमारी संस्कृति है जो किसी भी तरह से अगर धर्म की स्थापना नहीं होती है तो अंतः स्तर पर, अंतिम स्तर पर धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध का भी वर्णन करती है और कहती है यतः धर्मो ततः विजय, यानी जहां धर्म है वहां जय है। और निश्चित तौर से हमारी ही संस्कृति में कहा गया है धर्मः रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यही हमारी संस्कृति है जो पूरी दुनिया को चकित कर देती है। यही हमारी संस्कृति है जो पूरी दुनिया के सामने ऐसा रूप प्रस्तुत करती है जो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर, भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन हिंदू रग रग मेरा परिचय। विश्व के कल्याण के लिए हलाहल को पीना, विश्व के कल्याण के लिए विश्व का वमन करना हमारी ही संस्कृति में है। और ऐसे ही आराध्य देव महादेव की वंदना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणाः, नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं, महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं, शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्य वासुकिः कण्ठभूषणं, वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। यत्र तत्र स्थितौ देवः सर्वव्यापी महेश्वरः, यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेत् शिवसन्निधौ, शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। भगवान शिव की परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये प्राचीन कुबेर का टीला, जहां पर अब आधुनिक रूप में जटायु जो कि पक्षी की श्रेणी में
त्रेता युग में उन्होंने मां सीता की सेवा में अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, जिन्हें भगवान श्री राम ने गले लगाया। आज वो फिर से अयोध्या की धराधाम पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं। एक बार फिर से कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिपाक्षी में थे, वही स्थल जहां पर जटायु का सबसे बड़ा मंदिर है, वही स्थल जहां पर जटायु को सद्गति प्रदान की गई थी, वही स्थल जहां पर जटायु और रावण का युद्ध हुआ था। आज एक बार फिर से जटायु उसी पराक्रम के प्रतीक के रूप में, जो कि अत्याचार के खिलाफ है, उसी उत्सर्ग के प्रतीक के रूप में, जो धर्म के प्रति उत्सर्ग का द्योतक है, आज फिर से जटायु श्री अयोध्या धाम में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। कुबेर टीला और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी उस दिव्य प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महान जटायु जो कि बाद में हरि रूप हो गए, स्वयं भगवान के रूप में वो अपने वैकुंठ धाम में श्री राम ने उन्हें भेजा। आज फिर से वो जटायु अयोध्या में पधार चुके हैं। और केवल जटायु ही क्यों, मुझे लगता है कि अनंत अनंत आत्माएं इस वक्त अयोध्या की धराधाम में आ चुकी हैं, अवतरित हो चुकी हैं, भगवान श्री राम का बाल रूप में दर्शन करने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए और अपनी कुछ न कुछ भेंट भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए। अगाध श्रद्धा भगवान श्री राम के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में बहुत पहले एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने जम्मू कश्मीर प्रवास के दौरान उन्होंने जो पंक्तियां लिखी वो यहां बताना उपयुक्त होगा। राम व्यक्ति को नहीं, वृत्ति को प्राप्त संज्ञा है। राम हमारा चिंतन, दर्शन, प्रीति, प्रवृत्ति और प्रज्ञा है। राम चिरंतन जीवन मूल्यों का स्वर्णिम शिखर है। राम हमारी संस्कृति के शाश्वत हस्ताक्षर हैं। राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी गति है। राम हमारी शान, हमारा भाल, हमारी स्तुति है। बिना राम के आदर्शों के चरमोत्कर्ष कहां, बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहां। ये उद्गार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशकों पहले खुद किए थे, खुद लिखे थे, उनकी लेखनी है। तो निश्चित तौर से प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सनातन संस्कृति के प्रतीक राम, सत्य शाश्वत सनातन प्रभु श्री राम, भारत के आत्म तत्व श्री राम, जब आज उनका अयोध्या में ही वनवास समाप्त हुआ है, तो यह क्षण पूरे देश, पूरी दुनिया और पूरी मानवता के लिए विलक्षण है। इस वक्त आप समझिए अयोध्या धराधाम में जो उपस्थित हैं शरीर से, उनको कितने आनंद की अनुभूति हो रही होगी, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं आनंद के सिंधु हैं। उनकी एक बिंदु से कोटि कोटि ब्रह्मांड आनंद के सागर में निमग्न हो जाते हैं। उनके नाम में ही र आ म में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के तत्व के रूप में अमृत की वर्षा होती है। और वही श्री राम आज फिर से प्रतिष्ठित हो रहे हैं जन जन में, मन मन में। भगवान नारद की वीणा की स्वर लहरियां अनंत अनंत ब्रह्मांड को इस वक्त श्री राम नाम की धुन से गुंजायमान कर रही हैं। भगवान श्री राम के आराध्य सखा और सबसे बड़े प्रेमी भगवान शिव शंकर अपने डमरू की नाद से तीनों लोगों को आनंदित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वर्ग में हमारे राजा पुरंदर, मृदंग और सभी देवता मजीरे, झांझ और घंटे घड़ियाल की सेवाएं दे रहे हैं। इस वक्त आप देखिए जटायु के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नरेंद्र मोदी और वह जटायु जिन्होंने त्रेता युग में जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तो एक योद्धा के रूप में, एक वीरव्रती के रूप में, एक राम के भक्त और अनन्य जीव के रूप में उन्होंने रावण का सामना किया। घायल हुए, वीरगति प्राप्त होने से पहले सद्गति देने के लिए भगवान श्री राम स्वयं प्रस्तुत हुए। और भगवान श्री राम के ही भुजाओं में जटायु का स्वर्गवास होता है, सद्गति प्राप्त होती है। ऐसा विरला क्षण किसी को नहीं प्राप्त होता। त्रेता युग में एक पक्षी को भी आप देख सकते हैं इस वक्त राम जन्मभूमि मंदिर पर जो मंदिर है उसके पास जो कुबेर टीला है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक मंदिर है कामेश्वर महादेव का, जो एक पुराना मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार राम मंदिर ट्रस्ट नहीं करवाया है, पहले से ये मंदिर यहाँ पर मौजूद था। उस मंदिर में पूजा अर्चना की है। तो कुबेर टीला है जहां पर प्रधानमंत्री ने ये पूजा अर्चना की है, करीब 100 फुट ऊंचा है और मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ है। तो इस मंदिर प्रांगण में सिर्फ रामलला ही विराजमान नहीं है, अन्य देवी देवता भी विराजमान है। भव्य मंदिर बनाया गया है और थोड़ी ही देर में
प्रधानमंत्री जटायु जी, पक्षी राज जटायु जी की भी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और जटायु के बिना रामायण पूरी तरह से कभी, रामायण की चर्चा जटायु राज के बिना अधूरी है। निखिल जी, निश्चित तौर पर जटायु राज के बिना ये चर्चा अधूरी है। और फिलहाल ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, रामलला का विग्रह देख रहे हैं, ये अब जीवंत हो उठी है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है, ऐतिहासिक रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी इस परिसर में अगर कहा जाए तो अयोध्या धाम और ये जो मौजूद प्रतिमा है, इसको आप देखेंगे तो इसमें बाल तत्व भी है, देव तत्व भी है और राजकुमार की छवि भी है। जी, निश्चित तौर पर बेहद सौम्य मुद्रा, बाल मुद्रा जो है भगवान श्री रामलला की इसमें नजर आती है। जी, निश्चित तौर पर। और ये सबके मन को मोहने वाली है, मन को हरने वाली है। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं, सदियों की अभूतपूर्व त्याग, बलिदान और तपस्या के बाद हमारे राम आ गए हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे राम आ गए हैं। और उसके साथ ही साथ हमारे राष्ट्र के स्व की चेतना भी लौटी है प्रधानमंत्री के शब्दों में। और उसके साथ ही साथ कुछ संकल्प भी लिए गए हैं आज इस राम मंदिर परिसर से, इस प्रांगण से। और भगवान राम के सामने वो सौगंध ली गई है विकसित भारत बनाने की। ये इस बात की सौगंध ली गई है कि अब परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और ये जो समय है यही उत्तम समय है, यही सही समय है और इस समय को खाली नहीं जाने देंगे। और राम मंदिर के इस निर्माण के बाद, इस भव्य दिव्य अयोध्या के में श्री राम जन्मभूमि के इस मंदिर निर्माण के बाद आखिर आगे क्या, इस सवाल पर भी बहुत खुले मन से प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी और कहा कि ये एक तरह से कैलेंडर पर लिखी हुई एक तारीख नहीं है 22 जनवरी 2014, लेकिन बल्कि ये एक नए कालचक्र का उदय है और ये सकारात्मक है, ये हमें प्रेरित करता है, ये हमें आगे की ओर ले जाता है। कि इस तारीख को कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक नहीं बल्कि हजारों सालों तक इस तारीख को याद रखा जाएगा, इस दिनांक को याद रखा जाएगा, क्योंकि ये काल चक्र है और यहाँ से भारत जो है वो एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। जी बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं बल्कि विनय का भी है। उन्होंने एक सर्व समाज की बात कही। उन्होंने जब आप विनय की बात कर रहे हैं तो इस जो रामलला की जो मूर्ति है इसमें विनय का भाव, सौम्यता का भाव जो है वो साफ साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री ने एक बात कही आज कि रामलला टेंट में थे और अब महल में पहुंच चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं। जब हमें तस्वीर देख रहे हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से गुलाबी रंग के कनात के बीच, टेंट के बीच में रामलला को रहना पड़ता था। वहां पर सिंहासन की जगह जो है वो नुकीले पत्थर निकले हुए थे और उन्होंने हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फूलों की जगह पर वहां पर नुकीले पत्थर थे, बंजर टीला था और वहां पर रामलला रहे थे। और आज वो रामलला जो है एक महल में प्रवेश कर गए हैं और दिव्य मूर्ति, दिव्य प्रतिमा हमारे दर्शक देख सकते हैं। वो आभा मंडल नजर आ रहा है रामलला को और रामलला को का स्थान यही था, यही रामलला को विराजित होना था। और आज रामलला 500 साल की तपस्या के बाद यहाँ पुनः विराजित हो गए। और ये कुबेर टीले पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। ये जो पूजा अर्चना का काम का जो पूजा अर्चना जो कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपसे की ये तस्वीरें हैं, इसको हमने आपको लाइव भी दिखाया था। और ये तस्वीरें कबीर का टीला की हैं, जिस तरह से आपने बताया बिल्कुल कि ये एक तकरीबन 100 फीट ऊंची जगह है। और श्री राम का अयोध्या धाम में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है, जो आपने कहा कि श्री राम ही नहीं बल्कि बहुत सारे देवी देवता विराजमान। जी, इसका एक बहुत अलग महत्व ये भी है कि ये ऐसा माना जाता है इस कुबेर के टीला के बारे में कि जब राम जी यहाँ पर खेलते थे, जब राम जी यहाँ पर रहते थे, तब भी ये मौजूद था। और उसके बाद इस कुबेर के टीले पे महादेव का तो ये मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है राम मंदिर ट्रस्ट ने, बल्कि यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा है, माता पार्वती की प्रतिमा है, कार्तिकेय जी, नंदी जी, कुबेर जी स्वयं यहाँ पर और 9 देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इस कुबेर के टीले का बड़ा ही महत्व है। पुरातन काल में भी जब भव्य राम मंदिर हुआ करता था पहले, तो उस दौर में भी जो है कुबेर के टीले का एक खास महत्व था और लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे। और इसी कुबेर के टीले पर जटायु राज जी भी एक विशाल प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। आपने 2 बातें कही, उनको मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक तो आपने कहा कि भगवान राम की जो प्रतिमा है ये सौम्यता और विनय भी दर्शाती है और भगवान राम का जो चरित्र है वो उदात्त है, सौम्य है,
दिव्य है, भव्य है और पराक्रमी भी है। बिल्कुल। तो जो सौम्यता और पराक्रम का अद्वितीय रूप है वो भगवान श्री राम का रूप है। और आपने दूसरी बात जटायु की बात कही है, जटायु का टीला है, दरअसल जटायु की तस्वीर का अनावरण कर दिया, अनावरण कर रहे हैं उस प्रतिमा का। ये देखिए कितनी भव्य ये मूर्ति है और निश्चित तौर पर जटायु, गिद्धराज जटायु आज भी याद किए जाएंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जानते थे कि वो महाबली रावण के खिलाफ युद्ध नहीं जीत पाएंगे उनके विरुद्ध, उसके बावजूद यहाँ तुलसीदास जी का हमें जिक्र करना जरूरी है, जो उन्होंने जटायु के पूरे चरित्र का वर्णन किया है। जब जटायु सीता हरण को रोकने में भले नाकाम हो गए, लेकिन अपने प्राणों का जो उन्होंने बलिदान दे दिया, और जब घायल अवस्था में थे और जब राम उनसे मिलने पहुंचे तो राम पूरे रामचरितमानस में जटायु और श्री राम के जो संवाद का जिक्र आता है वो बड़ा ही सुंदर शब्दों में तुलसीदास जी ने लिखा है। वो लिखते हैं कि परहित बस जिन्हें के मानी माही, तिन्हु कहूं जग दुर्लभ कुछ मनाही, तनु तीज तात जाहू मम धामा, देहू काह तुम्हें पूरन कामा। यानी भगवान श्री राम जटायु महाराज से कहते हैं कि जिनके मन में दूसरे का हित बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, यानी हे जटायु, हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं, आप तो सब कुछ पा चुके हैं। ये जो भाव भीना संवाद जो है प्रभु श्री राम और जटायु के बीच में, जटायु के अंतिम वक्त में, और आज उसी राम जन्मभूमि पर, उसी राम के महल में, उसी राम जी के घर में जटायु राज की जो है ये विशाल प्रतिमा लग रही है। और ये प्रतिमा हमें याद दिलाती रहेगी हमारे आने वाली पीढ़ियों को बरसों बरस तक कि नारी अस्मिता के लिए इस तरह का आत्म उत्सर्ग करना जो व्यक्ति करता है उसे सदियों ही नहीं कालों तक उसको याद रखा जाता है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं जब प्रधानमंत्री जटायु राज की इस प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर आपने जिस प्रसंग का वर्णन किया गिद्धराज जटायु और भगवान श्री राम के उस प्रसंग का, वहां और भगवान राम के जब पराक्रम की बात कहते हैं जी, तो एक प्रसंग ये भी है रामचरितमानस में और रामायण में कि जटायु जी का सर जो है वो भगवान राम के गोद में था और वो उनके सर को सहला रहे थे और वो अंतिम सांसें गिन रहे थे जटायु। ये देखिए ये दिव्य तस्वीरें ये भी कही जाएंगी क्योंकि ये जो श्रमिक हैं, जो ये श्रमिक हैं, ये वो श्रम साध्य लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में भाग लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यही बात प्रधानमंत्री को बाकियों से अलग करती है, ये भाव बताता है। जो नींव के पत्थर हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर सर्दी बरसात ठंड में गर्मी में जो इस तरह से मेहनत की है और ये भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है, यही असली नींव के पत्थर हैं। और अभी ये श्रम देवता है। हम दूरदर्शन पे भी हमने इनके कई इंटरव्यूज दिखाए श्रमवीरों के, और ये लोग जो बातें बताते थे कि जब अपने गांव में लोग जाते थे और कहते थे कि हम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का कार्य कर रहे हैं, तो गांव में इनके पैर लोग छूते थे। तो ये अपने आप में जो है सिर्फ श्रमिक नहीं है, श्रमवीर है, ये असली राम भक्त हैं, इसीलिए श्रम जिनकी मेहनत कहा पर जा रहा है राम मंदिर खड़ा हुआ। प्रखर इनको इसीलिए श्रम देवता कहा जा रहा है। और सच में ये एक जो चलन और ये जो भाव जिसमें कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रमुहूर्त देखी तिन तैसी, तो इनके अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाव देखते हैं उन्होंने एक नया रूप दिया है। अगर हम ये कहें कि त्रेता युग में जैसे वानर सेना थी जी, त्रेता युग में जो कार्य वानर सेना ने किया, ठीक उसी तरह से ये इस युग की जो है ये श्रम सेना है, आपने निश्चित तौर पर कहा। और इस मंदिर के दुसाध्य मंदिर के निर्माण में जिस तरह से इन श्रमवीरों का योगदान रहा है उसको अलंकृत करते हुए प्रधानमंत्री पुष्प गुच्छों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, और ये निश्चित तौर पर ये उनका जो एक भाव है ये अपने आप में बहुत ही प्रसन्न करने वाला, आह्लादित करने वाला, आनंदित करने वाला। और निश्चित तौर पर ये जो श्रमिक हैं वो अपने आप को बहुत धन्य और महसूस कर रहे होंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक इंटरव्यू एक श्रमिक का देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि वो कह रहे थे कि जो मुझे यहाँ से जो भी मुझे पैसा मिला है श्रम करने के बदले, वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ही मैं दान करके चला जाऊंगा, तो वो महादान है। जी एक श्रमिक जिसने जो पूरी कमाई की इस मंदिर के निर्माण के दौरान, वो समस्त कमाई, अपनी समस्त आय अगर राम मंदिर ट्रस्ट को दान कर देता है, मैं मानता हूँ कि वो सबसे महान दान है। और वो इन श्रमिकों ने करके दिखाया है, श्रमदान के माध्यम से भी और अपनी भावनाओं के माध्यम से। जी निश्चित तौर पर तो ये जो दृश्य है ये अभूतपूर्व है। ये दरअसल इसको कहा जाए कि ये दृश्य भी आंखों में बिठा लिया जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से राम की प्रतिमा जिन्होंने गढ़ी, दरअसल
वो जो इस राम के पूरे मंदिर को साकार जिन्होंने किया, इस जन्मभूमि के मंदिर को कितने कम समय में, और कितना भव्य दिव्य मंदिर है, उस हिसाब से निश्चित तौर पर ये जो श्रमदेव हैं, ये भी पूजनीय। मुझे लगता है कि पहले हम कभी नहीं देखते थे, भारत में और भी निर्माण हुए हैं, लेकिन इस तरह से श्रमवीरों का सम्मान करना, ये बहुत अच्छी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की। हमने हर जगह पे देखा, हमने प्रगति मैदान का जब निर्माण हुआ, भारत मंडपम बना, उसके श्रमिकों के साथ बातचीत की। काशी विश्वनाथ को भी हम देख लें, हम देखते हैं सफाई कर्मचारी जब जो थे, उनके जिस तरह से चरण धोए थे प्रधानमंत्री ने, तो ये एक बहुत अच्छी अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है। और ये भविष्य के लिए एक प्रेरणा देती है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, अन्यथा लोग जिस तरह का व्यवहार विचार रखते थे उसके उलट है, और अब ये भाव सामने आ रहा है। बिल्कुल, इनको विश्वकर्मा का रूप, विश्वकर्मा, ये असली विश्वकर्मा है, ये असली विश्वकर्मा। इनको बताइए, ये देखिए, ये भव्य दिव्य मंदिर जो आंखों में समा लेने को जी चाहता है, दरअसल इन्हीं विश्वकर्मा ने, इन्हीं श्रमवीरों ने, इन्हीं श्रम देवताओं ने बनाया है। और निश्चित तौर पर उनके ऊपर अगर प्रधानमंत्री पुष्प वर्षा कर रहे हैं तो ये उनकी बड़ा काम है, उदारता भी है। और सभी को, मैं कहता हूँ कि इसको सभी को, जो राजनीतिक नेतृत्व है और भी, उनको भी इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि जब एक देश का प्रधानमंत्री ऐसे श्रमवीरों को पुष्प वर्षा करता है तो कितना आह्लादित महसूस करते हैं, कितना वो प्रेरित महसूस करते हैं, ये बात समझने की है। बहुत शानदार दृश्य हैं, मन को विह्वल करने वाले दृश्य हैं, ये सोचने की बात है। बिल्कुल, अभी कुछ श्रमिकों से बातचीत भी की थी, हमारे डीडी न्यूज पर भी वो बातचीत दिखाई गई थी। कई श्रमिक ये कह रहे थे कि उनका मन इतना रम गया है यहाँ पे कार्य करते करते कि अब वो अयोध्या से जाना ही नहीं चाहते हैं, सोच रहे हैं कि यहीं पे कुछ अन्य कार्य वो करना शुरू कर दें। जी, तो ये जो असली राम भक्त है, ये नींव के पत्थर है। जब भी मंदिर बनता है हम कलश की तरफ देखते हैं, लेकिन वो नींव जिसने आज अपने भाषण के दौरान, जी, जिसके हाथों ने ये निर्माण किया, जिसे कर कमलों से निर्माण किया है, उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि जब जब इस मंदिर का जिक्र होगा, इसके निर्माण में लगे इन श्रमवीरों को भी हमेशा याद रखा जाएगा। जी, निश्चित तौर पर जब बात इन श्रमवीरों की होगी, इस मंदिर की होगी, जैसा कि आपने कहा कि ये एक एक शिलालेख इसमें जो है, जो एक एक शिला है, दरअसल जो एक एक पत्थर है, वो इन्होंने इसको गढ़ा है, ये इसके शिल्पी हैं। बिल्कुल, अगर मैं कहूँ तो ये आधुनिक युग के नलनील हैं लोग। हाँ, बिल्कुल। और आप जो राम सेतु के निर्माण में जब वानर सेना लगी थी, तो नलनील ने जो जिस तरह से तैरते पत्थरों का पुल बनाया था, ये आधुनिक युग के नलनील हैं। प्रखर एक बात जो प्रधानमंत्री ने आज कही कि जब कोई व्यक्ति अपने को छोटा समझता है कि मैं तो बड़ा असाधारण हूँ, मेरा क्या योगदान, तो गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं ये प्रसंग भी है, और जो आपने नलनील से तुलना की वो भी निश्चित तौर पर इस बात की को प्रमाणित करती है। ইয়াত এখন সৰু গেলামালৰ দোকান নাছিল জানো? আছিলে। জুবিন দা, কি খবৰ? এইজন এইখন দেখোন আপোনাৰে দোকান। বাইদেউ, আপুনি মোৰ দোকানখন ধৰিবই পৰা নাই ন? অসম সলনি হৈ গৈছে, আৰু অসমৰ এই প্ৰগতিৰ বন্ধনক শক্তিশালী কৰি আছো আমি, বন্ধন বেংক। Vandya International School, a premier residential co-educational school located in Guwahati with state-of-the-art infrastructure offering world-class education with qualified faculty from all over the country. With 22 co-curricular activities and 18 sporting disciplines to choose from, Vandya International School also offers air-conditioned boarding facilities. Those interested to join between class 4 to class 12, contact 89180-91939. I repeat, those interested to join between class 4 to class 12 can contact 89180-91939. News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. Inaminadika, Daidamenika, Inaminadika, Dika, Daidamenika, Maganaka, Maganaka, Dika, Picarola, Ricard.
মিশোত যেতিয়া আছে লেটেষ্ট ট্ৰেন্ডি ভাইবছ তেন্তে ভাবিছে কিয় জাষ্ট মেক্সিমাইজ সকলো মাৰি কৰিলো মঞ্চ কিন্তু নাপালো পাৰফেক্ট ক্ৰাঞ্চ পাৰফেক্ট ক্ৰাঞ্চ ই হল নতুন সানফিষ্ট মাৰি লাইট নতুন মসমসিয়া সানফিষ্ট মাৰি লাইটত আছে বাছনি কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ তেন্তে আপুনি বাৰু পালেনে আপোনাৰ পাৰফেক্ট ক্ৰাঞ্চ Vandia International School, a premier residential co-educational school located in Guwahati with state-of-the-art infrastructure offering world-class education with qualified faculty from all over the country. With 22 co-curricular activities and 18 sporting disciplines to choose from, Vandia International School also offers air-conditioned boarding facilities. Those interested to join between class 4 to class 12, contact 89180-91939. I repeat, those interested to join between class 4 to class 12 can contact 89180-91939. News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. Vandia International School, a premier residential co-educational school located in Guwahati with state-of-the-art infrastructure offering world-class education with qualified faculty from all over the country. With 22 co-curricular activities and 18 sporting disciplines to choose from, Vandia International School also offers air-conditioned boarding facilities. Those interested to join between class 4 to class 12, contact 89180-91939. I repeat, those interested to join between class 4 to class 12 can contact 89180-91939. नमस्कार। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरा हो गया है और इसके साथ ही लोगों का सदियों पुराना इंतजार भी खत्म हो गया है। रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं। सोने तथा फूलों से सजी 51 इंच की रामलला की मूर्ति अब सबके सामने आ चुकी है। तस्वीर में रामलला पीली धोती पहने हुए नजर आ रहे हैं। सिर पर स्वर्ण मुकुट और गले में हीरे मोतियों की हार नजर आ रही है। इसके अलावा कानों में कुंडल सुशोभित है और हाथों में स्वर्ण धनुष बाण नजर आ रहा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की पूजा अर्चना की और इसके बाद मूर्ति का अनुष्ठान पूरा किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने रामलला की आरती की और इस दौरान गर्भगृह में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे। आज शाम अयोध्या दीपों से जगमगाने वाली है। यहाँ राम ज्योति प्रज्वलित कर दीपावली मनाई जाएगी। इसके साथ ही मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और पौराणिक स्थलों पर राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। अयोध्या सरयू नदी के तटों की मिट्टी से बने दीपों से रोशन होगी। रामलला, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट, सरयू तट, लता मंगेशकर चौक, मनीराम दास छावनी समेत 100 मंदिरों, प्रमुख चौहारों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं और बहुत प्रतीक्षित छवि का दर्शन देंगे और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं और बहुत ही पवित्र दिन आज का। और द्वादशी का दिन, कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का सिंह द्वार से प्रवेश हो गया। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए।